And that's exactly why Hazelwood is considered one of the best in the business, and number one in the rankings as well. He has the smarts, the pace, the skill. A wonderful bowler to watch. Down the wicket this time. Can't get it through the leg side. Lost the Gandaraza just yesterday for Zimbabwe. 40 runs off 23 balls. Helping Zimbabwe qualify from round number 1 into the Super 12. Fantastic innings. A little bit of width, and Williamson gets it away behind point, times it nicely, and into the boundary for 4. Beautiful timing. He's just jumped all over that little bit of width. A couple of dot balls, 3 dot balls to open the innings there, and you could hear the crowd before this delivery start cheering, and just that sense of perhaps Australia can just pull the handbrake back on, but that's typical Williamson, just the control. What a class act. He's got that little comfort, that little cushion now to come in. And that was some innings yesterday. Outstanding week of entertainment down in the qualifiers. And that dot ball will close out a successful over for the Australians. Hazelwood picks up the first, and New Zealand, after 5, 60 for 1. Stunning start by New Zealand. Finn Allen lighting up the SCG. Really giving the Australians a lot to think about as the crowd continues to build. Cummins now to Conway. Evening to you, Ian Smith. What an explosive start by your countrymen. And to you too, Howie, and to everyone watching. Yeah, Kane Williamson at the toss said I'd have bowled too. But right now, 60 for 1 after 5, he's probably quite happy he's not. And now the question is, how do they keep the pressure on Australia here? Cannot let Australia get back into this match. Got to keep going at them, keeping being positive. Point and square leg on the fence. Conway tried to get a bit fancy. In the end, he was going leg side, somehow squeezed it through the offside and gets it to the rope. Well, he's beaten Maxwell down there, and he is a whippet across the outfield. And this is an incredible cricket shot to get this kind of timing, because he was nowhere near looking to hit this ball down there initially. He was looking to free up the onside and perhaps ramp it down towards fine leg, backward square. It was a good piece of adjustment from the bowling aspect, but it was a better piece of readjustment from batting. Remarkable stuff we're seeing. Allen's performance, Smithy, asked questions of Aaron Finch. All of a sudden, Stoinis came into the attack a little earlier than expected. So New Zealand really on the front foot right from the start. Well, this is one of the best bowling attacks I've ever seen in white ball cricket. Now, on their home patch, they know how to bowl on this pitch, but they weren't allowed to. Quite incredible how New Zealand just went bang right from the outset. And it worked.
I was told by a few of the Kiwi support staff, now watch out for this Finn Allen, and I was asking you, I'm not sure anyone expected him to explode like that. The mental side of it for me is interesting. The freedom that he had expressed mentally, as much as his stroke play was... I mean, this is a massive occasion. This is game one of a T20 World Cup against the current champions on their home patch. Big crowd, but it didn't faze him. That's what got me. He had a mindset just to enjoy it and express himself, and boy, did he do that. Taking down Stark, Hazelwood and Cummins on their home ground. So how does the skipper approach this, Smithy? Does he continue the express start, or does he look to work it around? Well, he can't let Australia back in for mine. So he hasn't been in the greatest touch. He hasn't had a lot of cricket, but he's come out there at this run rate. But he can't let it drop back. It was like 14 and over when he came out. He can't let it drop back to 10-9 just for the sake of building a partnership here. You only need 200 to win most of these games over here. Better over for Australia. Into the power play. New Zealand 65 for 1. Well, it was this young man, Finn Allen, at 23 years of age. He just went from ball one, taking on some world-class bowlers, hitting Stark straight, then charging the likes of Hazelwood, timing it out of the screws and stunning the SCG, Smithy. Well, it's just a highlights package in itself, really. There was no relenting until that point where he almost outthought himself. Hazelwood was smart. He thinks, right, not many people come at me, but this kid's going to come at me. I have to make an adjustment. I think he's coming at me this ball. So he's set up for the rest of these players coming in here. Phillips at 4, very, very exciting. Mark Chapman starting to become quite experienced in the New Zealand lineup, and then Neesham, Santner, the all-round factor, and then the bowlers with their effort tonight. So, signal from umpire there that New Zealand's highest power play score in a T20 World Cup match ever. In many ways, you've got the quicks, but this man's been the talisman for Australia with ball in hand. He was wonderful at the last World Cup, and it's these moments under pressure where Adam Zampa somehow seems to find wickets. Well, these are the key players now, the boundary riders. If you're going to take them on aerially, you must make sure that you've got to hit space. Field has changed dramatically for this now. What a start. Zampa throws one down there and Conway just goes bang. Well, we've seen some bludgeoning and we've seen some class already from New Zealand, and this is the classy part. That's just sitting on it, waiting for a relatively full-length delivery. Just a little start of a movement towards Zampa, and then he stood and waited. Placement outstanding. Get up. No. He is rarely phased, though, Adam Zampa. Time and time again in the last 5 years for Australia in white ball cricket, he's been challenged and he's answered. Well, New Zealand-Australia recently played a 50-over series, and Zampa was a massive factor in that. Different kind of playing surfaces, but he bowled with a lot of confidence, got a lot of wickets. Was a big factor in Australia winning that series 3-0. They'll have done their homework on him. Oh, yeah. One of the 3 men out on the leg side. Good evening to Isha Gua. Ish, where are you? How is Smithy? I'm down on ground. I have to say the atmosphere is absolutely incredible for this opening game of the Super 12s. And boy, do we have a contest on our hands. New Zealand out the blocks quickly. The fans have been going pretty crazy. We've got a real selection of them around me. We've got Australians, New Zealanders.
I can see a few Pakistan shirts, and that's going to be a massive game tomorrow, India-Pakistan at the MCG. The weather is holding as well. There's no drops of rain in the air. It's a little bit overcast. The lights are on. And I don't know about you, but Smithy, I think this has been the perfect conditions for New Zealand to start here in Australia. Not the quickest of pitches. Don't get as much bounce as you do in other grounds around the country. And they've been able to get off to a brilliant start and get on the front foot. There's the wrong one from Zampa. It's also a great fixture for New Zealand, Issa, I believe, because they come into this as an underdog. You do well, and then, of course, if you can pull off an unlikely win, you're underway. You've really gone into a high gear to start the tournament. I think this is a key phase as well. These two play spin really well. हमें बताइए अपना मत हमें बताइए अपना मत बताइए लेकिन अपना मत हमें बताइए अपना वोट हमें दीजिए अपने फीडबैक हमसे शेयर कीजिए हम जरूर अच्छे कमेंट्स अच्छे फीडबैक को आपके साथ साझा करेंगे जैसे अभी हमने चर्चा की ये ग्लोबली अवेलेबल है आप देखिए कतर से यूके से हिमाचल से सब तरफ से डिस्ट्रिक्ट टू स्पोर्ट्स पर जिस हिसाब से लोग मैच देख रहे हैं रोमांच का मजा ले रहे हैं T20 वर्ल्ड कप का वो आपके साथ साझा करने में अलग ही आनंद आता है जी हाँ और हम उम्मीद रखते हैं कि हम जो है और भी अन्य देशों तक पहुँचे और क्योंकि जो है जो खास करके जो सब कॉन्टिनेंट कम्युनिटी रहती है वो इतने सारे देशों में जाके दे सेटल डाउन तो ज़रूर क्रिकेट भी वहाँ पहुँच जाता है और क्योंकि देख लीजिए आप कि विभिन्न देशों में भी और क्रिकेट भी खेली जाती है यानी कि अर्जेंटीना की भी एक क्रिकेट टीम है ब्राज़ील में बल्कि अभी विमेंस क्रिकेट इज़ मोर स्ट्रॉन्गर तो ऐसे सब हमें देखने मिलता है और ये देखकर बहुत ही अच्छा लगता है और अभी इसे खेल दिया है लेग साइड की दिशा में सिंगल मिलेगा यहाँ डेवन कॉनवे को So we've seen cricket really grow up. समझ लीजिए जैसे कि पापुआ न्यू गिनी भी पिछले साल certainly bright and sunny for New Zealand ऐसे विभिन्न देशों में जो क्रिकेट खेली जाती है ऐसे ही क्रिकेट बढ़ेगा और हम चाहते हैं कि और भी ऐसे देश आए और हमने जैसे अभी सक्सेस स्टोरीज देखे हैं नमीबिया के हो या और भी देशों के तो ऐसे जो है क्रिकेट और बढ़ते रहे मगर न्यूजीलैंड हाईएस्ट पावर प्ले स्कोर्स इन T20 वर्ल्ड कप टुडे इज द रिकॉर्ड 65 for 1 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और 58 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया था 2016 में जो कि था धर्मशाला में 55 for no loss अगेंस्ट पाकिस्तान 2016 में मोहाली में वो मैच था वो मैंने मैच कवर किया था इसलिए मुझे वो याद है और बहुत ही बढ़िया शुरुआत हुई थी उनकी तो ये रहे 2016 में उन्होंने 2 रिकॉर्ड बनाए थे वही तोड़ दिए उन्होंने अभी इस मैच में बिल्कुल तो एक तरह से ये जो वर्ल्ड कप है आप देख रहे किस तरह से पहले सुपर स्टेज में आपने कई अपसेट्स देखे ऐसे ही आज भी रिकॉर्ड बहुत सारे टूटेंगे इस वर्ल्ड कप में नए रिकॉर्ड बनेंगे इतिहास तोड़ने के लिए होता है बनाने के लिए होता है तो वही होता हुआ इससे पहले 55 और 58 रन पावर प्ले में खेले थे 2016 के वर्ल्ड कप में लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया ने 65 रन बनाकर न्यूजीलैंड के पावर प्ले में हाईएस्ट स्कोर अर्जित किया है अपना अब तक 78 रन बन चुके हैं 7.3 ओवर हो चुके हैं कॉनवॉय खेल रहे हैं 29 रन पर 19 गेंदों का सामना किया है और केन विलियमसन 7 रन पर 10 थोड़ा रन बॉल से कम है जो कि हम पहले चर्चा कर रहे थे केन विलियम्स के बारे में स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं लेकिन बाउंड्री जो चाहिए वो नहीं आती है ये क्या होता है कि आगे चलकर आप आने वाले बैट्समैन पर एक प्रेशर बना देते हैं जहां से कॉन्फिडेंस होने का चांस बढ़ जाता है तो पहला मैच है 13वां मैच था T20 वर्ल्ड कप का अच्छा हो तो अच्छी स्टार्ट मिली पावर प्ले में लेकिन अब देखना होगा किस तरह से ये दोनों प्लेयर्स उसको कैपिटलाइज करते हैं और आखिरी के 5-7 ओवरों में देखिए 200 से ऊपर तो बनना चाहिए यहाँ से 200 से ऊपर बनना जरूर चाहिए मगर मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ फिन एलन ने जैसे आज बल्लेबाजी की है और जैसे वो अभी अपनी जगह बनाया है टॉप ऑफ द ऑर्डर उन्होंने मार्टिन गप्टिल जैसे सलामी बल्लेबाज को टीम से बाहर मार्टिन गप्टिल जो है एक बहुत अहम खिलाड़ी है न्यूजीलैंड के लिए कई सालों से ओडीआई और T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इन्हें बाहर रखा है फिन एलन ने तो आप समझ सकते हैं कि ये युवा खिलाड़ी के आने से जैसे उन्होंने एक नया अटैकिंग इंस्टिंक्ट दिखाया है हाउ क्रूशियल इट्स बीन फॉर न्यूजीलैंड हाउ दे हैव गप्टिल जैसे खिलाड़ी को अभी जगह नहीं मिल रही है प्लेइंग बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी और एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं गप्टिल भी और अच्छा स्टार्ट देते हैं लेकिन जब आप स्ट्राइक रेट की बात करें तो उसमें एलन फिन ने उनको मात दे दी और टीम में जगह बनाई तो एक क्वेश्चन हमने आपसे यूट्यूब पे जरूर पूछा था कि कौन पिछले वर्ल्ड कप में
इन दोनों टीमों के बीच में मैन ऑफ द मैच रहा था, जिसका आंसर आपको देना है। लेकिन उससे पहले जो 2016 में मैच हुआ था उसमें मार्टिन गप्टिल मैन ऑफ द मैच रहे थे। उस मैच में 2016 में एक मैच अभी तक दोनों टीम जीती है, 2 वर्ल्ड कप मैचेस हम लोगों ने खेले हैं हेड टू हेड इन वर्ल्ड कप, और वन हैज वन बाय ईच टीम। सो मार्टिन गप्टिल हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, यू वर राइट दैट वे, बट स्ट्राइक रेट गजब का था, मजा आया उनकी इनिंग देखने में। जी हाँ, बहुत ही गजब का था उनका, और जैसे उन्होंने एक फियरलेसनेस दिखाई, there was nothing holding him back. Sold out in under half an hour. And I wanted to have a look क्योंकि Martin Guptill obviously it's going to be quite an extraordinary sporting event. The last cricket match में उनकी strike rate 135 है, which is fantastic. मगर फिन आलन अभी नए आए, वो 161 पर strike करते हैं T20 इंटरनेशनल में, और डोमेस्टिक गिना तो ओवरऑल T20 में उनकी strike rate और भी ऊपर है 171। आप टॉप ऑफ द ऑर्डर आते हैं, अगर टॉप टीम में बल्लेबाजी कर रहे हो, ऐसी strike rate आप देते हो तो you've got to get such a player into your lineup. And absolutely that way, all the credit should go to Kane Williamson, the way he maneuvers his team. जिस हिसाब से आप हर प्लेयर में से बेस्ट निकालते हैं ना, इसलिए तो एक ज़माने में टेस्ट में नंबर 1 रहे हैं न्यूजीलैंड की टीम। तो उस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये दोनों प्लेयर बहुत अच्छा खेलते हैं। हमारे स्ट्रीम को आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, डिजिटल टू स्पोर्ट्स। आप जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हाँ, आप सारे कहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ये देख लीजिए आपके स्क्रीन पर, यूट्यूब पर खास करके आप हमारे साथ जुड़ते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करते रहिए। ट्विटर पे भी हम मौजूद हैं, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर, सो यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन ऑल दीज हैंडल्स। वी आर एवर प्रेजेंट during this T20 World Cup, the men's T20 World Cup का आपको देखा हाल आपको सुनाई देगा exclusively on Digital 2 Sports। और इसी पे मिलेगा एक बड़ा मैच इंडिया पाकिस्तान का। और देखिए डिजिटल टू स्पोर्ट्स जो है ना, वी आर अ प्लेटफॉर्म व्हिच वी ऑफर अ लॉट ऑफ, यहाँ पे आपके पास सब कुछ मिलेगा। अगर पंकज रहते हैं ना तो अपने बॉलीवुड के अंदाज में बोलेंगे ये है वो है, मैं उनकी तरह अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकता। नहीं, पर निशाद आप जो कह रहे हैं बिल्कुल समझ रहा हूँ कि हमारा ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है, नए प्लेटफॉर्म से हम जुड़ते जाएंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वी हैव अ सरप्राइज इन स्टोर फॉर यू, और ये सरप्राइज हम जल्दी रिवील करेंगे, कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ बने रहिए। एंड वी आर ऑल्सो एक्साइटेड टू नो अबाउट दिस, और ये सरप्राइज है ना आपके घरों तक हम लेकर आएंगे, तो बने रहिए। अनाउंसमेंट विल बी कमिंग रियली क्या बता सकते हैं? बिल्कुल मजा आएगा, बिल्कुल। क्या बता सकते हैं हम? अभी नहीं, एक सरप्राइज का हर एक वक्त होता है, वो वक्त हमारे प्रोड्यूसर साहब ने अच्छी तरीके से सिलेक्ट किया है, एंड वी हैव टू बैक दिस, क्योंकि वो जो सरप्राइज आएगा ना एकदम परफेक्ट टाइम पर। देखो आप एक्साइटमेंट बढ़ा रहे हैं हमारे दर्शकों का, बताइए जल्दी, देखिए क्या हो रहा है, क्या नया लेकर आ रहे हैं डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर। हम बहुत से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, आप जाइए सब्सक्राइब कीजिए और हमें फॉलो कीजिए। कल बड़ा मैच इंडिया बनाम पाकिस्तान लेकर आएंगे इसी प्लेटफॉर्म पर, लेकिन आज चल रहा है इस टूर्नामेंट का ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड। पावर प्ले के बाद अभी दोनों पारियों में 84 पर 1 हो चुका है, 9वां ओवर चल रहा है और कॉमनवेल्थ विलियमसन धीरे जरूर है लेकिन रन आ रहे हैं। 9 रन 10 रन के प्रति ओवर के औसत से रन बन रहे हैं। एडम जंपा का दूसरा ओवर, इस ओवर में मात्र 3 रन दिए 4 गेंदों में। जी हाँ, और 31 पर अभी कॉनवे बने हुए हैं और उनकी अच्छी स्ट्राइक रेट। विलियमसन जरूर अपना थोड़ा समय ले रहे हैं। अगर आप देखें तो जैम्पा की अगली गेंद से उठा दिया है, कदमों का प्रयोग लॉन्ग ऑन के ऊपर और ये छक्का, ब्रेकिंग द शैकल्स इन अ वे, क्योंकि थोड़े समय तक लगा कि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है थोड़ा सा कमबैक कर रही है, मगर कॉनवे क्या क्लासी शॉट, बिल्कुल बहुत बढ़िया शॉट, कदमों का इस्तेमाल किया, आए और गेंद को सीधे बॉलर के ऊपर से उठा दिया 6 रनों के लिए। और वो सबसे बड़ी बाउंड्री है निशाद, आप देखेंगे 84 मीटर की वो बाउंड्री है। स्क्वायर बाउंड्री छोटी है लेकिन उन्होंने जगह भी चुनी तो अपने पसंद की और गेंद को सीधे रसीद कर दिया स्टैंड में। जी हाँ, और आप से हम जानना चाहते हैं कि पिछले T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे, और यहाँ जोरदार अपील लेग बिफोर के लिए। क्या यार, मुझे एक समय के लिए लगा कि इन्होंने शॉट ऑफर नहीं किया,
जैम्पा जरा रिव्यू लेना ही चाहिए था। बहुत बढ़िया, बिकॉज गेंद थोड़ी छोटी थी, उसको कट करना चाह रहे थे दिशा देने की, लेकिन गेंद सीधे पैड पर लगी, उनके पैर बिल्कुल अंदर आई। तो मुझे लगता है ये थोड़ी दुविधा में फंस गए यहाँ पर। मुझे लगता है अगर प्राइमा फेसी या प्रथम दृष्टया अगर बात करें निश्चित, तो मुझे लगता है ये विकेट शायद जंपा के खाते में जा सकता है। जी मुझे भी लगा, क्योंकि बिल्कुल, बिकॉज गेंद की गति से या तो उसको उछाल से मात खा गए, नेट कट करने गए और गेंद सीधे उनके पैड पर लगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट विकेट होगा, अगर ये जाता है तो देखना होगा। गेंद बिल्कुल आगे है थोड़ा सा, और थोड़े ऐसे जब खेल रहे थे तो लगा था कि अटपटे ढंग से खेलने का प्रयास किया था उन्होंने, और शायद ये रिस्ट स्पिन नहीं था कन्वेंशनल, यहाँ उन्होंने जैसे उंगलियों से थोड़ा ऐसे टर्न किया था। और एक बार अगर हमने नजर दिया अल्ट्रा एज को, तो पहला इम्पैक्ट जरूर जैसे आपने कहा कि पैड पर लगा है, और बॉल ट्रैकिंग अभी ये अनुमान लगाएगा कि क्या फंस गए। पिचिंग इन लाइन इम्पैक्ट एंड मिसिंग विकेट्स, मिसिंग बाउंस के कारण बच गए। बहुत मैं तो कहूँगा बिल्कुल खुशकिस्मत रहे कि यहाँ बच गए, लेकिन जिस हिसाब से अपील की थी, बहुत बढ़िया गेंद, चूक गए उसकी लेंथ को पढ़ने में। एड्रियन हॉलफोर्ड जो कि साउथ अफ्रीका के हैं, बहुत ही अच्छा इनका निर्णय यहाँ, बहुत बढ़िया निर्णय मैं कहूँगा, बिकॉज रियल टाइम में देख कर निर्णय देना एक अलग बात होती है। आप स्क्रीन में बहुत सारे रिपीट्स कर लेते हैं, आप बैक स्क्रीन जाते हैं, फ्रंट स्क्रीन जाते हैं, आपके मौके होते हैं, लेकिन जो बंदा वहां पर खड़ा है मैदान में, बहुत बढ़िया निर्णय उनका। 9 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 90 रन, 1 विकेट पर 10 रन प्रति ओवर के औसत रन बन रहे हैं। और क्विज में हमने आपसे सवाल ये पूछा है कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द मैच, माफी चाहूंगा, 2021 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में कौन था? डेविड वार्नर, एरन फिंच, रिच मार्श, जॉश हेजलवुड। ये फाइनल खेला गया था दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पिछले साल, और ये मैच जीता था ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हरा के। तो यही 2 फाइनलिस्ट थे। तो फिर आप बताइए, सारे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, इनमें से कौन प्लेयर ऑफ द मैच था? देखिए, अगर न्यूजीलैंड जीता तो विलियमसन शायद होते प्लेयर ऑफ द मैच। बिल्कुल देखना होगा। प्रोड्यूसर बताइए, थोड़ा हिंट दे सकते हैं अपने दर्शकों को? नहीं, तो हम जानना चाहेंगे प्रोड्यूसर साहब से, बताइए। ये आप कर सकते हैं। इसी बीच एक गेंद 1 रन लिया, वहां पर दौड़कर टीम का स्कोर पहुंचाया 91 for 1। 9.1 ओवर अब तक हो चुके हैं, और केन विलियमसन स्ट्राइक पर होंगे। 10 रन 14 गेंदों में मेरे ख्याल से थोड़ा सा उनको एग्रेसिव अप्रोच करने की जरूरत है। आपके पास बैटिंग है, डेप्थ तक आपको थोड़ा रन गति को बढ़ाना होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग लाइनअप है ना, बहुत मजबूत है। मैथ्यू वेड आते हैं 7वें 8वें नंबर पर, आप देख रहे हैं जी। और मैथ्यू वेड हाल ही में जो 40 के ऊपर वो रेगुलरली मारते रहते हैं नीचे आके बल्लेबाजी करके, और he's been looking in really good form। देखिए अभी ऑस्ट्रेलिया उन्हें डाउन दी ऑर्डर यूज कर रहे थे, अभी जब आईपीएल में वो आए थे गुजरात तभी टॉप ऑफ दी ऑर्डर बल्लेबाजी कर रहे थे, बट वो वेरी गुड फॉर्म। और डाउन दी ऑर्डर आके जिस कंसिस्टेंसी से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, he's been one of their best players actually. And then you are an asset to your captain that way, because फिर हम जानते हैं कि फिर टॉप ऑर्डर अपने हिसाब से खेल सकते हैं, क्योंकि मालूम है कि लोअर ऑर्डर में वेट जैसी बल्लेबाजी करने वाला अगर खिलाड़ी उनके साथ मौजूद है तो कोई टारगेट। और आपके पास एक फ्लोटर है मैक्सवेल के रूप में। मैक्सवेल अगर आपको जरूरत पड़े, आपने नंबर 3 पर उन्होंने ओपनिंग भी किया। ओपनिंग चलो वो लोग ज्यादा कुछ ट्रेन नहीं करने वाले, मगर आप पावर देखिए लाइनअप में आपके पास किंग डेविड के आने से, मार्कस स्टॉइनिस के आने से ये और मजबूत हो गए। बिल्कुल सॉलिड टीम, बट एक बात कर रहे थे पेपर में देखो, ऑस्ट्रेलिया बहुत बढ़िया टीम, इंग्लैंड बहुत बढ़िया टीम, लेकिन अगर वर्ल्ड कप की अगर हिस्ट्री में जाते हैं तो कोई भी टीम बैक टू बैक वर्ल्ड कप चैंपियनशिप नहीं जीती है, और दूसरा अपने होम सॉइल पर कोई टीम नहीं जीती है। तो ये 2 आंकड़े हैं जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में जाते हैं। जैसे मुन्ना भाई ने कहा था, बहुत कुछ चीजें लाइफ में फर्स्ट टाइम होती है, तो कभी कभी हो भी सकता है। देखिए 2011 तक तो कोई टीम ऐसे आउट एंड आउट होम सॉइल पर वर्ल्ड कप नहीं जीती थी, वो हुआ।
फिर जो है वेस्ट 50 वर्ल्ड कप में चलो वेस्ट इंडीज ने पहले 2 बैक टू बैक जीते थे, मगर ऑस्ट्रेलिया ने तो एक हैट्रिक कंप्लीट की 99, 2003, 2007 में। और मुझे लगता है कि इस ऑस्ट्रेलिया टीम में वो बहुत काबिलियत है, बिकॉज़ दे गॉट एवरीथिंग, तेज गेंदबाज, बढ़िया स्पिनर, फिनिशर्स 2-3, टॉप ऑर्डर के आक्रामक बल्लेबाज। सो एक जो आप कॉम्बिनेशन देखते हो ना, जॉश इंग्लिश के इंजर होने से भी उनको और एक जो विकल्प मिला वो है कैमरन ग्रीन, जिन्होंने बताया कि वो T20 क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेल सकते हैं। तो मुझे ये टीम में ना बेंच पर भी वो डेप्थ नजर आ रही है। बिल्कुल, तो देखना होगा कि ये बेंच पे जो टीम स्ट्रांग है, पेपर पे जो टीम स्ट्रांग है, आप अपना प्रदर्शन यहाँ पर होम क्राउड के सामने कर पाते। डिफेंडिंग चैंपियन है, थोड़ा प्रेशर जरूर होगा, होम क्राउड में खेल रहे हैं, लेकिन इतिहास जो कहता है वो थोड़ा अगेंस्ट में जाता है। देखना है किसकी जीत होगी इस टूर्नामेंट में। बहरहाल ये मेन ग्रुप का पहला मैच चलता हुआ ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड का। अब तक 95 रन बन चुके हैं, 95 for 1, 9.4 ओवरों में इसी बीच अच्छी गेंद थी, इनर एज लगा, लेकिन भाग्यशाली रहे विकेट के ऊपर से चली गई। इस गेंद को छोटी गेंद से पुल करने की कोशिश की, गेंद ने नीचे किनारे बाउंड्री के पास जाने पर खिलाड़ी मौजूद फील्ड करते एडम जंपा, जब तक बैट्समैन के पास मौका। दूसरा रन बहुत ही आसानी से लिया, बिकॉज पहला रन बहुत तेजी से दौड़ गए थे, टीम का स्कोर पहुंचाया 97 पर 1 विकेट, 10 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 9.7 रन के औसत से रन बन रहे हैं। अच्छा ओवर मिशेल स्टार्क का, पहले ओवर में 14 रन दिए थे, अब 2 ओवर में इन्होंने 21 रन अब तक दिए हैं। जी हाँ, और अगर आपको ऑस्ट्रेलिया के इस टीम में कुछ भी एक बदलाव नजर आ रहा है, बदलाव तो ये है कि टिम डेविड के आने से स्टीवन स्मिथ को जगह नहीं मिल रही है। स्टीवन स्मिथ इतने क्लासी बल्लेबाज रहे, मगर T20 क्रिकेट में यही होता है कि अगर लगातार प्रदर्शन नहीं करते, तो आपको जो है एक और भी कोई अनुभव और एक यंग खिलाड़ी आके आपका स्थान ले सकता है। मगर ये रहा मैनहट्टन आज न्यूजीलैंड टीम का, जो कि शुरुआत में ऐसे लग रहा था कि ये जा रहा है एमिरेट्स टावर्स से बुर्ज खलीफा, बिल्कुल फिर ये नीचे आ गया, बिल्कुल फिर वहां से आप सीधे नीचे आ गए, और 5 ओवर में जब आपका विकेट गया तो थोड़ा सा रन गति में रोक लगी। लेकिन अब इन दोनों में काबिलियत तो है, लेकिन ऑफ लेट इनके रिकॉर्ड को प्रूव नहीं करते। इनको तकरीबन 10-12 रन के औसत से बनाने होंगे, लेकिन जो वीक लिंक मुझे लग रहा है यहाँ पर केन विलियमसन का, ज्यादा होल्ड बैक कर खेल रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट जरूर कर रहे हैं, लेकिन रन बॉल से कम स्कोर है यहाँ पर। तो 10 ओवर हो चुके हैं, ड्रिंक्स हो रहा है इस वक्त मैदान में, 10 ओवरों में अब तक स्कोर बना है 97 रन। तो अभी भी यहाँ से 200 रन, क्या लगता है निशाद आपको? 200 तो होना चाहिए। अटैक करना होगा स्टॉइनिस के अगर ओवर्स आएंगे और मैक्सवेल के, क्योंकि मैक्सवेल, स्टॉइनिस और मिचेल मार्श अगर गेंदबाजी करे तो वो ऑस्ट्रेलिया के 5th बॉलर कोटा होंगे। टॉप 4 उनके वही है, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस, 5th बॉलर आप किसमें सेलेक्ट करोगे? मैक्सवेल, स्टॉइनिस। अगर आप उन पर थोड़ा अटैकिंग करेंगे तो मुझे लगता है वो काफी क्रूशियल होंगे न्यूजीलैंड के लिए। मगर मिचेल मार्श, जैसा कि हम जानते हैं कि हाल ही में इतनी गेंदबाजी नहीं करते, पिछले साल के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भी उन्होंने एक ही ओवर डाला था, और फिर जो है हाल ही में बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते हैं। मगर अगर T20 वर्ल्ड कप की बात करें पिछले साल के फाइनल की, तो हमने हमारे दोस्तों से सवाल पूछा है, बताइए आपको क्या लगता है। और ये रहा अभी तक का लेखा जोखा, जो है 10 ओवर के बाद अभी ब्रेक लिया जा रहा है। You can get an annual checkup on your current device designed to keep your phone in tip-top condition. Count on एक ही रन दिया है, मगर फिन एलन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से ये शुरुआत मिली है न्यूजीलैंड को। बिल्कुल, और अगर आपके पावर प्ले में टॉप ऑर्डर में एक हाथ भी चल गया, उसके बाद देखिए 2 खिलाड़ी 42 पे खेल रहे हैं। फिन एलन ने अब तक बनाया 42 रन 16 गेंदों में, क्या स्टार्ट दिया था। और उसके बाद डेवॉन कॉनवे जिन्होंने 42 रन बनाए, 28 गेंदें खेली है, लेकिन थोड़ा सा केन विलियमसन 12 रन 16 गेंदों पर खेल के शायद स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद ग्लेन फिलिप्स आने वाले हैं, तो अभी बैटिंग बहुत बची है, सेंटनर तक बैटिंग करते हैं, तो डेप्थ तो है न्यूजीलैंड के पास, लेकिन अब उनको लंबे हाथ जरूर दिखाने होंगे। एक नजर बॉलिंग कार्ड पर देख लेते हैं। मिचेल स्टार्क पहला ओवर लेकर आए थे, अच्छा नहीं रहा, पहले ओवर में 14 रन दिए थे, क्योंकि एक अलग ही मूड में, एक अलग ही अंदाज में वहां पर आए थे फिन एलन। और इंटरेस्टिंग बात है, सभी बॉलर्स ने 2 ओवर, क्या स्टॉइनिस से अब और 2 ओवर करवाएंगे, या फिर शायद अब मैक्सवेल को 2 ओवर देंगे। मिचेल मार्श की अगर बात करें तो पिछले 5 T20 इंटरनेशनल में उन्होंने गेंदबाजी नहीं की है, और उनका
लास्ट विकेट भी आया था पिछले साल के जुलाई में वेस्ट इंडीज के सामने, और उसके बाद उन्होंने ओकेजनली जरूर बॉलिंग की है, मगर इतनी ज्यादा उनकी बॉलिंग नहीं रही है T20 इंटरनेशनल। इसी बीच गेंद नया और लेकर आया स्टॉइनिस और इस गेंद को खड़े खड़े बिल्कुल स्वीप की तरह से शॉट खेल दिया और सीधे मिड स्क्वायर बाउंड्री के पीछे 6 रन। बढ़िया शॉट यहाँ पर आता हुआ विलियमसन के बल्ले से। वही हम कह रहे थे उनको शायद अब थोड़े से हाथ खोलने होंगे और हमारी बात शायद वहां तक पहुंची। उन्होंने ये छक्का लगाया, अब 18 रन पर खेल रहे हैं, 17 गेंदों का सामना किया है। अच्छी गेंद थी, सीधे उसको भांपा और सीधे खेल दिया स्क्वायर बाउंड्री के ऊपर 6 रन। जी हाँ, और पिछले साल के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भी विलियमसन ने ऐसे ही शॉट खेले थे ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के सामने, बल्कि एक शॉट ऐसे ही शॉट खेला था जिसमें जॉश हेजलवुड फाइन लेग बाउंड्री पे थे और उन्होंने मिसजज किया था और ये छक्के के लिए गया था। मगर अभी 47 रनों की साझेदारी, अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर इसे खेल दिया है, मिड ऑफ के क्षेत्र में सिंगल मिलेगा। तो एक विलियमसन जरूर जानते हैं कि जो फिफ्थ बॉलर है स्टॉइनिस अटैक कीजिए, अगर ये उनका तीसरा ओवर है, एक और ओवर फिंच को अपने फिफ्थ बॉलर से कराना है, शायद वो मैक्सवेल को दे या स्टॉइनिस से ही बरकरार रहे। मुझे लगता है ट्राई कर लेना चाहिए, बिकॉज आपके कोई भी तेज गति के गेंदबाज यहाँ पर सक्सेस नहीं रहे, तो थोड़ा सा वेरिएशन लाकर अगर आप मैक्सवेल को यहाँ पर ओवर कराएं, एक आध ओवर 2 ओवर कराएं, क्योंकि अभी ऑफ लेग भी आपने देखा होगा उन्होंने प्रैक्टिस मैच में बहुत अच्छी गेंदबाजी की, तो उनसे उम्मीद है कि वो अगर विकेट ना लें तो रन गति को थोड़ा कर सकें। अब तक 104 रन बन चुके हैं, 11वां ओवर चल रहा है। विलियमसन ने छक्के के साथ अब स्कोर पहुंचाया 19 रन। ये शॉट गेंद से पुल कर दिया कॉन्वॉय ने, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद जब तक नहीं जाती उनके पास चहलकदमी करते हुए अपने आप को दूसरे छोर पर पहुंचाया और टीम का स्कोर पहुंचाया 105 पर 1। और एक बात अभी जस्ट स्ट्राइक हुआ था penetration through the middle, knowing that they've got Glenn Phillips in particular waiting in the wings who can certainly penetrate that थोड़ा काम आ सकता है। देख लीजिए शायद लॉन्गर बाउंड्री पे आप उन्हें थोड़ा टेम्प्ट कर सकते हैं, या कई बार जो है लेफ्ट हैंडर्स के सामने जब ऑफ स्पिनर्स डालते हैं तो अगर लेग साइड की शॉर्टर बाउंड्री है तो ऑफ स्टंप के बाहर लाइन डालते हैं, सो दैट दे प्ले अक्रॉस द लाइन, और आपसे अवे टर्न होगी तो टॉपेज होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये शायद एक ओवर मैक्सवेल से आप ट्राई कीजिए। बिल्कुल, ये गेंद छोटी गेंद थी, इसे थोड़े से आगे खेल रहे थे, लेकिन धीरे आई गेंद और अपने आप को संभाला, पुल कर दिया और 1 रन और पूरा के दौड़कर 106 रन एक विकेट पर 10.4 ओवर हो चुके हैं। बिल्कुल सही बात, मैं भी यही सोच रहा था मैक्सवेल से अगर ओवर कराएं, बिकॉज आपकी लॉन्गर बाउंड्रीज हैं फ्रंट में भी, अगर आप उनको थोड़ा सा ऊपर भी खिलाएंगे ना तो चांस है कैच का। और वही जो अगर शॉर्टर लेग साइड है तो फिर आप टेम्प्ट कीजिए ना कॉन्वे को, कॉन्वे विल ट्राई अगर ऑफ स्टंप के बाहर लाइन की सोचे कि यहां से ज्यादा चांस लेग साइड पे मारूं, मगर ऑफ कोर्स दे नो बेटर देन अस, हम तो बस ऐसे थोड़े अनुमान लगा सकते हैं। और स्टॉइनिस अभी गेंदबाजी कर रही है, ये पैड पर गेंद इसे खेल दिया है, काफी फाइन। क्या ये चौके के लिए जाएगा गेंद? नहीं, बल्कि वहां जैम्पा पहुंच दिए और 2 रन मिलेंगे। इन 2 रनों के साथ जो है न्यूजीलैंड का स्कोर पहुंचा 108 1 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद पर जो छक्का आया और इसी के साथ अभी जो इनकी 50 रनों की साझेदारी जरूर हुई है। 52 of 40 balls, little bit slower compared to the explosive start that we had from Finn Allen. But that's what gives the cushion, you know, अगर आपका स्टार्ट अच्छा मिल गया तो अगर आपको बारी सवार में विकेटें हाथ में रखनी है तो आप ये कर पाते हैं। फिर भी 40 गेंदों में 42 रन बनाया, लेकिन थोड़ा सा अगर यहाँ पर स्टॉइनिस की गेंद करे, पहले गेंद में छक्का लगा था, उसके बाद आप देखेंगे उन्होंने धीमी कर दी है गति को। बिल्कुल गेंद ना गिरने के बाद जिस हिसाब से सोच रहे हैं बैट्समैन के जा नहीं रही है गेंद वैसे। जी हाँ, इतनी आसान यहाँ जरूर वो धीमी गति डाल के जरूर एक थोड़ा ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि पेस हैज नॉट वर्कड। अभी दूसरे छोर पर ये देखना है कि जैम्पा को बना के रखेंगे और स्टार्क के अभी ओवर भी बचाने हैं, आपको 2 ओवर बचाने हैं फॉर द बिल्कुल लास्ट में पावर प्ले आखिर में क्या होता है वो तो आपको पता। विकेटें रहेंगी तो रन तो आएंगे, आपको विकेटें लेनी है। 12 रन पिछले ओवर में आए थे जैम्पा के, पहले ओवर में 8 दिए थे, माफ कीजिए 13 रन पिछले ओवर में जैम्पा ने दिए थे। तो एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। अब न्यूजीलैंड 11 ओवरों में 109 रन प्रति
109 रन एक विकेट पर खेल रहे हैं, एक ही रन एक्स्ट्रा दिया तो अच्छी गेंद, और यहाँ पर मिशेल स्टार्क नई गेंद लेकर आएंगे हमारे हमसे दूर जाते हुए। अच्छी गेंद थी, इन्होंने भी शायद गति को अब रोका है, थोड़ी स्लो गेंदें कर रहे हैं, गेंद उतनी उठ नहीं रही है, गेंद उतनी तेजी से बैट्समैन के पास नहीं जाने दे रहे हैं। और पिछले 1-1.5 ओवरों में हमने देखा किस तरह से बहुत ज्यादा उनको डिफिकल्टी हो रही। तो वहां पर जब मिशेल स्टार्क आए हैं नई गेंद को लेकर 109 एक विकेट पर 11 ओवरों में, डेवन कॉनवे अच्छी इनिंग खेल रहे हैं, 46 रन बना चुके हैं 31 गेंदों पे, और उनका साथ दे रहे हैं केन विलियमसन। 20 रन उन्होंने बनाए, 19 गेंदें खेली। पिछले ओवर में एक बढ़िया छक्का लगाया था, और ये गेंद इस गेंद को फुलर लेन की दी, ड्राइव कर दिया, और वहां पर मिसफील्ड हुई, और बैट्समैन के पास मौका 1 रन लेने का। 110। और हमारे साथ अब जुड़ गए हैं मेरे प्यारे दोस्त राजेश यादव जी। राजेश यादव, 110 रन एक विकेट पर, बहुत बढ़िया स्कोर है। आप प्लेटफॉर्म सेट कर रहे हैं आने वाले बैट्समैन के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। इस पहले ही मुकाबले में न्यूजीलैंड ने जिस प्रकार से आज यहाँ पर बल्लेबाजी की है, शुरुआत काफी अच्छी मिली, और जिस अंदाज में उन्होंने ताबड़तोड़ यहाँ पर बल्लेबाजी की, आने वाले बल्लेबाजों के लिए राह आसान हो जाती है इस विकेट पर बल्लेबाजी करने के लिए। पहले 10 ओवर जिस अंदाज में गए, आने वाले 10 ओवर और उनसे अच्छे जाए तो यह मुकाबले में बहुत अच्छा होगा न्यूजीलैंड टीम के लिए। बिल्कुल, ये एक कॉन्फिडेंस जरूर देगा, क्योंकि आप जब इस मैच में आए थे, एक तो आप एक वो टेस्टमैन राइवलरी में खेल रहे हैं, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, होम क्राउड उनके साथ है, उनकी कंडीशन में खेल रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से आपने फिन एलन ने बैटिंग करी भाई, लाजवाब था। 16 गेंदें 15 गेंदें 42 रन आप मार देते तो आप एक क्वेश्चन दे देते हैं, वही कुछ यहाँ पर हुआ। अब इस तरह से इन दोनों ने पारी को संवारा है, अब तक पार्टनरशिप 55 रन की हो चुकी है, 44 गेंदें इन दोनों ने खेली हैं, और 111 रन एक विकेट पर। 12वां ओवर चल रहा है, मिशेल स्टार्क 2 ओवर में अब तक 23 रन दे चुके हैं, तीसरा ओवर लेकर आगे। अच्छी गेंद, छोटी गेंद थी, इसे हल्के हाथों से सॉफ्ट हैंड से खेल दिया, गेंद लुढ़क कर जाती, जब तक शॉर्ट मिड ऑन रीजन में बैट्समैन के पास मौका तेजी से 1 रन पूरा करने का। 1 रन के साथ अब पहुंच गए हैं कॉनवे 48 रन पर 34 गेंदों पे, और विलियमसन स्ट्राइक पर होंगे। 112 पर 1, 12वां ओवर चल रहा है। बिल्कुल, और मिशेल स्टार्क का ओवर अच्छा जाता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। 3 सिंगल्स ही आए हैं, 4 गेंदों में, तो ड्रीम्स के बाद जिस प्रकार से अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजों ने नकेल करने की कोशिश की। इस बार भी धीमी गेंद थी, डॉकबॉल में थी, यॉर्कर थी, किसी प्रकार से कूद कर निकला, वहां पर विलियमसन ने एक सिंगल मिलता हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया इन सिंगल से अब उतना ज्यादा सोचेगा। बिल्कुल, जिस हिसाब से आप देखिए, मैं कहूंगा कि इसलिए अच्छे बॉलर माने जाते हैं, क्योंकि आप किस हिसाब से अपने कंडीशंस में अपने आप को चेंज करते हैं। देखिए, शुरू में पेस डाल रहे थे, लगकर जा, लेकिन पिछले 2-3 ओवरों से आप देखिए किस हिसाब से उन्होंने वेरिएशंस किए, स्लो गेंदें डाली और बैट पर नहीं आ रही। 2 पेस पिच की हमने बात की थी, पिछले 5 गेंदों में मात्र 3 रन गए, और ये गेंद भी देखिए फिर से थोड़ी धीमी गति की, इसे सॉफ्ट हैंड से खेल दिया, जब तक ये जाती लॉन्ग ऑन रीजन में बैट्समैन के पास मौका 1 और रन देने का। 12 ओवर हो चुके हैं, इस ओवर में मात्र 5 रन आए हैं, 114 पर 1, और 12 ओवर 8 ओवर बचे, तो बहुत बढ़िया वापसी ऑस्ट्रेलिया की। जिस हिसाब से मेंटल गेम खेल रहे हैं, गेंद की गति को कम कर दिया है इन्होंने। बिल्कुल, और पिच को उन्होंने अब जाकर पड़ा है, जिस प्रकार से यहाँ पर गेंदबाजी कर रही है। शुरुआती समय में से लग रहा था कि जिस प्रकार का मौसम है, जिस प्रकार से पिच है, जिस प्रकार की हवाएं चल रही हैं मैदान पर, वहाँ पर टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला काफी अच्छा होगा। गेंदबाज काफी अपना बल दिखाएंगे इस मैदान पर, लेकिन पावर प्ले में जिस प्रकार से बल्लेबाजी की दोनों बल्लेबाजों ने इन्होंने बता दिया कि यहाँ पर बल्लेबाजी की जा सकती है यदि आपने प्रयास किया तो। और कुल मिलाकर 10 ओवर में जिस प्रकार से 97 रन थे, अब 12 ओवर तक खेल हो चुका है 114, एक विकेट के नुकसान पर एडम जेम्पा जो कि अपने 2 ओवर में 8 रन दे चुके हैं। नए ओवर की शुरुआत कॉनवे ने आगे बढ़कर खेल दिया है, गेंद हवा में सीधे मिड विकेट के ऊपर से यह आता हुआ शानदार छक्का। बिल्कुल, बहुत बढ़िया शॉट, कदमों का इस्तेमाल किया और आगे आकर मान लो एक उठा दिया सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6 रन। बट मैं कहूंगा अच्छी गेंद थी, आपको इससे फेयरलेस क्रिकेट होता है ना। जैम्पा अगर यही करे, वहां पर एक खिलाड़ी रखें तो कैच हो सकता है, ज्यादा पीछे नहीं गई गेंद तो शायद मौका बना सकते हैं। आपको अगर छक्का पड़ता है स्पिनर्स को तो लगे, लेकिन आप अगर गेंद को हवा में रख रहे हैं तो चांस विकेट लेने का जरूर बनेगा। और इस छक्के की वजह से उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा किया है यहाँ पर, और जिस अंदाज में
morning of the US Grand Prix at the circuit of the Americas, and he's looking like a strong favourite for victory here again. न्यूजीलैंड की टीम ने बल्लेबाजी की है। Joining us for the last coverage of qualifying here in Austin today, 10 p.m. Sky Sports क्या F1. कहें, फिन एलन के बल्ले से जो छक्के और चौकों की बरसात हुई थी, उसका तो भाई अलग ही अंदाज था। 122 रन एक विकेट पर, अब तक 2 गेंदों में 8 रन आ चुके हैं। पहला छक्का लगाया था, दूसरी गेंद पर 2 रन लिए डेवन कॉनवे ने, और उनका स्कोर हो गया 97। 57 इन 37 बॉल, 37 गेंद उन्होंने खेली। अगली गेंद फिर से वही खेलेंगे, बाहर गेंद थी, इसे मान लो एक तरह से ड्राइव कर दिया, गेंद जब तक जाती डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन में बैट्समैन के पास कहते हैं स्लैप कर दिया, जिस हिसाब से गेंद को एक तरह से चाटा मार दिया कि भाई आप मेरे रीजन में हो, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। जी बिल्कुल, और गेंद की जो टर्न थी, गेंद की जो गति थी, थोड़ी सी इसका लाभ उठाते हुए You can see him premeditating a little bit to charge. You got to get momentum back through the ball, and that's a bigger part of the ground as well. शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, Devon Conway, that's what he feels is the right matchup for him right now, and he's trusted it and gone with it. इस मुकाबले में And he missed out in the final for the Worldcup last year. निकली जगह पर ही खड़े रहकर खेल दिया, गेंद पहुंची बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, और जब तक गेंद फील्ड होती वहां से एक सिंगल मिलता हुआ। ये काफी अच्छी बल्लेबाजी है अश्विन। पहली गेंद पर छक्का आने के बाद लगातार बल्लेबाजों ने जिस प्रकार से डबल सिंगल लेकर आराम के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, पहली गेंद पर उन्होंने अपना काम कर दिया है, और इसी प्रकार से रन बनाते गए तो 10-12 रनों का ओवर काफी अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा, लेकिन उतनी मैं कहूँगा तारीफ जैम्पा की, जिस आपने छक्का जाने के बाद वापसी की सारी गेंदें उन्होंने थोड़े ऑफ से बाहर खिलाई हैं, चाहे वो डेवन कॉनवे हो या फिर विलियमसन, तो वो स्लॉट में गेंद नहीं दे रहे। थोड़ी सी अपने आप को चेक किया उन्होंने। 30वां ओवर चल रहा है उनका, अब तक इस ओवर में वो 11 रन दे चुके हैं, 29 रन 3 ओवर में। अगर स्कोर प्रेडिक्शन किया 10.5 रन के औसत से रन बन रहे हैं, 200 रन तो यहाँ से बनते हैं। 125 हो चुके हैं, 9 खिलाड़ी आपके डगआउट में बैठे हुए हैं, 13वां ओवर चल रहा है, तो 200 यहाँ से बिल्कुल पहुंच में लग रहा है। यहाँ बिल्कुल जोरदार अपील, आउट होते हुए यहाँ पर केन विलियमसन एक खराब स्ट्रोक रिवर्स स्वीप करना चाहते थे, और जिस प्रकार से विकेट यहाँ पर दिया, एक झलक में साफ लग रहा है अश्विन स्टंप के सामने पकड़े गए हैं। डीआरएस लेंगे ऐसा लगता है या नहीं, पूछ रहे हैं वहां पर कॉन्वे से, और ले लिया है यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है फंस गए वहां पर, गलती कर गए। मतलब मैं इस शॉट का दीवाना नहीं हूँ, पहले भी मैं इस मैचेस में बात कर चुका हूँ। रिवर्स स्वीप जो है ना, आपका रिवर्स स्वीप इज हाई रिस्क लो रिटर्न वाला शॉट है। पता नहीं क्यों खेलते हैं, केविन पीटरसन जरूर अच्छा खेलते थे, लेकिन आजकल के खिलाड़ी अपना विकेट जाया कर देते हैं। आप अच्छा खेल रहे थे, इसे ऑन ड्राइव करते, लेकिन आपने जो रिवर्स स्वीप लगाने गए, विकेट गया। प्लम थे, सामने थे, मुझे लगा अगर बैट का अंदरूनी किनारा नहीं लगा, जिस हिसाब से वो पूछ रहे थे, मुझे लगा यहाँ पर वो अपना विकेट गवा बैठे। जी हाँ बिल्कुल, साफ झलक रहा है। तीसरे अंपायर देख रहे हैं क्या कुछ हुआ है वहाँ पर मैदान पर, अल्ट्राइज में चेक करेंगे गेंद और बल्ले का संपर्क, क्या जब गेंद बल्ले के पास से गुजरी थी वहाँ पर कुछ कंपन हुई है या नहीं। तीसरे अंपायर जो कि अलग अलग एंगल से चेक कर रहे हैं अल्ट्राइज पर, गेंद जब बल्ले के पास से गुजरी थी ऐसा लग नहीं रहा है वहाँ पर कोई संपर्क हुआ था, गेंद सीधे पैड से टकराई थी, पिचिंग का है, लेकिन एक झलक में साफ ये लग रहा है तो विकेट यहाँ खो देंगे। वो शायद लेना तो चाह नहीं रहे थे डीआरएस, लेकिन जिस हिसाब से उनको डेवन कॉनवे ने कहा कि भाई आप ले लीजिए, मुझे लगता है कि गलती कर गए, बिकॉज जान रहे थे कि शायद ये मिस कर गए। अब देखना लाइन में है कि नहीं, गेंद जहाँ तक लगता है विकेट तो है, यहाँ पर सीधे पैड पर लगी, मिसिंग लाइन में है और हिटिंग द विकेट, तो विकेट जाता हुआ यहाँ पर विलियमसन के रूप में। थोड़ा ऑस्ट्रेलिया खुश होते अगर डेवन कॉनवे का विकेट जाता तो। बिल्कुल कॉनवे का ही विकेट चाह रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया टीम इस समय, क्योंकि केन विलियमसन बड़े आराम के साथ खेल रहे थे, सिंगल्स ले लेके खेल रहे थे। 22 गेंदों में 23 रन उन्होंने बनाया था, 23वें गेंद पर वे आउट होकर वहां पर लौटे हैं, तो कहीं ना कहीं वे बहुत ही शांत अंदाज में खेल रहे थे। कॉनवे दूसरे छोर से अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को दिखा रहे थे, और इस ओवर की पहली गेंद पर जिस प्रकार से छक्का लगाया था उन्होंने, यहाँ पर अब विकेट रह गया।
बिल्कुल, पर विकेट जो भी आए, आप थोड़ा प्रेशर बनाते हैं, नए खिलाड़ी आएंगे, थोड़ा टाइम लगाएंगे। जैम्पा से जो उम्मीद थी, मैं ये कह रहा था कि आप डरे ना, आप छक्का पड़ रहा है पढ़ने दीजिए, लेकिन आप अपने स्ट्रेंथ पे बॉल करते रहिए, विकेट जरूर आपको मिलेंगे। उसी तरह से विकेट मिलता हुआ कॉनवे का जैम्पा का पहला विकेट, 3 ओवर में 29 रन दिए हैं। इस ओवर में अब तक 11 रन दे चुके थे और आखिरी गेंद पर विकेट चटका लिया। 13 ओवर हो चुके हैं, 125, 2 विकेट पर 7 ओवर और शेष हैं। और ग्लेन फिलिप अब आए हैं आईसीसी T20 रैंकिंग में 10वें नंबर के खिलाड़ी हैं, 25 साल के राइट हैंड बैट्समैन। और देखना होगा गेंदबाजी कराई जाएगी तो स्ट्राइक रेट की बात की बात करें तो जिस प्रकार से T20 94 रन, 108 रन की सर्वाधिक संख्या है, 6 अर्धशतक उनके नाम पर हैं। आते ही पहली गेंद को खेल दिया है पैट कमिंस की और गेंद जिस प्रकार से सीमा रेखा के करीब पहुंची है, 1 रन दौड़कर पूरा किया, दूसरे रन पूरा होता हुआ तो एक यहाँ पर आते ही अच्छी शुरुआत कर दी है। बिल्कुल, एक नजर ग्लेन फिलिप्स के रिकॉर्ड पे डाल लेते हैं आपके स्क्रीन पर है। 50 मैचेस के लिए 42 इनिंग में 1094 रन बनाए हैं, एक सेंचुरी लगा चुके हैं, 6 अर्धशतक और 30 मरतबा इन्होंने 30 से ज्यादा रन 14 मरतबा बनाए हैं। 145 का अगर आपका स्ट्राइक रेट है तो आपसे उम्मीद है कि आपके लिए प्लेटफॉर्म सेट है। 16 ओवर चल रहा है, 128 पर 2। ग्लेन फिलिप और डेवन कॉनवे यहाँ पर मैदान में हैं। ग्लेन फिलिप ने आते ही 2 रन लिए थे। इस बार अब थोड़े से रूल में फेरबदल भी हो, अगर आप बैट्समैन ने कैच लगाया है, कैच में आउट होते हैं तो एंड चेंज नहीं होते हैं आपके, आप कोई नए स्ट्राइकर को ही विकेट पे जाना होगा। जी हाँ, बिल्कुल, जो नए नियम आए हैं, लेकिन इसी बीच अगली गेंद से आराम के साथ खेल दिया फिलिप्स ने। कुल मिलाकर डॉट बॉल होती हुई एक अच्छी गेंद थी ये, जिस प्रकार से खेला था और ऑस्ट्रेलिया के सामने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को अब यहाँ से जो रन उन्होंने बनाए हैं उसी रन गति को आगे बढ़ाते हुए वे ले जाएं, जिससे कि स्कोर बोर्ड पर एक बड़ा टोटल खड़ा करके और ऑस्ट्रेलिया के सामने न्यूजीलैंड को जो बल्लेबाजी करने का मौका मिला है, यहाँ पर कम से कम 200 रनों से अधिक बनाए तो बहुत अच्छा। बिल्कुल, लेकिन आंकड़े कहते हैं कि अगर हाईएस्ट रन चेजेस भी देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने ही एक बार न्यूजीलैंड को हराया था। मुकाबला 200 के ऊपर भी होगा ना तो कांटों का तो होगा। अगर बारिश होती है तो फिर देखना होगा, क्योंकि फिर पलटा जो बाद में बैटिंग करती है टीम उसका भारी हो जाता है, क्योंकि फिर आपके कम ओवर होते हैं लेकिन विकेट आपके पास पूरे होते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर विकेटों की बात करें, उनकी टीम अगर बैटिंग की बात करें, उनके अगर बैटिंग चार्ट में तो बहुत मजबूत मैथ्यू वेड आते हैं 8वें नंबर पे, 7वें नंबर पे। तो उम्मीद है ऑस्ट्रेलिया ने इसीलिए शायद गेंदबाजी करने का निर्णय इसी बीच अच्छी गेंद से ड्राइव कर दिया, डीप एक्स्ट्रा कवर पर 4 रन जरूर मिलेंगे यहाँ पर। ये आते हुए ग्लेन फिलिप के बल्ले से इस ओवर में 7 रन आ चुके हैं अब तक। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से चौका लगा था, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और इस बाहर आती हुई गेंद को जिस अंदाज में बल्ले के बीचों बीच लेकर एक सही टाइमिंग के साथ खेल दिया था, गेंद निकल गई थी एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, सीमा रेखा के बाहर एक अच्छा चौका आता हुआ। 7 रन आ चुके हैं यहाँ पर 4 गेंदों में। अगली गेंद थोड़ी शॉर्ट थी, धीमी थी, पुल कर दिया उसे फाइन लेग के क्षेत्र में, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए निकले, जोखिम भरा रन हो सकता था, लेकिन दाद देनी चाहिए बल्लेबाज की यहाँ पर जिस प्रकार से दौड़े। बिल्कुल, रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है T20 में। छोटा फॉर्मेट है, आपको रन चुनाने होते हैं और वही अब तक 9 रन आ चुके हैं। knowing that Glenn Phillips is just going to be hanging back. यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए जिस प्रकार से डेवन कॉनवे ने अब तक 1000 से ज्यादा रन बना लिए हैं T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में, और जिस प्रकार से ये तेज बनाने वाले दूसरे ऐसे बल्लेबाज हैं डेविड मलान के बाद जिन्होंने 1000 रन बहुत तेजी के साथ बनाए। बिल्कुल, he is the second fastest batsman after David Malan to score 1000 runs. What timing is that? That is incredible timing for his first boundary. और यहाँ पर रिकॉर्ड बनता हुआ डेविड कॉनवे खेल रहे 62 रन पर 40 गेंदों का सामना किया है और अब आए हैं ग्लेन फिलिप। इनिशियल 3-4 गेंदें खेली गई, लेकिन फुटवर्क आज उनका दिख नहीं रहा है। राजेश जी, आप देखिए पहली गेंद भी जो चौका जरूर मिला था उनको पैट कमिंस की गेंद पे, लेकिन फुटवर्क बिल्कुल नहीं था उस गेंद पे, उस वाले में। बिल्कुल
फुटवर्क की कमी शुरुआती समय में थोड़ी सी लग रही है और कहीं ना कहीं उनकी शारीरिक परिभाषा देखें अश्विन तो ऐसा लग रहा है कि थोड़े से दबाव में है, न मालूम कौन सा दबाव है। शायद वहां से जब निकले होंगे बल्लेबाजी करने डगआउट में सबने कहा होगा कि आपके लिए प्लेटफॉर्म सेट है, आपको जाकर मारदार करना है और कहीं ना कहीं फिलिप सोच रहे होंगे कि आराम से आकर 1-2 ओवर देखकर पिच को पढ़कर उसके बाद मैं खेलूं। उसी कश्मकश में कहीं ना कहीं थोड़े से हुए फंसते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कमिंस का ओवर जिस प्रकार से पिछला समाप्त हुआ 3 ओवर में 21 रन उन्होंने दिया है और अब एडम ज़ैम्पा आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। बिल्कुल ज़ैम्पा फिर से देखिए गेंद को बाहर रखा, ऑफ स्टंप से ड्राइव जरूर किया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, 1 रन लेंगे, दूसरा रन शायद देने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं, बढ़िया चप्पल थ्रो बिल्कुल डीप से सटीक विकेट के ऊपर, 135 से 2 विकेट पर 15वां ओवर चल रहा है। तो मैं कहूंगा जो एडजस्टमेंट किए हैं ऑस्ट्रेलियन टीम ने, तेज गेंदबाज थोड़े स्लो गेंद से गेंद कर रहे हैं और ज़ैम्पा देखिए ऑफ स्टंप के बाहर खिला रहे हैं, तो अच्छी सूझबूझ भरी गेंदबाजी यहाँ पर। तो फिलिप्स की बात करें तो प्रेशर क्या होता है भाई, एक प्रेशर होता है कि आप जब वर्ल्ड कप में खेलते हैं ना तो उसका एक अलग ही प्रेशर होता है। कई खिलाड़ी उस प्रेशर में निखरते हैं और कुछ खिलाड़ी उस प्रेशर में दब जाते हैं। देखना होगा इस T20 वर्ल्ड कप में क्या होता है। ग्लेन फिलिप्स यहाँ पर अब स्ट्राइक पर होंगे और 135 रन 2 विकेट पर। अगली गेंद फिर से ऑफ स्टंप के बाहर थी, ड्राइव कर दिया खड़े खड़े बिना फुटवर्क के, फिर से वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। डीप पॉइंट रीजन में फील्ड होती बैटिंग के पास मौका एक और रन देने का। 136 पर 2, 15 ओवर चल रहा है, 14.2 ओवर, 136 for 2। जी हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से ओवर चल रहा है यहाँ पर एडम ज़ैम्पा को निश्चित अपनी गेंदबाजी में अब यहाँ पर थोड़ा सा कसाव लाते हुए बल्लेबाजों की परीक्षा लेनी होगी, क्योंकि यहाँ से जिस प्रकार से कॉन्वे बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपना अर्धशतक पूरा कर चुके हैं, 41 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। अगली गेंद लेफ्ट स्टंप के बाहर भटकी हुई गेंद, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ, तो थोड़ा सा दबाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार ऑफ स्टंप के बाहर जो गेंदें कर रहे थे, अब उन्होंने लेफ्ट स्टंप के बाहर गेंद कर दी। सोच रहे होंगे कि बल्लेबाज सोचेंगे क्या कुछ होगा गेंद का विकेट पर, लेकिन वाइड बॉल का इशारा आता हुआ। अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद स्टंप बिखेरा, लेकिन शायद सुरक्षित क्रीज के अंदर मौजूद है। देख रहा है पैर रखने के बाद कहीं गिरे तो नहीं, जिस हिसाब से अपील नहीं की, मुझे लगता है शायद विकेट के अंदर हैं, पर बहुत बढ़िया गेंद, बिल्कुल गेंदबाजी कर रहे हैं। आप देखिए जिस तरह पैर बिल्कुल अंदर था, सुरक्षित, थोड़ा बैलेंस जरूर बिगड़ गया, गिर गए बिल्कुल ऑन द मूव, और लेकिन भाग्यशाली विकेट पे बाहर एज भी लग सकता था, तो बिल्कुल चप्पल थे वहां पर मैथ्यू वेड। बहुत अच्छी गेंदबाजी एडम ज़ैम्पा की, बहुत सूझबूझ से गेंदबाजी। 137 रन 2 विकेट पर, 3 गेंदों में अब तक मात्र 3 रन दिए हैं। जी बिल्कुल, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद इस बार खेल दिया है, बॉलर के ऊपर से गेंद दंडनाते हुए निकल गई 4 रनों के लिए, शानदार चौका आता हुआ। तो वो जो मलाल उनके मन में कॉन्वे के होगा, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद जगह पर खड़े रह के खेलने का प्रयास किया, बल्ले को छोड़ती हुई विकेट कीपर ने स्टंप बिखेरा, पैर डगमगाए, गिरे और उसके बाद उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को हाई बैकलिप के साथ में बहुत ही करारा जवाब दिया है। बिल्कुल अच्छा शॉट, अपने आप को चेक किया और सीधे गेंद को रिसीव कर दिया। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर 4 रन के लिए अपना स्कोर पहुंचाया 67 4 विकेट पर। अगली गेंद और कैच हो सकता था, हवा में जरूर थी गेंद, लेकिन इनसाइड आउट खेलने की कोशिश और 2 रन लॉन्ग ऑन बाउंड्री से आकर फील्ड करते बैट्समैन ने स्कोर पहुंच गया है 69। 44 गेंदें उन्होंने खेली हैं, 143 पर 2, और इस ओवर में अब तक 9 रन आ चुके। ज़ैम्पा के चौथा ओवर है, 38 रन पर 1 विकेट उन्होंने लिया था जब केन विलियम्स को आउट किया था। जी हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से अपने आखिरी गेंद करने के लिए इस मैच में ज़ैम्पा तैयार है, कॉन्वे के लिए आराम के साथ, इत्मीनान के साथ ऑन साइड में खेल कर दिया, स्क्वायर के क्षेत्र में 1 रन पूरा किया, क्या दूसरे रन के लिए जी नहीं, 1 रन से संतुष्ट हुए और 1 विकेट चटकाया है और साबित हुए हैं। 15 ओवर में 144 आपको क्या होता है जब स्टार्ट अच्छा मिल जाता है ना पावर प्ले में, तो फिर आप थोड़ा दबाव बनाने में मुश्किल हो जाता है। तो वही कुछ होता हुआ यहाँ पर 144 2 विकेट पर 15 ओवर हो चुके हैं, आखिरी 5 ओवर का खेल है, लेकिन 5 विकेट आपके पास, आप देखेंगे 8 विकेट आपके पास डगआउट में उपलब्ध हैं, तो उसके चलते मुझे लगता है 200 तो यहाँ से आसानी से बनना चाहिए। राजेश, बिल्कुल न्यूजीलैंड की टीम जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रही है, इस पारी में कम से कम
200 रन वे बना ले, ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा और यहाँ से साफ नजर आ रहा है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से ओवर दर ओवर इस मैच के रनों का वो जो आंकड़ा है वो किस तरह से नजर आ रहा है। पावर प्ले में काफी अच्छी बल्लेबाजी हुई, तीसरे ओवर में 17 रन आए थे और जो काफी महंगा ओवर था। पैट कमिंस का ओवर था जो कि अब तक का सबसे महंगा ओवर रहा। बिल्कुल, पैट कमिंस के उस ओवर में 17 रन बनाए गए थे जब 3 ओवरों में ही उन लोगों ने 48 रन का स्कोर खड़ा कर दिया था। तो डेवन कॉनवॉय picked up a crucial wicket, 144 for 2. देखिए बॉलर के पीछे ऊपर पुल शॉट में आज एक बढ़िया टीम का स्कोर 145 से दो ऑर्डर के बैट्समैन आपके चले। पहले ने 15-16 गेंदों में 42 रन बनाए और फिर कॉनवॉय अभी खेल रहे हैं 71 रन की पारी खेली है, 46 गेंदें उन्होंने खेली है तक और एकदम सेट है यहाँ से एक्सप्लोजन करने के लिए। यह बिल्कुल प्लेटफॉर्म पूरी तरह से सेट है और यहाँ से आखिरी 5 ओवरों में क्या कुछ धमाका होगा इस पर नजर होगी। लेकिन पहली गेंद हेजलवुड की जिस प्रकार से दूसरी गेंद थी माफ करेगा, पहली गेंद पर सिंगल आया था और यहाँ पर डॉट आती हुई पटती हुई गेंद थी और फिलिप्स इस गेंद का सामना कर रहे हैं। उस तरह से बल्ला चल नहीं रहा है फिलिप्स का, एक चौका जरूर लगाया उन्होंने लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि कुछ कड़ा प्रहार करें गेंद पर लेकिन दिशा नहीं दे पा रहे हैं गेंद को। कहते हैं ना कूद के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं, तो शायद जब आए थे थोड़ा फुटवर्क उनका कमजोर था, अब अगर शायद समझ जाए तो बात अलग है, लेकिन थोड़ा फुटवर्क में थोड़ा मुश्किल लगा। 7 गेंदें 7 रन उन्होंने बनाए हैं 145 2 विकेट पर। तो हेजलवुड अब गेंदबाजी कर रहे हैं, इन्होंने भी देखिए वेरिएशन अच्छा किया, पिछली गेंद शॉर्ट गेंद थी और कुछ चर्चा हो रही है गेंद को लेकर, कुछ वहाँ पर और गेंद को थोड़ा सा रोका गया है और to work with in the form of Finn Allen. Not little, he's a big man, but he allowed the man on screen there through his power at the top, Finn Allen. जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन चाहते हैं लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर बल्लेबाजी हुई है न्यूजीलैंड टीम की, टॉस जीता था ऑस्ट्रेलिया ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने पावर प्ले में जिस प्रकार से मारधाड़ की यहाँ पर रिव्यू लिया गया है। वीआरएस मुझे समझ नहीं आया अश्विन के क्या कुछ मैदान पर विकेट लेने की चाहत में ऑस्ट्रेलियाई टीम लगातार प्रयास कर रही है। थोड़े से हतोत्साहित हो गए, मुझे तो बहुत गैप था वहाँ पर, कहते हैं ना कि एक ट्रक निकल जाए इतना बड़ा गैप था और उस गैप के चलते पता नहीं क्यों रिव्यू लिया और रिव्यू यहाँ पर जाया होता हुआ एक रिव्यू न्यूजीलैंड ने जाया किया। जब केन विलियम्स को पता था वो प्लम है विकेट के पास, उन्होंने रिव्यू लिया, लॉस किया और यहाँ पर अब ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना एक रिव्यू को जाया कर दिया। 16वां ओवर चल रहा है, 145 पर 2। ग्लेन फिलिप्स सामना करेंगे हेजलवुड का। अच्छी गेंद थी, छोटी गेंद खेलने की कोशिश की, वहां पर सीधे बॉलर के ऊपर से 4 रन जरूर मिलेंगे लेकिन गेंद जैसे 4 रहे थे वैसे बैट पर आई, ऊपरी ओवर पर ज्यादा लगी बल्ले के। जी हाँ बिल्कुल, टप्पा करके थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठ रही थी, बैकफुट पे जाकर जिस तरह से पंच किया था उस गेंद पर लेकिन गेंद बल्ले के बीचों बीच ना आकर थोड़ा सा ऊपरी भाग पर लगी लेकिन प्रहार जो जोरदार था, पावर जो थी उस गेंद पर स्ट्रोक में वही कारण है कि गेंद सीमा रेखा के पार निकल गई और एक चौका यहाँ पर मिलता हुआ। तीसरी गेंद पर चौका आया है, कुल मिलाकर 149 रन हो चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। 3 गेंदें हो चुकी हैं 16वें ओवर की। फिलिप्स इस समय 8 गेंदों में 11 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, वहीं कॉनवे 71 रन पर है 9 सेकंड पर। अगली गेंद पैरों पर यॉर्कर करने का प्रयास, 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद थी जिसे हल्के से खेल भर दिया मिड ऑन पर। एरन फिंच थे वहां पर कप्तान, उनके पास गेंद पहुंची, 1 रन वहां पर उन्हें मिलता हुआ। तो कप्तान थोड़े से चिंतित नजर आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया टीम के इस समय। बिल्कुल 150 रन इस तरह से पूरे हुए, 16 ओवर चल रहा है, 4 ओवर और आने हैं इसके बाद इस मैच में, तो 150 हो चुका है लेकिन विकेट जो है वो सिर्फ 2 ही आप ले पाए हैं। और वहाँ पर अगर अनुभव की बात करें तो खेल रहे हैं बढ़िया गेंद, एक शॉट किया, शॉर्ट हैंड से खेला और गेंद गली में पॉइंट में बैट्समैन के पास मौका, एकदम तेजी से इस ओवर में अब तक 7 रन आ चुके हैं। तो आप देखिए 7, 8, 9 रन हर ओवर में यहाँ से आ रहे हैं और अगर हम 4 ओवरों में 9-10 रन भी आते हैं तो आप यहाँ से 200 के रन तक तो पहुँच जाएंगे।
थोड़े निराश होंगे अगर 200 नहीं पहुंच पाए न्यूजीलैंड तो। बिल्कुल थोड़े निराश होंगे जरूर, लेकिन कोशिश यहाँ से करनी चाहिए। एक दो बड़े बड़े ओवर जिस प्रकार से पावर प्ले में आए थे, उस प्रकार के ओवर इस पारी के अंतिम पड़ाव में आए तो काफी अच्छा होगा वहां पर न्यूजीलैंड के लिए। वाइड बॉल का इशारा आता हुआ काफी बाहर थी। Atmosphere seems fantastic. Let's find out a bit more about it from Ian Smith's sideline. Smithy. माइंड गेम, बिल्कुल ये माइंड गेम था। ऐसा कह रहे थे कि भाई ये वाइड दे ही नहीं सकते, मैं तो अपना एंड चेंज कर रहा हूँ, लेकिन अंपायर होता है, अंपायर वो तो गॉड ऑफ क्रिकेट होता है भाई। उन्होंने तो हाथ फैला के कह दिया ये वाइड गेम है, आपको फिर से वापस जाना पड़ेगा अपने बॉलिंग मार्क पर और विकेट कीपर को अपने कीपिंग मार्क पर। तो एक रन और इजाफा होता हुआ टीम का स्कोर पहुंचा 152, 2 विकेट पर। अगली गेंद हेजलवुड की छोटी गेंद ऊपर खेल दिया, कैच हो सकता है, देखना कोई खिलाड़ी है कि उसके नीचे, और हेजलवुड ने यहाँ पर दूसरा विकेट लिया। अच्छी गेंद थी, छोटी गेंद थी, जल्दी खेल गए और फिर से उसी तरह टॉप एज लगा। और ग्लेन फिलिप जॉन कह रहे थे कि आज वो अपने रंग में दिख नहीं रहे राजेश, ये हमने सही पकड़ा था। जी बिल्कुल, उनकी शारीरिक परिभाषा बता रही थी, फुटबॉल बता रहा था कि वे आज पूरे लय में नहीं। फिर एक बार शरीर पर आती हुई गेंद खेलना चाहते थे, बल्ले का ऊपरी किनारा लेती हुई गेंद हवा में जिस प्रकार से पहुंची और हेजलवुड ने इस कैच को आसानी के साथ पकड़ लिया। 16 ओवर का खेल हो चुका है, 152 रन है, 3 विकेटों के नुकसान पर। ग्लेन फिलिप्स जो कि 10 गेंदों में 12 रन बनाकर 2 चौके से अब लौटे हैं कदमों से। Just hoping, Dolly, we both come over here a lot. We've got a bit of pain as players and as commentators. उनको छूना तो 47 रन और बनाने होंगे, यहाँ से 48 रन और बनाने होंगे। Even those calls are going our way. Let's not go the early crow here. ऑस्ट्रेलिया के साथ better racing teams, but who else has padded up down there? Chapman, I presume. They think you're left-handed, Nisham Chapman. कि ये मैच जाएगा, लेकिन आज अब कंडीशन की यहाँ तक बात करें तो न्यूजीलैंड एक बहुत अच्छी स्थिति में, यहाँ पर अगर 4 ओवर में आप 50-60 रन जोड़ लेते हैं ना तो मैच को थोड़ा बहुत अपनी तरफ Josh Hazelwood has gone bang hard into the surface, continued to do it, and he's picked up a wicket of Glenn Phillips. मैदान पर और जिस प्रकार के ये बल्लेबाज इन बचे हुए 4 ओवरों में smash back over his head, but a little bit straighter on this occasion, cramps up Phillips. Hazelwood so reliable. नहीं, कई बार आते हैं टीम से अंदर बाहर होते रहते हैं, तो उम्मीद है कि आज ये एक बड़े प्लेटफॉर्म में आप कोलिन ग्रैंडोम इनके पास नहीं है, आप न्यूजीलैंड को खिला रहे हैं यहाँ पर, तो उम्मीद है कि बढ़िया गेंद ऑफ साइड में खेल दिया, मिस फील्ड हुई गेंद, शायद बाउंड्री के पास चली गई। 4 रन, बहुत तगड़ा आउटफील्ड, बहुत ही तेज आउटफील्ड है। गेंद जैसे ही उनके पास से निकली उसके बाद मानो उसने और गति पकड़ ली हो, और ये चौका कॉनवे के बैट से आता हुआ 76 रन पर खेल रहे हैं। 48 गेंदों का सामना किया है उन्होंने, और कॉनवे आज एक अलग मूड में है भाई। जी बिल्कुल, यह चौका आया कुल मिलाकर इस पारी का 14वां चौका था जिस अंदाज में उन्होंने गेंद को खेला, एक आराम के साथ शानदार स्ट्रोक जो कि मिड ऑफ के खिलाड़ी को सटा गई और दे गई 4 रन। वहां पर थोड़े से नाराज है। अगली गेंद पटकी हुई गेंद आज गुरुमन से खेला, डीप वाले के क्षेत्र में 1 रन के लिए निकले, झटपट पैट कमिंस वहां से गेंद को फील्ड करते एक सिंगल ही वहां पर मिलता हुआ। बिल्कुल, निशम की अगर स्टैट्स की बात करें 54 मैचेस के लिए 41 इनिंग में 635 रन बना चुके हैं, 48 उनका हाईएस्ट स्कोर रहा है। 7 दफा उन्होंने 30 से अधिक रन, 30 या 30 से अधिक बनाए हैं। स्ट्राइक रेट 164 का, तो उम्मीद है कि प्लेटफॉर्म सेट है आपके पास, अब बची है 22 गेंदें, आप उसमें किस तरह से ज्यादा रन बटोर सकते हैं और टीम को एक और स्थिति में पहुंचा सकते हैं। 157 पर 3, 16.2। बिल्कुल, यदि हम बल्लेबाजी के कार्ड को देखें न्यूजीलैंड टीम के, जो कि इस समय नजर आ रही है, और शुरुआत काफी अच्छी हुई थी सलामी बल्लेबाज सतत रनों पर, और वहीं 16 गेंदों में और एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने आज न्यूजीलैंड की शुरुआत बहुत ही धुआंधार कर दी थी। कप्तान केन विलियमसन 23 गेंदों में 23 रन बनाकर जम्पा की गेंद पर LBW आउट करार दिए गए, और उसके बाद फिलिप जो कि
अभी अभी पिछले ओवर में हेजलवुड को कॉटन बोल देकर 10 गेंदों में 12 रन बनाकर पवेलियन की तरफ लौटे हैं। जिमी नीशम आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए अभी भी मैदान पर और जिस प्रकार से स्टॉइनिस यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं अब तक इस ओवर में उन्होंने पहली गेंद पर जिस प्रकार से चौकाया था उसके बाद यहाँ पर बल्लेबाजों को रोकने की कोशिश की जा रही है। दो ऐसे बल्लेबाज जो कि एक पूरी तरह से सेट है, मैदान को पूरी तरह से पढ़ चुका है, दूसरा जो अभी अभी मैदान पर इस पिच को पढ़ने के फिराक में पहुंचा है। अब तक 5 गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, सभी महंगे साबित हुए। 2 विकेट हेजलवुड को, 1 विकेट एडम ज़ेम्पा को मिला है अब तक इस पारी में। महंगे साबित हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के सभी गेंदबाज और कुल मिलाकर अब एक परिवर्तन हमारे साथ स्वागत है न्यूजीलैंड के इस पारी के अंतिम पड़ाव में। जी हाँ, जैसे आपने कहा कि बल्लेबाज है और मैं आया हूँ आपका साथ देने यहाँ आखिर के 4 ओवरों के लिए और अभी 5वीं गेंद बाकी हुई। सारे साइड पर लगा, आउटसाइड की बात गति इतनी नहीं है, इसे खेल दिया है लेग साइड की दिशा में, सिंगल मिलेगा। तो स्टॉइनिस द्वारा डिसेंट प्रदर्शन, 4 ओवर में 38 रन, कोई विकेट नहीं। मगर जरूर आप अपने कमेंट्स भेजते रहिए। कमेंट से हमें कई आप बताइए कि आप हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इतने सारे लोग अलग अलग विभिन्न देशों से हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं इस ब्रॉडकास्ट पर और हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। और अभी जो है हमने आपसे सवाल पूछा है ट्विटर पर, एक पोल पूछा है कि क्या न्यूजीलैंड 200 के ऊपर स्कोर बनाएगा या नहीं, यानी कि अभी 39 रनों की आवश्यकता 3 ओवरों में। क्या लगता है आपको? बिल्कुल बना सकते हैं वे यहाँ से 200 रनों को पार कर सकते हैं और कोशिश भी उन्हें करनी चाहिए क्योंकि जिस प्रकार से वे यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं मात्र 3 ही विकेट गिरे हैं और क्या कह रहा है इस समय सभी करें। जी हाँ, और आपके स्क्रीन पर डेविन कॉनवे के बारे में जो अभी तक न्यूजीलैंड के लिए बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं इस पारी में, जो कि साउथ अफ्रीका में उनका जन्म हुआ, उन्होंने अपना युवा जीवन भी साउथ अफ्रीका में बिताया। 100 से अधिक फर्स्ट क्लास मैच खेल चुके हैं और ऑलरेडी साउथ अफ्रीका डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका नाम था, मगर वो साउथ अफ्रीका की टीम में जा नहीं पा रहे थे। इसीलिए 2017 में उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो न्यूजीलैंड जाएंगे और पिछले साल जब उनका डेब्यू हुआ, खास करके टेस्ट क्रिकेट में, उन्होंने कोई समय नहीं वेस्ट किया और अपनी छाप छोड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। या बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से उन्होंने अपनी छाप यहाँ पर छोड़ी है। पहली गेंद पर एक सिग्नल आया है, पैट कमिंस गेंदबाजी कर रहे हैं जिन्होंने अपनी किए थे। अगली गेंद इस बार उछाल कर खेला है जिमी नीशम ने, गेंद पहुंची है सीधे हवाओं में लहराती हुई सीधे दर्शक दीर्घा में और यह आता हुआ झन्नाटेदार छक्का। जी हाँ, झन्नाटेदार छक्का। और अगर आप नीशम को ना ये विड्थ देंगे जहाँ से उन्हें हाथ खोलने का मौका मिले और खास करके लेग साइड के ऊपर, तो फिर वो जरूर ऐसे शॉट मार सकते हैं। अगर आपने फुल डाली ना तो फिर वो स्क्वायर लेग के ऊपर भी मार सकते हैं, यही उनकी स्ट्रॉन्ग जोन है, मिड विकेट स्क्वायर लेग। और यहाँ पैट कमिंस ने जरूर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डाली मगर लेंथ जो है काफी फ्रेंडली थी। अगली गेंद एकदम ऑफ स्टंप के बाहर वाइड और फुल, और इसे कुमार धर्मसेना ने वाइड दिया है। मैथ्यू वेड खुश नहीं है इनसे। जी बिल्कुल, लेकिन बहुत ज्यादा बाहर गेंद थी। 142 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद थी जरूर, लेकिन वो छक्के की मार थी उसकी कहीं न कहीं झन्नाहट थी इस गेंद पर जो कि ऑफ स्टंप के बाहर फेंक दी थी गुस्से में। जी हाँ, और देखिए आइडिया सही थी कि आपको फुल और थोड़ा वाइड ऑफ स्टंप डालना है, मगर ये कुछ ज्यादा ही वाइड हो गई। और थोड़ा फुल भी जाते ना और ट्रैम लाइन के अंदर, जैसे ये वाली गेंद क्योंकि ये फुल थी मगर फील्डर के हाथों में मारी, एक बाउंस पे गई, विकेट नहीं मगर ऐसी लेंथ आप डाल लीजिए। जी हाँ बिल्कुल, निशम को यहाँ पर रोकना है तो इसी तरह की और उन्होंने वहाँ पर समझ लिया, पढ़ लिया और एक सिंगल यहाँ पर आता हुआ तीसरी गेंद पर। कुल मिलाकर इस समय 170 रन बनाए जा चुके हैं। नुकसान पर आप बताएं कि क्या न्यूजीलैंड की टीम इस पहली पारी में 200 रनों के आंकड़े को पार कर पाएगी या नहीं। लगातार आप हमें बताते रहे, जबकि 18वां ओवर चल रहा है, 3 गेंदें हो चुकी हैं और कम से कम 30 रनों की आवश्यकता है। 15 गेंदें शेष है इस पारी की। जी हाँ, अगली गेंद एकदम वाइड आउटसाइड ऑफ स्टंप। इस पर तो कोई शक नहीं है, ये वाइड है क्योंकि ये ट्रैम लाइन के बाहर थी
171 फॉर 3, 17.3 ओवर के बाद ऑलरेडी अभी पहले 3 गेंदों पर कुल मिलाकर देखा जाए तो 10 रन आए हैं और ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत रही है इस ओवर के लिए न्यूजीलैंड के लिए। और अगर डेवन कॉनवे अभी अगर मौका देखे तो 20 रन मार के अपने शतक की ओर जा भी सकते हैं। यह बिल्कुल 20 रनों की आवश्यकता है उन्हें। इसी बीच अगली गेंद ऑफ स्टंप पर पटकी हुई गेंद और उसे खेल दिया बैकवर्ड पॉइंट और इसी प्रकार की गेंदबाजी की आवश्यकता जो उन्होंने गलती की थी उस दूसरी गेंद पर वहां से वे अब वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सिडनी के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड के बीच में मुकाबला चल रहा है जो कि इस प्रतियोगिता का जो कि विश्व कप ऑस्ट्रेलिया के चल रहा है 13वां मुकाबला है। और यहाँ पर मुख्य धारा की बात करें तो पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में 5वीं गेंद करने के लिए तैयार है, लेकिन पैट कमिंस के मन में काफी कुछ चल रहा है कि किस तरह से यहाँ पर नीशम को रोका जाए। जी हाँ, नीशम को अभी आपको जो है वो शॉर्ट बॉल नहीं डालनी है। मुझे देखना है क्या ये राउंड द विकेट आ रहे हैं या ओवर द, बल्कि ओवर द विकेट ही आ रहे हैं। ये गेंद फुल टॉस ऑफ स्टंप के बाहर से बल्ले पे आई नहीं नीशम के लिए, इन्होंने मार दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में और तेजी से 2 रन लिया। टिम डेविड थे वहाँ, उन्हें काफी अंदर आके दौड़ना पड़ा तो 2 रन मिलेंगे। अच्छा ओवर रहा है अभी तक न्यूजीलैंड के लिए 13 रन, मगर अभी फिनिश न्यूजीलैंड को भी अच्छी करनी है, पैट कमिंस को भी अच्छी करनी है। पैट कमिंस यही चाहेंगे कि रन न दे। और देखिए नीशम को आप अगर राउंड द विकेट आएंगे तो फिर इसमें ये भी खतरा है कि आप गेंद उनके अंदर लेके आएंगे, फिर वो आप उनके हिटिंग जोन में आ जाते हैं, फिर वो आराम से आपको शॉट मार सकते हैं। अगली गेंद ये गति में परिवर्तन, हॉरिजॉन्टल बैट शॉट इन्होंने खेला लॉन्ग ऑन के दिशा में, सर्कल पे ही टप्पा खा गई, मगर 2 रन मिल जाएंगे। इसी के साथ ओवर समाप्त, 15 रन आए इस ओवर में। बिल्कुल एक बड़ा लंबा ओवर, महंगा ओवर जाता हुआ पैट कमिंस का, और पैट कमिंस ने 46 रन दिए हैं। जी हाँ, उन्हें मिला नहीं है तो वे भी काफी परेशान नजर आए मैदान। जी हाँ, आज जिस प्रकार उन पर हमला किया गया पिच पहले ही पावर प्ले में और फिन एलन जैसे बल्लेबाजी कर रहे थे तो जो है थोड़ा कमिंस को कमबैक करना मुश्किल रहा। मगर राजेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि पिच को देखकर यहाँ स्कोर चेस हो सकता है और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ज्यादा बुरा भी नहीं शायद महसूस करेगा, कॉन्फिडेंट होंगे कि हम ये स्कोर चेस कर सकते हैं। अभी 176 18 ओवर में आपको शायद 24 रन और न्यूजीलैंड टारगेट करेगा। यहाँ जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने शुरुआत किया था मुझे लगा कि 210 बनेंगे, मगर यहाँ 210 बनना ना मुझे थोड़ा अभी मुश्किल लग रहा है क्योंकि 34 रन आने हैं फिर आखिर के 2 ओवर में। क्या लगता है आपको राजेश? बिल्कुल 34 रन में थोड़े से मुश्किल है, लेकिन पूरा कर पाएगी मिचेल स्टार्क आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद नए ओवर की मिलता हुआ तो आखिरी के 12 गेंदें बचाने का प्रयास करेंगे यहाँ पर बल्लेबाजों को रोकने के लिए, और पहली गेंद काफी अच्छी थी। जी हाँ, और ये रहे प्रोजेक्टेड स्कोर्स आपके स्क्रीन पर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर यही रेट पे चले तो 195 बनेंगे, मगर मुझे लगता है इससे ज़्यादा ज़रूर बन सकते हैं। 12 रन प्रति ओवर के स्कोर पे अगर चल गए तो फिर 199 यानी कि ऑलमोस्ट 200, और 14 ओवर के स्कोर प्रति ओवर पर चल गए तो 203। तो 203 ज़रूर एक ऐसा लक्ष्य होगा जो न्यूजीलैंड ट्राई करेगा अचीव करने के लिए। और अगली गेंद फुल और स्ट्रेट और अंदर आती हुई, नीशम के अंदर आती हुई, मगर ये इनसाइड एज रख के इनके पैड पर लगी, सिंगल जरूर मिलेगा उसी के साथ। या बिल्कुल, और बाल बचे गेंद थी वे बल्ला काफी बढ़िया बिखर जाते, बाल बचे यहाँ पर अच्छी गेंद थी और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की गेंद थी, काफी तेज थी। और पहली 2 गेंदों में 2 डॉट आए हैं और 2 सिंगल आए हैं अब तक, तो अच्छी गेंद स्टार्क ने यहाँ पर शुरुआत की है अपने इस ओवर की। जी हाँ, बहुत ही अच्छी शुरुआत। 178 फॉर 3 18.2 ओवर के बाद कॉनवे सामना कर रहे स्टार्क का। ये गेंद उनके पैड पर एक हाथ से खेला, स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर ने डाइव मारा मगर उनके पहले बाउंस गया। स्टॉइनिस द्वारा बहुत ही अच्छा एफर्ट, मगर 2 रन मिलेंगे यहाँ कॉनवे को। बिल्कुल प्रयास काफी अच्छा किया था उनके पहले जिस प्रकार से गिरी, 2 रन दौड़कर पूरे कर लिए।
We'll judge as we say. We'll judge the scores when both teams have batted. काफी देर तक हवा में थी और बाल-बाल बचे वहाँ पर के खिलाड़ी वहाँ near 200 wicket or a 190 wicket. Looking at it, just felt a little bit dry यहाँ पर earlier. जी हाँ, और आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हमारे 5,06,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं यूट्यूब पर। ये जो गिनती है हमें बढ़ाते रहनी है, ऊपर जाते रहनी है और आपको हमारे साथ बने रहना है। डिजिटल टू स्पोर्ट्स के माध्यम पर हमें सब्सक्राइब कीजिए, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें फॉलो कीजिए। 1000 और बढ़ गए आपके कहते ही। जी मेरे कहते ही, यानी कि ऐसे ऐसे बढ़ गए और ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है हमारे मित्र चंद्रेश जैसे कहते हैं, ये आपका मंच है, आप ही के लिए बनाया है। जी हाँ, बिल्कुल आपका ये मंच है, आपके लिए बनाया गया ये मंच डिजिटल टू स्पोर्ट्स। और इस समय जबकि स्टार्क अच्छी गेंदबाजी करे, फुल टॉस पे लेकर खेला है यहाँ पर जिमी ने खेल दिया है डीप मिडल के क्षेत्र में। एक रन दौड़ कर पूरे दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर और एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। इस ओवर में कुल मिलाकर अब तक 6 रन आए हैं 5 गेंदों में। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मुश्किल हो जाएगी 200 के आंकड़े को पार करने के लिए न्यूजीलैंड। जी राजेश, जरूर अभी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि एक बहुत ही बड़ा ओवर आना है और ये ओवर में अच्छी फिनिश करनी है। कॉनवे अभी सामना करेंगे, अभी चौका या छक्का आना बहुत आवश्यक है न्यूजीलैंड के लिए। और अभी कॉनवे ये गेंद फुल आउटसाइड द ऑफ स्टंप, बहुत अच्छा शॉट, मिड ऑफ और कवर के बीचों बीच गैप पकड़ी 4 रनों के लिए। जब ये बल्ले से गई तब मुझे लगा नहीं कि ये चौका होगा, मगर क्या टाइमिंग। जी बिल्कुल आराम के साथ खेला गया स्ट्रोक था, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो गैप था मिड ऑफ और कवर के बीच में से पीछे पूरा खाली था, उन्होंने बस उस प्लेसमेंट किया, गैप में से गेंद को निकाली और जैसे ही मिड ऑफ के बगल से गेंद निकली, खिलाड़ी दौड़ रहे थे लेकिन गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर और एक अच्छा चौका यहाँ पर निकला ही पड़ा। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन चौका यहाँ डेवन कॉनवे का। आज उनकी बल्लेबाजी बहुत ही खूब रही है, बहुत ही फैंटास्टिक रही है। 186 फॉर 3 पर अभी न्यूजीलैंड बल्लेबाजी करे तो 14 रन चाहिए आखिरी ओवर में 200 का पड़ाव पार करने। कुल मिलाकर जो है 19 ओवर हो चुके हैं, जैसा कि आप जानते हैं। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो स्कोर डेवन कॉनवे ने 89 पर आकर बल्लेबाजी अभी कर रहे हैं। 57 बॉल्स का सामना किया है और निशब 15 पर खेल रहे हैं। जो उन्हें एक शुरुआत मिली थी फिन एलन द्वारा, इसके बदौलत जो है वो एक नींव बनाई उन्होंने इस विशाल स्कोर के लिए। नए ओवर की शुरुआत जॉस हेजलवुड आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर अच्छी गेंद थी, डॉट बॉल के साथ शुरुआत बेहतरीन शुरुआत यहाँ और हेजलवुड ने अपना T20 खेल ही बदला है। जिस प्रकार उन्होंने पिछले साल चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी गेंदबाजी की थी, फिर T20 वर्ल्ड कप में जो इनकी जीत हुई उनका भी वो अहम हिस्सा बन गए थे। इस साल वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में थे। हेजलवुड ने एक बदलाव किया अपने व्हाइट बॉल गेम में, क्योंकि 2019 के वर्ल्ड कप में उनका चयन नहीं हुआ था। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक की, कुल मिलाकर जो है सिर्फ 12 डॉट बॉल पूरे पारी में। हम जो एशिया कप में देख रहे थे 30 से अधिक डॉट बॉल हो रहे थे। न्यूजीलैंड हैव बीन बिजी थ्रू आउट, मतलब वो चौके छक्के भी आए मगर वो स्ट्राइक रोटेशन बहुत ही अच्छी हुई है। बिल्कुल, और यही कारण है कि रनों की संख्या जो स्कोर कार्ड है वो लगातार बढ़ती हुई आगे की तरफ नजर आई है। लेकिन आखिरी 2 ओवर ऑस्ट्रेलिया के दृष्टिकोण के हिसाब से काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। 2 गेंदों में 2 रन आए हैं। अब तक इस ओवर में 188 रन हो चुके हैं। 3 विकेटों के नुकसान पर विकेट उनके पास काफी थे, लेकिन अब यहाँ से 4 गेंदें शेष हैं इस पारी की। और इस बार उछाल कर खेला है, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के पास जब तक पहुंचते एक सिंगल वहां पर मिलता हुआ। जी हाँ, एक ही रन और पहले 3 गेंदों में सिर्फ 3 रन आए हैं और कॉनवे अभी सामना करेंगे। देखिए 11 रनों की आवश्यकता 200 पार करने और कॉनवे को 11 रनों की आवश्यकता अपना शतक बनाने के लिए। तो अगर ये 3 गेंदों पर कॉनवे ने ऐसा ही कुछ किया ना तो क्या पता पॉसिबल है। या बिल्कुल अपना शतक यदि उन्होंने यहाँ पर पूरा कर दिया तो न्यूजीलैंड का दोहरा शतक पूरा हो जाएगा। मैदान पर देखना है कि क्या कुछ होता है इन आखिरी 3 गेंदों में। सामना कर रहे हैं कॉनवे इस समय हेजलवुड की गेंद का ओवर द विकेट स्टंप के बिल्कुल पास से। ये क्या किया उन्होंने, स्कूप मारने का प्रयास, खेलने का प्रयास था लेकिन गेंद चली गई थर्ड मैन। जी हाँ, स्कूप मारने का प्रयास, गेंद गई थर्ड मैन के क्षेत्र में और 3 रन मिलेंगे इसी के साथ।
192 पर अभी बल्लेबाजी कर रहे डेवन कॉनवे और 192 पर बल्लेबाजी कर रहे न्यूजीलैंड। 2 गेंद अभी बाकी है, तो कॉनवे की सेंचुरी तो नहीं होगी मगर न्यूजीलैंड जरूर, बल्कि ये भारी किनारा लगा इसीलिए थर्ड मैन के पार गया था। जी हाँ, बिल्कुल बाहरी किनारा लगा था, खेलना चाहते थे उसे जिस तरह से के अंदाज में फाइनल के क्षेत्र में, लेकिन ऑप्शन के काफी बाहर और आखिरी समय में बल्ले से जिस प्रकार से टकराव हुआ, शॉट थर्डमैन सर्कल के अंदर था, गेंद पहुंची डीप थर्डमैन के क्षेत्र में और इसी बीच दौड़कर 3 रन बड़ी तेजी के साथ पूरे कर लिए हैं दोनों ही बल्लेबाजों ने। निशम ने इस बार गेंद को खेला है, सिंगल वहां पर मिलता हुआ इस सिंगल को दूसरे निकले हैं, थ्रो हो सकता था स्टंप पर, बाल बचे हैं, दूसरा रन पूरा कर लिया है। जी हाँ, दूसरा रन पूरा कर लिया और डेवन कॉनवे अपना सेंचुरी नहीं बनाएंगे मगर यहाँ अभी भी एक अगर आखिरी गेंद पर छक्का गया तो 200 रन जरूर बन सकते हैं। जी हाँ, न्यूजीलैंड टीम के इस समय यहाँ पर आखिरी गेंद पर कुछ बड़ा प्रहार किया गया, लेकिन शुरुआत हुई थी जिस प्रकार से रन बन रहे थे, जिस प्रकार से आंकड़े दिखलाई पड़ रहे थे, आखिरी गेंद उछाल कर खेला है, गेंद हवा में और 6 रन सीमा रेखा के बाहर, और यह आता हुआ धंधराता हुआ जिमी निशम का एक बड़ा छक्का, और इसी के साथ 200 रन पार। और इससे क्या होता है कि आप एक साइकोलॉजिकल पड़ाव पार करते हैं, एक मानसिक पड़ाव पार करते हैं, और जबकि आप देखते हैं ना कि 190 के आसपास तो ऑस्ट्रेलिया सोचे कि ठीक है हमने रिस्ट्रिक्ट किया, अगर 200 बन गए तो 200 आप सुनते हैं ना तो कुछ अलग लगता है। तो निशम का ये बहुत ही अच्छा शॉट, क्रीज में काफी अंदर गए, पता था कि यॉर्कर डालने वाले और इसे को फुल लेंथ डिलीवरी में कन्वर्ट करके इसे उठा दिया और न्यूजीलैंड खुश है 200 रन का पड़ाव पार करके इस पहले मैच में जो कि सुपर 12 का खेला जा रहा है सिडनी में। और आप जैसे आपके स्क्रीन पर यहाँ देख सकते हैं 201 रनों की आवश्यकता अभी ऑस्ट्रेलिया को, और कुछ ही समय में हम ना एक बार स्कोर कार्ड की ओर देख लेंगे। मगर राजेश जी, न्यूजीलैंड से कुल मिलाकर बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। या बिल्कुल, यहाँ पर पहली पारी में जब बल्लेबाजी का आमंत्रण मिला था न्यूजीलैंड की टीम को, उन्होंने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, मैच की पहली गेंद से लेकर पूरे 20 ओवरों तक उन्होंने अपनी बल्लेबाजी को वहां पर बनाए रखा, और जिस प्रकार से उन्होंने आज के मुकाबले में बल्लेबाजी की है, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की पहले ही मुकाबले में एक बड़ी परीक्षा दे दी है। मुकाबला जिस प्रकार से हुआ है अब तक पहली पारी का न्यूजीलैंड की टीम ने यहाँ पर एक अच्छे खेल का और प्रदर्शन किया और shortish boundary. That is a real momentum booster. They've had the momentum all innings, but to close it out with a maximum, get them to 200. Remarkable start by everyone involved in the New Zealand setup so far, and a lot for Australia to think about. 200 for 3 after 20. जी हाँ, क्योंकि सतह जैसी है ना, मुझे लगता है रन्स बहुत आसानी से पड़ेंगे। और आप एक बार फिर से अगर बॉलिंग कार्ड को देखें तो ये आकलन लगा सकते हैं कि कैसे सब पर रन पड़े। ऐसा कोई गेंदबाज नहीं है जिससे आज रन नहीं पड़े, मगर मैं कभी भी कहूंगा कि हेजलवुड की गेंदबाजी अच्छी थी क्योंकि उन्होंने फिन एलन को आउट किया, फिर आखिरी ओवर में भी लार्जली उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी। स्टॉइनिस ने जो 5वें बॉलर की जो भूमिका थी, मुझे लगता है कि ढंग से एक निभाई, क्योंकि सिर्फ 38 रन दिए। कई बार जो है ये भी मुझे लगता है इस पिच पर इतना बुरा प्रदर्शन नहीं है। मगर ऑल इन ऑल जो है पैट कमिंस बहुत ही उनका एक मुश्किल दिन रहा। 46 रन उन पर पड़े 4 ओवर में, तो यहाँ एक काफी अच्छी बल्लेबाजी न्यूजीलैंड द्वारा। और मुझे अभी भी लगता है कि पॉसिबिलिटी तो है कि ऑस्ट्रेलिया ये स्कोर चेस कर पाएगी। या बिल्कुल संभावना इस प्रकार से लग रही है। ऑस्ट्रेलिया आज 201 रनों के लक्ष्य को जो कि उनके सामने न्यूजीलैंड की टीम रखा है, इस पहले मुकाबले में इस पड़ाव को वे पार करती हुई नजर आएंगी। लेकिन मैदान पर क्या कुछ होगा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में, आज के इस मुकाबले में हम आपके साथ लगातार बने हुए हैं। बस आपको हमारे इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल बटन दबाना है यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो।
यदि आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो करना न भूलें, क्योंकि हम सब जगह आपका इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया टीम दूसरी पारी में जब बल्लेबाजी करने आएगी तो 200 रनों का एक मनोवैज्ञानिक दबाव उन पर होगा, और क्या उस दबाव के तहत उनकी बल्लेबाजी पावर प्ले में लड़खड़ा जाएगी? क्या इस दबाव को, इस मैदान को, इस पिच को और अपने घरेलू मैदान को घरेलू दर्शकों के सामने अच्छे खेल का प्रदर्शन दिखाते हुए पावर प्ले में एक धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए जीत के करीब बढ़ेगी? काफी कुछ सवाल है इस मैच को लेकर, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ने आज यहाँ पर एक अच्छी शुरुआत की है। न्यूजीलैंड की टीम ने आज बल्कि बहुत अच्छी शुरुआत की है, और 200 रन बनाना आसान नहीं है। और पहले दिन पर आपने जैसे फिल एलन को लाइसेंस दिया कि आप जाके शुरुआत से आक्रमण कीजिए, और उसी के साथ जो है न्यूजीलैंड ने वो मोमेंटम पाया जल्दी, और वो मोमेंटम से जो है वो एक लीड बन गई, और डेवन कॉनवे ने ठान लिया कि वो पूरी पारी बल्लेबाजी करेंगे। तो जरूर एक अच्छा प्रदर्शन, 200 रन उन्होंने बनाए, मगर कभी भी लग सकता है कि शायद जो है गेंदबाजी करना इस पिच पर मुश्किल है, और न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों को भी थोड़ा एक मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। उनके पास जरूर मिचेल सैंटनर जैसे स्पिनर है, ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी, लॉकी फर्ग्यूसन जैसे तेज गेंदबाज हैं, अच्छी अटैक है, मगर ऑस्ट्रेलिया की भी अच्छी अटैक है। और ये देख लीजिए हाईएस्ट T20 वर्ल्ड कप इनिंग स्कोर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 94 मारे थे उमर अकमल ने 2014 में, वो एक बहुत ही यादगार मैच था। ग्लेन मैक्सवेल और हैरी फिंच ने भी ऑलमोस्ट वो स्कोर चेस किया था, और डेवन कॉनवे ने आज 92 नॉट आउट, और 88 जो क्रिस गेल ने मारे थे जी ओवल में, उसमें ब्रेट ली पर एक छक्का मारा था जो ओवल के बाहर उन्होंने मारा था, वो एक यादगार शॉट था। तो ऐसे ऑस्ट्रेलिया के सामने ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट स्कोर, सेकंड हाईएस्ट स्कोर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द T20 वर्ल्ड कप डेवन कॉनवे द्वारा। और इसी के साथ न्यूजीलैंड ने जो है 200 रन बनाए हैं अपने पहले मैच में, और सुपर 12 के इस पहले मैच में, जो कि टूर्नामेंट का ये 13वां मैच है। क्या बिल्कुल सुपर 12 का यह पहला मुकाबला जिसका इंतजार हम सभी कर रहे थे, और इस पारी की, इस सुपर 12 के पहले मुकाबले की पहली पारी जिस धमाकेदार अंदाज में हुई, सभी दर्शकों को और खासकर हमारे दर्शकों को इस पारी का बहुत आनंद आया होगा। जिस प्रकार से बल्लेबाजी की के मैदान पर ऑस्ट्रेलियाई समर्थकों के सामने आज ऑस्ट्रेलियाई यहाँ पर बड़ी परीक्षा हुई है। दूसरी पारी में क्या यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की परीक्षा लेंगे, यह हम देखेंगे कुछ ही समय बाद। जी हाँ, और आप बताइए हमें, आपको क्या लगता है कि दूसरे पारी में क्या होगा? कमेंट्स आप भेजते रहिए, क्योंकि कमेंट से हम जानना चाहते हैं एक कि आपके क्रिकेट के बारे में क्या क्या अनुमान है, दूसरे जो आपके हैं कहाँ लोकेशन है, आप कहाँ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या बिल्कुल, आप अपना नाम और कहाँ से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसके बारे में भी हमें बताते रहें। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं कि क्या कुछ हुआ बल्लेबाजी में। कॉनवे की मैदान पर किस प्रकार से यहाँ पर 92 रन बनाए 58 गेंदों में, और एक बहुत ही अच्छी पारी यहाँ डेवन कॉनवे द्वारा। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2 छक्के जो है वो डाउन द ग्राउंड है, लॉन्ग ऑन के दिशा में अपने कदमों का प्रयोग किया, आराम से इसे उठाया। एक जो छक्का था जैम्पा के सामने, वो देखकर काफी मजा आया। क्लासी बल्लेबाज है, 30 सिंगल लिए, 8 डबल लिए, और 3 बल्कि 2 ट्रिपल्स भी थे, और 60 चौके। और अगर ऑफसाइड लेग साइड का लेखा जोखा देखा जाए तो ऑलमोस्ट 50-50। अगर 51 में से 51-49 होता है, 52-48 होता है, आप 50-50 कह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। और मैदान की चारों ही तरफ से खेल कर उन्होंने रन बनाए हैं, चाहे सिंगल हो, डबल हो, चौके हो, सारा मैदान उन्होंने कवर करते हुए आज अपने रनों का अंबार यहाँ पर बनाया। जो एक्चुअली बाउंड्री ज्यादातर आए ना कवर्स के दिशा में आए हैं और डाउन द ग्राउंड आए हैं, और लेग साइड पर इतने नहीं। और ये रहा जो मैं कहूँगा ये शेख जायद रोड है आज, जो दुबई का जो शेख जायद रोड है, यहाँ पे बुर्ज खलीफा भी मौजूद है, और बाकी के सारे जो बड़े बिल्डिंग मौजूद है, वैसा ही ये लगता है। पहला विकेट गिरा 5वें ओवर में, उसके पहले फिल एलन के वजह से वो इतने बड़े बड़े इमारत बने थे, और उसके बाद जो है थोड़ा सा स्टेबिलिटी के साथ खेलना पड़ा, मगर डेवन कॉनवे ने राइट थ्रू
रखते रहे मोमेंटम को, और फिर जो है आखिर में आकर जिमी नीशम ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 26 रन मारे 13 गेंदों में, और इसी के साथ 200 रन बन गए न्यूजीलैंड के। यहाँ बिल्कुल न्यूजीलैंड के 200 रन यहाँ पर आज इस पहली पारी में पूरे हो चुके हैं, और 201 रनों का एक बड़ा सा लक्ष्य न्यूजीलैंड की टीम ने ऑस्ट्रेलिया के सामने दे दिया है दूसरी पारी में जीत के लिए। और क्या कह रहा है इस समय समीकरण? Welcome back here to the ये पहली बार है कि न्यूजीलैंड ने T20 वर्ल्ड कप में 200 से अधिक रन मारे हैं। इसके पहले उन्होंने आयरलैंड के सामने 198 रन मारे थे 5 विकेट के नुकसान पर 2009 के T20 वर्ल्ड कप में, जो कि इंग्लैंड में खेला गया था। तो ये पहली बार है कि T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में न्यूजीलैंड ने 200 के ऊपर रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के सामने बड़ा हम कह सकते हैं जिस प्रकार से रन संख्या बनाई है यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम ने, गेंदबाजों को एक मनोबल मिलेगा, एक अच्छी गेंदबाजी करेगा, और यदि पावर प्ले में न्यूजीलैंड की गेंदबाजों की गेंदबाजी चल गई तो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों की काफी बढ़ सकती है। जी हाँ, वो बढ़ तो सकती है मुश्किलें, मगर मुझे लगता है अभी भी ऑस्ट्रेलिया को लगेगा कि चेस कर सकते हैं, क्योंकि पिच जो है उसमें ज्यादा कुछ है। पिच में पूरी तरीके से मुझे लगता है बल्लेबाज जो है एक समय पर अपना स्थान बनाए रखे फिर मार सकते हैं, मगर अभी जो है हम तैयार है रन चेस के लिए, क्योंकि एरन फिंच और डेविड वार्नर आ गए हैं मैदान में और गेंदबाजी स्टार्ट करने आ रहे ट्रेंट बोल्ट। जी हाँ, 18 नंबर के ट्रेंट बोल्ट वो आ रहे हैं गेंदबाजी स्टार्ट करने, और डेविड वार्नर सामना करेंगे। डेविड वार्नर जो पिछले साल के T20 वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, और अभी वो सामना करेंगे ट्रेंट बोल्ट का, और एक स्लिप मौजूद है, और बाकी के फील्ड को जरूर देखना होगा। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि चेस करना है ऑस्ट्रेलिया को 201 रन। यहाँ बिल्कुल 201 रनों की आवश्यकता है ऑस्ट्रेलिया को इस मुकाबले को जीतने के लिए। दोनों ही सलामी बल्लेबाज इस समय मैदान पर पहुंच चुके हैं और उनके मन में चल रहा है जीत का लक्ष्य धमाकेदार शुरुआत देने की। डेविड वार्नर जो कि 12 बल्लेबाज हैं T20 मुकाबले में अब तक 96 मैचेस खेल चुके हैं, 95 पारियां, 2850 रन वे बना चुके हैं, 100 रन नाबाद इनकी सर्वाधिक रन संख्या है, और 24 अर्धशतक वे लगा चुके हैं निशान। जी, और क्या बेहतरीन शुरुआत, 2 स्लिप लगाए आउटसाइड दी ऑफ स्टंप से खेलना चाहते थे पॉइंट की तरफ। फिन एलन ने यहाँ पर भी एक बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है, डाइव मारा उन्होंने लेफ्ट साइड पर और रोकी इस गेंद को, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। एरन फिंच के करियर को देखा जाए T20 इंटरनेशनल ये उनका 100वां पारी है, बल्कि 100 पारी खेल चुके हैं, बल्कि 3013 रन, हाईएस्ट उनका 172 जो कि T20 इंटरनेशनल में सबसे सर्वाधिक स्कोर है। वो रिकॉर्ड कुछ समय के वो रिकॉर्ड उनका बना रहा है, बल्कि उसके पहले वो 156 मार चुके हैं एक बार इंग्लैंड के सामने। एवरेज इनकी औसत इनकी ऑलमोस्ट 34, स्ट्राइक रेट 144, और जैसा आप देख सकते हैं 18 और 47 टाइम्स बॉल पास, तो बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड। हाल ही में ओडीआई क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, T20 विश्व कप में ये अभी कप्तानी कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, और चाहेंगे कि यहाँ अच्छा योगदान दे T20 क्रिकेट में अपने टीम के लिए एक अच्छा योगदान दे बल्लेबाजी से, यही वे चाह रहे होंगे। कप्तान है, दबाव है, और पूरी टीम उनके आसपास जिस प्रकार से घूम रही है। अगली गेंद बैकफुट वेकर से कट कर दिया, गेंद जब तक पहुंची है कवर्स के क्षेत्र में सर्कल पर पहली 2 गेंदें ट्रेंट बोल्ट ने यहाँ पर कर दी है। उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर को देखें T20 क्रिकेट में है, एक 51 मुकाबले तक खेल चुके हैं, 12 विकेट उनके नाम पर है, और जिस प्रकार से 34 रन देकर 4 विकेट उनकी शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। जी, उनका अगर आप एवरेज देखें और स्ट्राइक रेट देखें वही बड़ी बात है। इकोनॉमी ठीक है 7.9, इससे थोड़ा कम होना चाहिए, मगर पावर प्ले में डालते हैं इसका और फिर स्लॉग ओवर्स में डालते हैं तो जरूर कभी-कभी रन्स पड़ते हैं, मगर पिछले 2-3 साल उन्होंने T20 क्रिकेट में बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, और ये बेहतरीन गेंद, और डेविड वार्नर पूरी तरीके से स्क्वायर अप हुए थे, टिपिकल ट्रेंट बोल्ट शेप अवे कर गई और एज खा के गई है, जहां सेकंड स्लिप मौजूद थे उन्हें हटाया गया वहां से 4 रनों के लिए।
बिल्कुल, यदि दूसरी स्लिप होती तो यहाँ पर कैच जिस प्रकार से निकला था और डेविड वार्नर का विकेट गिर सकता था, लेकिन बहुत ही शानदार गेंद थी। यहाँ पे बॉल नहीं है हमारा, वरना हम आपको बताते कि क्या बढ़िया तरीके से काफी अच्छा सीम का और जो स्विंग डेविड वार्नर जैसे बल्लेबाज को आपने पूरी तरीके से स्क्वायर अप किया। जिमी नीशम फर्स्ट स्लिप पर मौजूद थे, डाइव जरूर लगाई मगर काफी दूर थी उनसे। क्या बिल्कुल उनकी पहुंच से काफी दूर थी, गेंद चली गई थर्ड मैन के क्षेत्र में, 4 रन यहाँ पर मिलता हुआ। और जी वो ऐसे ही उनका मिजाज ही वैसा है कि जब मौके भी निकलते हैं हाथ से तो वो ना थोड़ा ऐसे एक अपना हंसी दिखा देते हैं, क्योंकि प्रेशर वो फिर कम हो जाता है। और ट्रेंट बोल्ट बल्कि न्यूजीलैंड के सारे खिलाड़ी जो है उनका एक अलग ही अंदाज होता है, अलग ही अप्रोच होता है। अगली गेंद फुल इसे खेल दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में, सिंगल मिलेगा और अभी फिंच आएंगे सामना करने। आयरन फिंच जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जो 2 वर्ल्ड कप फाइनल वो खेले, एक 50 ओवर का जो मेलबर्न में था और फिर जो T20 वर्ल्ड कप में जो इन्होंने खेला पिछले साल, दोनों बार उन्होंने ज्यादा रन नहीं बनाया न्यूजीलैंड के सामने। और यहाँ कुछ एक्सचेंज ऑफ वर्ड, शायद इसीलिए ट्रेंट बोल्ट हंस रहे थे। डेविड वार्नर उनसे कुछ कह रहे हैं और याद कीजिए कि एक समय पर ये दोनों टीममेट हुआ करते थे सनराइजर्स हैदराबाद में। यहाँ बिल्कुल आदान प्रदान शब्दों का वहाँ पर मैदान पर हुआ। गेंद और बल्ले की नोकझोंक में 5 रन आ चुके हैं अब तक 5 गेंदों में। आखिरी के ओवर का और ये गेंद बहुत ही शानदार, बल्ले को चकमा दे गई। फिर एक बार सीम का अच्छा इस्तेमाल, लेकिन इस बार अंदर की तरफ गेंद को ले आए और डॉट बॉल के साथ यह पहला ओवर 5 रन देकर समाप्त होता हुआ। जी हाँ, 5 रन देकर समाप्त होता हुआ एक बहुत अच्छा शुरुआत। 4 रन जरूर आए, एक चौका जरूर आया, मगर वहाँ लगा ना कि वो जो है शेप उनको मिल रहा था और एज भी खाया। और यहाँ पे है अभी स्कोर कार्ड ऑस्ट्रेलिया का 1 ओवर के बाद, और डेविड वार्नर ने 5 गेंदों का सामना किया, 5 रन मिले और फिर एक चौका भी जरूर आया था। और इसी के साथ जो है शुरुआत हुई है ऑस्ट्रेलिया की पारी की। और अभी ऑस्ट्रेलिया के बाकी बल्लेबाजों को अगर देखा जाए तो मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, टिम डेविड, मैथ्यू वेड, क्या सॉलिड बल्लेबाजी है नंबर 7 तक। और फिर जो 4 मेन गेंदबाज, तो ये रही ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप। और न्यूजीलैंड जो है जानेंगे कि 200 रन चलो हमने बनाए हैं, मगर तभी भी जो है एक खतरा जरूर है। और आपका स्वागत है सबसे पहले थैंक यू निशिल। तो 200 रन बनाए हैं, प्रेशर थोड़ा ऑस्ट्रेलिया पे होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है 15-20 रनों से शॉर्ट पड़ गए। आप 10 ओवर में 97 पर 1 थे, आपके 9 विकेट डगआउट में बैठे थे। आपसे उम्मीद ये थी कि आप 225 तक पहुंचते। शायद ऑस्ट्रेलिया ने उसके बाद अच्छी गेंदबाजी करी निशाद। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने बीच मिडिल ओवर्स में थोड़ा कमबाइन जरूर किया। अगर आप ओवरऑल देखेंगे, और ये बोल्ड टिम साउदी को यहाँ स्लॉग स्वीप करना चाहते थे डेविड वार्नर, मगर मुझे लगता है इनसाइड एज लगा, पैड पे गया और फिर स्टंप्स पे गई। पहली सफलता यहाँ न्यूजीलैंड के लिए। बहुत बड़ा विकेट, बहुत ही चतुर गेंदबाजी कर रहे हैं। पहला ओवर हमने देखा जिस हिसाब से ट्रेंट बोल्ट ने किया, और साउदी ने तो पहली गेंद पे ही एक करारा झटका दिया। एक गेंद पुल करने गए थे शॉट, लेकिन पैड पहले बैट पर लगी, फिर पैड पर लगी, फिर उछली और वापस उनके ग्लव में लगकर नहीं, बल्कि पैड पे बैट पे लग के गई वापस। ओह बिल्कुल, तो उस तरह से 3 बार ये गेंद उनके पास लगते हैं। अनलकी डिसमिसल होता हुआ डेविड वार्नर अब पवेलियन की ओर लौट रहे हैं। 5 रन बनाए हैं उन्होंने 6 गेंदों पे, और एक बहुत बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर न्यूजीलैंड द्वारा। जी हाँ, बहुत बढ़िया, मगर यहाँ पे जरूर भाग्यशाली रहे। बड़ा शॉट खेलने के लिए आमंत्रित किया, मुझे लगता है जो है ढंग से एक तो आई नहीं बल्ले पे, मारा उन्होंने, और फिर जो लॉब कर गए, फिर वो उनके बैट के फॉलो थ्रू में वो बैट को लग के फिर गई है स्टंप्स पे। बिल्कुल, पर ऐसे होता है कि आप जब ब्रेव होते हैं ना तो फिर पहले ओवर बहुत बढ़िया ओवर था, ट्रेंट बोल्ट का चौका जरूर एज पर था, लेकिन उसके बाद शायद मुझे लगता है जिस हिसाब से उन्होंने ये सीखा होगा कि किस तरह से न्यूजीलैंड ने पेस पे पहला विकेट आया वो 1.1 ओवर में 5 पर 1। अब आए हैं मिचेल मार्श, बढ़िया फॉर्म में, उम्मीद होगी यहाँ पर अच्छा खेलेंगे। मिचेल मार्श जो कि हमने आपसे पूछा था, वो थे प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ द T20 वर्ल्ड कप फाइनल पिछले साल का।
तो जरूर जो है यहाँ से उम्मीदें होंगी ऑस्ट्रेलिया को एनी गेम राइट ऑन द मनी पर शेप आ रही है, देखिए शेप कैसे ऐसे ला रहे हैं एकदम अवे लीव कर रही है मिचेल मार्श से। तो एक अच्छी शुरुआत यहाँ मिचेल मार्श की तरफ जो कि उन्हें डॉट बॉल कराई है। रहे विकेट मिल गया उनको कई बार गेंद पहले बैट पे फिर पैड पे और वापस बैट पे लगकर बहुत निराश डेविड वार्नर। पर आप कर क्या सकते हैं, ऐसी स्थिति में आप मुस्कुरा ही सकते हैं और अपने आप को पकड़ नहीं पाएंगे। 5 पर एक अच्छी गेंद थी, ऑप्शन के बाहर कटर थी लेकिन रन देने की कोशिश की, लेकिन वहां पर उतने ही चपल एक रन लिया बहुत बढ़िया रनिंग एक रन लिया। थोड़ा हेजिटेशन था मगर देखा कि हो सकता था, तो चलो इसी के साथ मिचेल मार्श ने अपना खाता खोल लिया। मिचेल मार्श जो कि क्रिकेटिंग फैमिली से आते हैं, उनके पिता जो जेफ मार्श बहुत ही सक्सेसफुल ओपनर थे ऑस्ट्रेलिया के लिए। 1987 के वर्ल्ड कप में वो खेले थे, वो वर्ल्ड कप विनर थे। फिर जेफ मार्श 99 में ऑस्ट्रेलिया के कोच भी रहे थे, तो जो वर्ल्ड कप उन्होंने जीता था। उनके भाई शॉन मार्श भी काफी एक सफल खिलाड़ी रहे थे, डेब्यू पे टेस्ट सेंचुरी मारी थी और जरूर उन्होंने अपने आईपीएल के डेब्यू में ऑरेंज कैप जीता था, जो पहला आईपीएल था। तो यस, इट्स अ क्रिकेटिंग फैमिली। अभी मगर मिचेल मार्श जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पिछले साल के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में वो थे प्लेयर ऑफ द मैच। बिल्कुल, जेफ मार्श जैसे आपने कहा डेविड बून के साथ बहुत बढ़िया ओपनिंग, मतलब एक खतरनाक ओपनर में होते थे। पहले नंबर पर आते थे गॉर्डन ग्रिंज और डेस्मंड हेन्स वेस्ट इंडीज के, और फिर डेविड बून जेफ मार्श की जोड़ी भी बहुत खतरनाक थी। तो उस क्रिकेटिंग लेगेसी से आते हैं यहाँ पर मिचेल मार्श नंबर 3 पर गेंदबाजी करते हैं, अच्छा स्ट्राइक रेट रखते हैं और ऑफ लेट एक तीसरे नंबर पर जो खिलाड़ी स्टीव स्मिथ के जाने के बाद ढूंढ रहे थे, मेरे ख्याल से एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी को मिला है। और पिछले साल जो उन्होंने स्टीव स्मिथ को नंबर 4 पर बल्लेबाजी करवाई थी। स्टीव स्मिथ हाल ही में वो स्टीव स्मिथ नहीं रहे जिन्हें हम जानते हैं जो बड़े बड़े रन मारते हैं, मगर बल्कि उनका खास करके जो लिमिटेड ओवर्स गेम है ना, वो इतना डेवलप नहीं हुआ। देखिए, आप उनको टेस्ट क्रिकेट में देखते हैं कि 50 प्लस एवरेज, वो भी 55 प्लस एवरेज है उनकी, मगर उनकी ओडीआई एवरेज कुछ अर्ली 40s में, T20s में इतने वो कंसिस्टेंट नहीं रहे। तो स्टीवन स्मिथ जरूर टेस्ट क्रिकेट में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है, मगर वनडे क्रिकेट में अगर आप ऐसे कंप्लीट बैटर्स की बात करें तो मुझे लगता है विराट कोहली इसीलिए थोड़े आगे हैं। बाबर आजम अपनी इस पायदान पर आगे देखेंगे कितने कंसिस्टेंट होकर अगर आ सकते हैं, मगर इसीलिए जो विराट कोहली थोड़े स्टैंड आउट रहेंगे बिकॉज ही हैज बीन परफॉर्मिंग अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स। Absolutely, he's a legend. The way he plays across 3 formats, he has got that variation. He can play with temperament, with patience. He can play test match, as well as the aggression that he has got to play in one day and T20s are unmatchable. So Virat Kohli being Virat Kohli, but here we are between Australia and New Zealand. बहुत बढ़िया शुरुआत न्यूजीलैंड ने की थी, 200 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया ये गेंद से आगे बढ़कर एरन फिंच ने पुल कर दिया, सीधे गेंद लॉफ्ट कर दिया, बल्कि मिड ऑन लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से बहुत लंबा छक्का, बहुत बढ़िया शॉट। यहाँ पर गेंद को पहले ही पढ़ लिया था, आगे बढ़े, छोटी गेंद थी और सीधे इसे रसीद कर दिया स्टैंड में। 6 रन के साथ 7 रन पर पहुंच गए एरन फिंच। 5 गेंदों का सामना किया है, तीसरा ओवर चल रहा है, 13 पर 1, बहुत बढ़िया शॉट यहाँ पर। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया शॉट और 102 मीटर पूरा स्ट्रेंथ लेकर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के मतलब एकदम अंदर पहुंचा दिया वो स्टैंड्स में, टॉप टियर बल्कि नहीं सेकंड टियर में जाता हुआ ये। और अश्विन, यहाँ एक कमेंट है काफी इंटरेस्टिंग है, कोई कह रहे हैं कि कैमरन ग्रीन को खिलाना चाहिए था, मगर कैमरन ग्रीन को देखिए फिंच और वार्नर को ओपन करेंगे। आप नंबर 3 पर मिचेल मार्श को रखना चाहेंगे जैसे उन्होंने पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में प्रदर्शन किया था, इस जगह को मेरिट भी करते हैं। फिर आपके पास जो है टिम डेविड, मैक्सवेल जैसे और स्टॉइनिस जैसे फिनिशर्स है, तो फिर वो और वेड ऑफ कोर्स, तो कहाँ पे आप इन्हें कैमरन ग्रीन को फिट करेंगे? मगर जी हाँ, कैमरन ग्रीन को टीम में जरूर होना आवश्यक है, मगर इसी बीच फुल गेंद ड्राइव किया स्ट्रेट एकदम 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया शॉट, एक और ये फिंच के बल्ले से निकलता हुआ सीधे बॉलर के पीछे खेल दिया। 4 रनों के लिए 17 रन हो चुके हैं, 201 रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए। और इन दोनों राइवलरी है ना, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड गजब का क्रिकेट खेलते हैं। पहला विकेट वार्नर के रूप में अनफॉर्चुनेट तरीके से आउट हुए, लेकिन उसके बाद जो एरन फिंच ने शायद अब सोचा है कि भाई
really good strike for Aaron Finch. Psychologically, you just wonder whether that might kickstart him. से गेंद उतनी ही तेजी से पहुंची गली में, पर बैट्समैन का कोई मौका नहीं रन लेने का। 3 गेंदें हो चुकी हैं, 10 रन अब तक दिए हैं। लेकिन बिल्कुल निशाद, आपके पॉइंट पे अगर बात करें तो कैमरन ग्रीन मुझे भी लगता है कि खेलना चाहिए था, पर किस जगह खेलते। एक बार शायद आपके स्टॉइनिस अगर कहीं असफल होंगे तो शायद उसकी जगह वो खेल पाए मुझे। जी हाँ, मगर कैमरन ग्रीन ने जो है एक भूमिका निभाई थी ऑस्ट्रेलिया के लिए टॉप ऑफ द ऑर्डर में। क्या वो मिडिल ऑर्डर में वो रोल निभा सकते हैं जो स्टॉइनिस निभाते हैं? और स्टॉइनिस ने पिछले साल चलो मिडिल ऑर्डर में वो काम तो किया, मगर प्रिडोमिनेटली जो है स्टॉइनिस का बेहतर इस्तेमाल आप टॉप में कर सकते हैं। और वो स्थिति ऐसे थी, इसीलिए उन्हें वहाँ बल्लेबाजी करनी पड़ी और मैच भी उन्होंने जिताया। ऐसा नहीं कि नहीं जिताया, मगर ज़्यादा बैट्समैन और मैक्सवेल, टिम डेविड और वेड को रखेंगे और मुझे लगता है अभी स्टॉइनिस को थोड़ा एक प्रमोशन का बिल्कुल शायद मिलना भी चाहिए, बिकॉज आपके पास नीचे तो खिलाड़ी हैं, खेल जब उतरते हैं 7वें नंबर पे तो आपको एश्योरेंस देते हैं कि आप जाकर, तो मुझे वही शायद एक वीक लगता है कहीं स्टॉइनिस के लिए। अच्छे से ड्राइव किया, दोनों खिलाड़ी 4 रन, बहुत बढ़िया। बल्कि आउटसाइड एज था पर अच्छी फील्डिंग, गेंद को रोक लिया अंदर। मेरे को लगा था जैसे गेंद जा रही थी चौका जरूर था, लेकिन अगर रोक पाए तो अपने टीम के लिए 2 बहुमूल्य रन यहाँ पर बचाए और इन दोनों के साथ अब फ्रेंच का स्कोर पहुंचा 13 और तीसरा ओवर चल रहा है और 19 रन अब तक आ चुके हैं। बहुत बढ़िया फील्डिंग, बहुत बढ़िया शानदार फील्डिंग। गेंद को रोका, अपने खिलाड़ी को दिया और उसने थ्रो करा जब तक के बैट्समैन के पास मौका 2 रन देने का। 19 रन 1 विकेट पर। तीसरा ओवर चल रहा है। वर्ल्ड अब तक इस ओवर में 12 रन दे चुके हैं, 17 रन अब तक पड़े हैं 2 ओवर में। पहले ओवर में 5 रन दिए थे, अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, इसे फिर ऑन द राइज खेल दिया बैट्समैन। वहीं खड़े रहे क्रीज में, कोई मौका नहीं। 2 ओवर समाप्त हुए, 17 रन अब तक। 3 ओवर समाप्त हुए, 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और एरन फिंच बल्लेबाजी करे 13 पर, मिचेल मार्श बल्लेबाजी करे 1 पर। और आपको क्या करना है, हमारे साथ कमेंट्स में बने रहना है। कमेंट्स आप भेजते रहिए, क्योंकि हम ये तो जानना ही चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं, बल्कि हम ये भी जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है इस मैच के बारे में। आज जो है ये पहला मैच है सुपर 12 फेज का, और इसके बाद शाम को भी एक मैच है जो कि है इंग्लैंड बनाम अफगानिस्तान, जो कि खेला जाएगा पर्थ के मैदान में। पर्थ के बड़े नए मैदान में ये एक पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मैं कहूँगा वर्ल्ड टूर्नामेंट का पहला मैच है। और ये जो है अभी फिलहाल मैच समरी, न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी की थी और फिर उन्होंने 200 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए। डेवन कॉनवे 92 बनाकर नाबाद रहे। फिन एलन ने जो शुरुआत दी थी ब्रिलियंट, 42 ऑफ 16 बॉल्स। और ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज जो है थोड़ा सा ऑब्वियसली उन्होंने स्ट्रगल जरूर किया, मगर ओवरऑल न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने अपना काम किया। बट इट इज स्टिल पॉसिबल कि यहाँ पे चेस हो जाए। मिचेल मार्श अभी सामना करेंगे मिचेल सैंटनर का। मिचेल बॉलिंग टू मिचेल सैंटनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर। और अभी 2 फील्डर जो डीप में रखे वो है एक स्क्वायर लेग और एक लॉन्ग ऑफ। बिल्कुल निशाद, अगर मैचअप्स की बात करें तो यहाँ पर मुझे लगता है इस सऊदी को भी लाएंगे। जब तक एरन फिंच है थोड़ा पुअर फॉर्म से गुजर रहे हैं, पिछले मैच में प्रैक्टिस मैच में अच्छा खेले थे, लेकिन इस सऊदी शायद जल्दी बॉलिंग करते देखेंगे। लेकिन मिचेल सैंटनर इस बीच आए हैं गेंद को और इस गेंद को स्वीप कर दिया। गेंद सीधे 4 रनों के लिए जाती हुई बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री पर 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा अब टीम का 23। चौथा ओवर चल रहा है, तो ये गेंद पहले पढ़ लिया था, इसे उन्होंने पोजीशन किया अपने आप को। और क्योंकि ये इन्होंने ऐसे स्पिन करते हैं ना लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, इन्होंने ये ऐसी पटक दी सीमर की तरफ, सीम पर पटक दी थी। और एंटिसिपेशन देख लीजिए और प्लेसमेंट देख लीजिए, क्या बेहतरीन प्लेसमेंट थी। एक स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद थे और जो है एक शॉट फाइंडिंग और उनके बीचों बीच ये शॉट मारा। मगर अश्विन, मिचेल मार्श ने पिछले साल भी यही किया था ऑस्ट्रेलिया के सामने, बल्कि ऑस्ट्रेलिया जब भी लक्ष्य का पीछा कर रहा था, खास करके सेमीफाइनल और फाइनल में वो नंबर 3 पर आए थे। विकेट जब जल्दी गिरा था तभी। और फील्ड में अभी इसी के साथ बदलाव, एक फील्डर जा रहे हैं डीप फाइन लेग की ओर और जो है लॉन्ग ऑफ आ रहे हैं मिड ऑफ पर, और मिड ऑन जा रहे हैं लॉन्ग ऑन पर, और डीप मिड को लाया सर्कल के अंदर। बिल्कुल शायद उम्मीद होगी, लेकिन इस गेंद को ऊपर खेल दिया, सीधे 6 रन जाता हुआ दिख रहा है। गेंद खेला और सीधे स्टैंड में, बहुत बढ़िया शॉट, ज्यादा फुटवर्क नहीं था, खड़े खड़े शॉट को खेला और सीधे इनसाइड आउट 6 रनों के लिए बहुत ही उम्दा शॉट। डीप कवर के ऊपर से ये छक्का आता हुआ टीम का स्कोर
इस ओवर में भी एक छक्का चौका और यही खासियत है मिचेल मार्श की। पिछले साल भी लक्ष्यों का पीछा कर रहे थे ना, तभी ये आकर ऐसे पारी करते थे और जल्दी विकेट गिर गए थे दोनों सेमीफाइनल और फाइनल में, मगर तभी भी इन्होंने जो है आके ऐसे बल्लेबाजी करना शुरू किया था जिससे विपक्षी दल पर एक दबाव बन गया। बिल्कुल T20 जो है वो कहते हैं इस गेम ऑफ नो स्लिप अप्स, आप थोड़ा सा भी मौका देंगे तो आपके हावी हो जाएंगे, वही शायद होने देना नहीं चाहते। और अब तक 11 रन बना चुके हैं 6 गेंदों पे, अच्छी गेंद की थोड़ी सी पुल किया इस बार लेंथ को और बैट्समैन ने उसे ऑन साइड में खेल दिया और गेंद जब तक अंपायर के पास बैट्समैन ने भी अपने छोर को बदला, टीम का स्कोर अप हो गया 30 रन। चौथा ओवर चल रहा है, इस ओवर में 11 रन आए हैं। शायद मुझे लगता है इस सोधी थोड़ा यहाँ पर गेंदबाजी करने आते तो ठीक रहता जी। और अभी फिंच के लिए फील्ड में परिवर्तन, लॉन्ग ऑफ और डीप जगह बनाई और इन्होंने खेल दिया सीधे कवर्स के हाथों में विकेट। क्या बढ़िया विकेट, सीधे बॉल। इसको भी देखिए इनसाइड आउट खेला था, लेग स्टंप से पहले बाहर निकल गए थे, ऑन साइड में खेलने गए और वहां पर केन विलियमसन शायद ने कैच लिया है। बहुत बढ़िया नंबर 4 मेरे ख्याल से सोइनिस को आना तो चाहिए, थोड़ा सा आप चेंज करिए, एग्रेशन बनाए रखिए, उनको भी खेलने का मौका दीजिए बिकॉज आपके पास अच्छे खिलाड़ी हैं, तो सोइनिस आना तो चाहिए। पर देखना है अब ऑस्ट्रेलिया खेमे में डगआउट में क्या करते हैं वो लोग। दूसरा विकेट गया, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट, जैसे हम कह रहे ईश सोधी आना चाहिए था, लेकिन उसी समय मिचेल सैंटनर ने ये विकेट लेकर सिद्ध कर दिया कि भाई जिसलिए आप मुझे लाए थे मैंने वो काम कर दिया। आयरन फिंच एक बार फिर खराब फॉर्म से गुजर रहे थे, यहाँ भी गलत शॉट, बल्कि प्लेसमेंट गलत थी। मुझे लगा कि आइडिया जरूर सही था, प्लेसमेंट गलत हुई, सीधे फील्डर के हाथों हाथ मार दिया। और या तो फिर इन्हें और ऐसे ऊपर मारना चाहिए था इंस्टेड ऑफ हिटिंग इट दैट फ्लैट। तो होता है ये कभी-कभी, मगर इसी के साथ जो ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनता हुआ 30 रन पे 2 विकेट, चौथा ओवर अभी खत्म हो चुका है। मिचेल सैंटनर जो कि लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उन्हें लाया गया था गेंदबाजी करने। और अभी दूसरे छोर पर क्या कुछ बदलाव होगा, बल्कि मैक्सवेल को लाया अब ना अश्विन को छोड़े, या तो बवाल बचेगा या तो फिर वो 4-5 गेंद खेल के आउट होगा। मैक्सवेल जब भी आते हैं तो कुछ करके जाते हैं भाई, इनसे नहीं, मगर हाल ही में आपने देखा है कि वो बॉल 1 से अटैक करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, और बहुत पुअर फॉर्म से गुजर रहे पिछले 8 मैचों में इन्होंने 8 मैचों में 10 रन का डबल डिजिट क्रॉस नहीं किया, तो उम्मीद है आज शायद वो अच्छा खेले। मिचेल मार्श और ग्लेन मैक्सवेल देखना है क्या कर पाएंगे। सैंडर की आखिरी गेंद जिसे वहां पर खेल दिया और इस तरह से अब 4 ओवर में 30 रन 2 विकेट पर जाया हो चुके हैं। मिचेल मार्श 12 रन बनाकर खेल रहे हैं, 8 गेंदें खेली हैं और मैक्सवेल अभी आए हैं। तो देख रहा है किस तरह से अब किस तरह से ये मैच का रुख पलटता है। टिम साउदी अब दूर वाले छोर से मिचेल मार्श को ये गेंद फिर से खेल दिया, पुल कर दिया, देखा खिलाड़ी अंदर है सर, उसके ऊपर से खेल दिया और 4 रन और मिलेंगे। बहुत अच्छा पोजीशन, क्योंकि जो फील्डर थे वो सर्कल के अंदर थे, जो फाइन लेग वाले फील्डर थे, और पैड पर डाली हुई गेंद आराम से इसे प्लेस किया उनके ऊपर से और 4 रन मिल गए। और यही बात है कि मिचेल मार्श अपना अटैकिंग इंस्टिंक्ट बना के रखते हैं और यही खासियत है, इसीलिए पिछले साल वो T20 वर्ल्ड कप में इतने बड़े सक्सेस थे। पाकिस्तान के सामने भी जो मैच था उनका सेमीफाइनल, उसमें इन्होंने इतने बड़े रन नहीं मारे, मगर जल्दी विकेट गिरने के बाद उन्होंने ये इंश्योर किया कि पाकिस्तानी गेंदबाज और हावी ना पड़ जाए उनके टॉप ऑर्डर पर। और ये गेंद डिफेंड किया है, थोड़ी सी हवा में थी मगर सेफ एरिया में थी और ये जाएगी ऑफसाइड की तरफ, कोई रन नहीं मिलेगा। मैं देखना चाहता हूँ मैक्सवेल का क्या एक अप्रोच होगा, क्योंकि हाल ही में मैंने देखा है कि वो बस बड़े शॉट लगाने में ही इंटरेस्ट रखते हैं। जो शायद बिल्कुल प्रॉब्लम है। आप देखिए वेस्ट इंडीज किस तरह से हारा, इतनी अच्छी टीम है लेकिन सारे रॉन्ग शॉट कल आपने देखा जो बाहर हुए टूर्नामेंट से, बिकॉज आप खाते से आप एग्रेशन नहीं दिखा सकते, तो वही शायद उन्होंने किया। और ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, अपील तो हुई है लेकिन गेंद शायद ऊपर लगी, बहुत ऊपर थी। अच्छे लंबे कद के खिलाड़ी हैं मिचेल मार्श, गेंद उनके पैड के ऊपर लगी तो शायद वो एक हो सकता है निर्णय कि गेंद विकेट को मिस कर रही हो, लेकिन बहुत तेज अपील विकेट कीपर और कॉनवे द्वारा और बॉलर टिम साउदी द्वारा, लेकिन DRS के लिए नहीं मेरे ख्याल से यहाँ पर एड्रियन हॉलस्टॉक जो कि अभी एलीट पैनल में मौजूद है, साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, बहुत ही अच्छी अंपायरिंग
के लिए जाने जाते हैं। और ये गेंद के रिप्ले की तरफ अगर हमने देखा, ये अभी क्रॉस सीम थोड़ा इन्होंने सीम पर नहीं डाली। जी हाँ, मुझे लगता है इम्पैक्ट थोड़ा मार्जिनली आउटसाइड दी ऑफ स्टंप था। और जैसे इन्होंने कलाइयों को घुमाया तो फिर गेंद ऐसे क्रॉस सीम आई और शायद थोड़ी स्लो भी थी, जल्दी खेल गया शॉट को। इस गेंद को ऊपर खेला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, देखना क्या चुका कि स्टैंड में जाएगी ये गेंद, वहां पर खिलाड़ी मौजूद और दूसरा विकेट, बड़ा विकेट, तीसरा विकेट जाता हुआ। क्या बढ़िया गेंदबाजी, देख लिया था कि गेंद को ये लंबा शॉट खेलने जाना है, छोटा पीछे खींचा और गेंद सीधे फील्डर ने कोई गलती। डिफेंडिंग चैंपियंस अंडर प्रेशर, डिफेंडिंग चैंपियंस आर अंडर प्रेशर, यही तो बात है। बिल्कुल, आप कह नहीं सकते। अब तक ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी था, 15 मैच खेले थे, 10 में ऑस्ट्रेलिया जीती थी, 5 में न्यूजीलैंड। लेकिन जिस हिसाब से इस मैच में कदम रखते से जो कमाल किया न्यूजीलैंड की टीम ने, बहुत बढ़िया कैच। और क्योंकि सिंपल लग रहा था बट ही हैड लॉस्ट इट इन द लाइट्स, और बीच में उनका हाथ ऐसे गया था क्योंकि लाइट सीधे उनके आंखों में थे, और फिर जो है ऑलमोस्ट बॉल फिसली उनके हाथों में। जिमी नीशम आज जरूर उनके ट्वीट देखेंगे इस मैच के बाद कि वो क्या कहते हैं इस कैच के बारे में, आज के प्रदर्शन के बारे में। अगर आप ट्विटर पे हैं तो जरूर उनको फॉलो कीजिए, और अगर आप ट्विटर पे हैं तो हमें भी फॉलो कीजिए, जो कि है डिजिटल टू स्पोर्ट्स, और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारे साथ बने रहिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। 5,07,000 सब्सक्राइबर अभी हमारे हो चुके हैं, और आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये रहा रन बनाए उन्होंने, 12 2 चौके, कैच आउट द्वारा, जो ना ट्विटर पे व्यंग्यात्मक कमेंट्स के लिए जाने जाते हैं, बहुत ही अच्छा कमेंट्स करते हैं। बिल्कुल आप फॉलो करिए और हमें भी फॉलो करिए। हम एक नया प्लेटफॉर्म मिलने वाला, जिसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। सरप्राइज, यानी जब गेंदबाज आता है गेंदबाजी करने, और मैं चलो छुपा देता हूँ, मैं ऑप्शन जा रहा हूँ, मैं ऐसे छुपा के आ रहा हूँ, तो आपके लिए सरप्राइज होता है जब भी गेंद डिलीवर की जाएगी, तो हम भी आपके लिए ऐसे ही सरप्राइज लेकर आएंगे। टेंशन ना लीजिए, इससे आप आउट नहीं होने वाले, आप बस सरप्राइज होने वाले, क्योंकि आपको भी इसका मजा आएगा, हमें भी मजा आएगा इसका। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा निशाद ने। और अब स्टोइनिस आए हैं, तीसरा विकेट गिरने नंबर 5 पर मार्कस स्टोइनिस जाने जाते हैं ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए। आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स से खेलते थे और अच्छे खिलाड़ी हैं, ऊंचे कद के, ताकत से शॉट लगाते हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, फील्डिंग में भी जबरदस्त है। ऑफ लेट मैं कहूँगा इनका प्रदर्शन उतना खास नहीं रहा। एक बात हम कह रहे थे, कैमरन छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन अगर एरन फिंच कप्तान नहीं होते तो उनकी जगह मैं खिला लेता उनको। नहीं, और वही बात है, क्योंकि एरन फिंच कप्तान नहीं होते तो शायद अपना स्थान भी नहीं रखते अभी ऑस्ट्रेलिया के टीम में, वहाँ खेलते थे। जी हाँ, ओडीआई क्रिकेट में बल्कि उनका स्ट्रगल इतना ज़्यादा हुआ था कि उन्हें वो रिटायरमेंट लेना ही पड़ा, और कोई विकल्प नहीं था यहाँ ऑस्ट्रेलिया के लिए। और अभी जैसा कि आप जानते हैं, पैट कमिंस भी वहाँ पे कप्तानी करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ज़रूर एक विचार करेंगे ऑस्ट्रेलिया। वो एक रिक्त स्थान हो सकता है जहां पर इसके बाद वाले मैच में। लेकिन हाल में ये टूर्नामेंट बड़ा लंबा टूर्नामेंट है, नवंबर 13 तक फाइनल होना है। अब तक तो बहुत मैचेस खेलने एरन फिंच को, और देखना है लॉकी फर्ग्यूसन जो कि 150 के आसपास डालते हैं, इस साल भी जो है उनका इस्तेमाल हर बार किया जाता है ऐसे मिडिल ओवर्स में। गुजरात टाइटंस में थे और उनका इस्तेमाल ऐसे मिडिल ओवर्स में किया जाता है, गति से डालते हैं, तो फिर उनकी एक अच्छी भूमिका बन जाती है इस ऐसे स्थितियों में। बिल्कुल। और न्यूजीलैंड के पास देखिए आप, टीम साउदी ट्रेंड गोल, लोकी फर्ग्यूसन, सैंटनर, अच्छे गेंदबाज हैं, तो उम्मीद है कि इस प्रेशर को जाया नहीं करेंगे। और जिस हिसाब से विकेट लेने के बाद आप है ना, फिर हर प्लेयर में जोश आ जाता है, एक उमंग आ जाती है। वो देखिए गेंद पे लपक रहे हैं, गेंद को जाने नहीं दे रहे और एक दबाव बनाए रखा है। और देखिए ऑस्ट्रेलिया अपने ही मैदान में 35 पर 3 छठा ओवर हो चुका है और 70 रन करीब बनाए थे पावर प्ले में न्यूजीलैंड ने। अब ये देखिए इस पावर प्ले का आखिरी ओवर है, 35 रन पे 3 हो गए, या 35 रन पे 3। और अभी सामना करेंगे मार्कस स्टोइनिस। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर इसे ड्राइव किया और क्या खाता नहीं खुला, नहीं बल्कि पॉइंट पे फील्ड किया गया। और इसी के साथ जो है और एक पॉइंट, अगर याद करें डिफेंडिंग चैंपियंस लूजिंग अ मैच इन द नेक्स्ट टूर्नामेंट, तो
इतने ज्यादा आपको उदाहरण नहीं मिलेंगे T20 वर्ल्ड कप में। और मुझे लगता है वेस्ट इंडीज जो कि 2016 का टूर्नामेंट जीते थे, फिर 2020 में वो अपना पहला मैच हार गए थे, फिर 2014 में श्रीलंका जीती थी, मगर 16 मैचों में वो जीते थे। तो ऐसे आपको ज्यादा उदाहरण नहीं मिलते, ये थोड़ा अलग हो सकता है। और ऊपर से आप डिफेंडिंग चैंपियन हैं, आप मेजबान हैं, बिल्कुल आप होस्ट हैं, आप डिफेंडिंग चैंपियन हैं और आपकी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। पेपर पे देखिए तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं। तो उम्मीद तो ये थी कि आप अच्छा खेलते, लेकिन इतिहास अलग होता है, हर दिन नया इतिहास लिखा जाता है। T20 वर्ल्ड कप में आज कुछ ऐसे ही होता है। न्यूजीलैंड अगर इतिहास की बात करें तो पिछड़ता हुआ ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन अभी इस टूर्नामेंट में वो इस मैच में बहुत रिकॉर्ड देख लीजिए एक बार, एक नजर ग्लेन मैक्सवेल के रिकॉर्ड पर। निशान स्ट्राइक रेट 150.4 वही सबसे बड़ी, और फिर बेस्ट स्कोर 145, यानी कि उनमें काबिलियत है वो लंबे पारियां खेलने की। और अभी जरूर थोड़ा अप्रोच बदलना पड़ा। देखिए अभी डिफेंड कर रहे हैं स्ट्रेट बैट के साथ, क्योंकि उन्हें पता है कि 3 विकेट गिर गए। बिल्कुल आप स्थिति को देखिए तो आपको थोड़ा आपके पास शॉट्स में रिवर्स स्वीप अच्छे लगाते हैं, अच्छे शॉट्स लगाते हैं, मतलब शॉट्स लगाते हैं ग्लेन मैक्सवेल। तो ये गेंद उठी हुई गेंद थी, इसे पुश कर दिया मतलब बाहरी किनारे लेकर थर्ड मैन पर बैट्समैन के पास मौका 1 रन लेने का और टीम का स्कोर अब धीरे धीरे सरकते हुए 37 रन 3 विकेट पर छठा ओवर चल रहा है। तो पावर प्ले में जिस हिसाब से गजब ढाया है न्यूजीलैंड ने, वो जो 200 रन बनाए थे एक मनोबल के रूप में स्कोर अचीव किया और फिर आते हुए जी हाँ। और ये विकेट देखिए पहला वाला विकेट था वो तो भाग्यशाली रहे थे, जिस प्रकार डेविड वार्नर आउट हुए, मगर उसके बाद इट्स बीन वेरी गुड बॉलिंग और ब्लॉकी फॉर्मेशन जो है अभी इसके बाद ये मिडिल ओवर्स में और डालते रहेंगे। और इनकी जो लाइन लेंथ वगैरह रहती है ऐसी फेस के लिए बनी हुई है। उनका एक कोलकाता नाइट राइडर्स में जब चयन हुआ था, उनको वैसे ही एक रोल दिया कि आप मिडिल ओवर्स में डाल लीजिए, तब से उनका प्रयोग वैसा ही होता है। क्योंकि ये कभी कभी जो मिडिल ओवर्स में थोड़ी गेंद भी इतनी नई नहीं रहती, मगर गति से जब आते हैं बल्लेबाज भी सिंगल डबल लेने का प्रयत्न करते, शायद ये करते वक्त कुछ गलती कर बैठे, तो टैप करते वक्त गलती कर बैठे। तो ये इसीलिए जो आजकल आप देखते हैं कई बार जो है तेज गेंदबाजों का ऐसा इस्तेमाल होता है। बल्कि पाकिस्तान पिछले साल वो हारिस राउफ का भी कभी कभी ऐसे मिडिल ओवर्स में इस्तेमाल कर रहे थे। बिल्कुल डेटा जो है ना आजकल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज आप अपने स्ट्रेंथ को ढूंढते हैं, प्लेयर्स को फिर उस हिसाब से अपनी टीम बनाते हैं। अगर हम वर्म की बात करें यहाँ पर तो कई माइल्स आगे हैं यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम। 60 रन करीब बने थे 6 ओवरों में, और यहाँ पर अगर स्कोर देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का तो 37 रन बनाए, 3 विकेट जा चुके हैं। और मिशेल सैंटनर अब पावर प्ले के बाद नया ओवर लेकर आते हुए दूसरा ओवर डालेंगे। इनिंग का 7वां ओवर है और टारगेट है 201 रन। मिशेल सैंटनर अभी फील्ड ऑफ कोर्स स्प्रेड हो जाएगी। मैक्सवेल क्या अभी स्ट्रैटेजी रखेंगे, पहली गेंद में उन्होंने खेल दिया है मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में और फिसल गए। ओ माय गॉड, कुछ क्या वो मुश्किल में है यहाँ? फिसल गए थे टर्न करते वक्त, शायद थोड़ा बिल्कुल ये थोड़ा सा अचंभित कर देने वाला जो स्पाइक्स होते हैं। लेकिन ऐसे ही अगर सुपर स्टेज देखे तो पहले वाले मैचेस में एक दो प्लेयर मैंने देखा रन देने के बाद मैंने इनकम को देखा था, मैंने दूसरे लेने जा रहे थे फिसल गए थे। इस तरह से जब फिसल लेते तो दूसरे छोटे दूसरे बल्लेबाज बिल्कुल तो उस तरह से थोड़ा सा स्पाइक्स या तो गेंद थोड़ा पिच थोड़ा बाहर ग्रास हो गया। बहुत बढ़िया गेंद, इससे ऑन साइड खेलना चाहा, ऑफ स्टंप पर थी गेंद, स्वीप करने की कोशिश टॉइनिस की, मिस किया, लेकिन सीधे विकेट कीपर के दस्तान में भाग्यशाली रहे, कोई एज नहीं लगा और बिल्कुल चिपक कर खड़े हैं मैथ्यू वेड वहां पर। मैथ्यू वेड नहीं, माफ कीजिए डेवन कॉनवे बिल्कुल चिपक कर खड़े हैं वहां पर। जी हाँ, अगर मैथ्यू वेड हो क्या कर रहे हैं मैथ्यू वेड? मैथ्यू वेड अभी ऑब्वियसली डगआउट पे बैठे हैं। मैथ्यू वेड के लिए ना आप जरूर एक उम्मीद लगा सकते हैं, 40 रन के आसपास जरूर वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मगर आपको यहाँ एक प्लेटफॉर्म बनाना है उनके लिए। फिर वो आके जो है अगर आप उनके लिए रखेंगे आखिर के 5 ओवर में 70, 70, 75 वो बना सकते हैं, मगर वहां तक आपको लेकर जाना है मैच, विकेट भी रखने।
बिल्कुल देखना होगा किस तरह से ये दोनों खिलाड़ी यहाँ पर सूझबूझ का परिचय देंगे। 39 रन हुआ है 3 विकेट पर, 7वां ओवर चल रहा है और मैक्सवेल देखना है क्या करेंगे। ये गेंद स्पिनर बाहर की ऑप्शन से बाहर से अच्छी पोजीशन में आके ड्राइव कर दिया जब तक गेंद जाती पॉइंट डी पॉइंट में बैट्समैन के पास मौका 1 रन लेने का। टीम का स्कोर हुआ 40 सेंटर। कसी गेंदबाजी कर रहे हैं, पहले ओवर में जरूर रन दिए लेकिन इस ओवर में मात्र 4 रन दिए अब तक। जी हाँ, मात्र 4 रन दिए इस ओवर में, मगर बल्कि 3 रन दिए सिर्फ। और अभी अगली गेंद ऑफ के बाद क्या टर्न खाई, स्टॉइनिस शेप करे थे मिड विकेट पर मारने, आखिरी समय पर उन्होंने चेंज किया और फिर कट किया ऐसे और 1 रन दिया। सोचा था लेकिन नहीं, और 3 रन दिए आखिरी गेंद अपने ओवर की लेकर 40 पे 3। ये गेंद इसे ड्राइव कर दिया हुआ खिलाड़ी बहुत बढ़िया, अपने आप को केन विलियमसन ने मान लो गेंद के बीच में झोंक दिया, वरना पक्के में 4 रन बचाए अपनी टीम के लिए। बहुत ही अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन यहाँ। और सिडनी के मैदान में हम अभी भी देख सकते हैं कि न्यूजीलैंड के समर्थक मौजूद है। मैं ये नहीं जानता था न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी आपको एक 3-4 घंटे की फ्लाइट लेनी होती है। आपको लगता है कि न्यूजीलैंड नहीं है, वैसी बात नहीं। जैसे हमारे यहाँ श्रीलंका जस्ट यहाँ पे टाइम जोन हमारा सेम है, मगर न्यूजीलैंड जो है और भी आगे है समय के अनुसार। मगर अभी अच्छा मैच चलता हुआ वो ट्रांस टास्मैन राइवल्स के बीच बिल्कुल देखना है। लेकिन इस समय पलड़ा जो है वो न्यूजीलैंड का भारी ऑस्ट्रेलिया चेस कर रहा है। 7 ओवर में 41 रन, तो 6 से भी कम का रन औसत है। यहाँ पर डेविड वार्नर 5 रन बनाकर बोल्ड हुए। प्लेड ऑन एक तरह से पहले बैट पर लगी, पैड पर लगी, फिर बैट पर लगकर स्टंप पर लगी। जब वो गेंद एरन फिंच अच्छे टच में लग रहे थे, एक छक्का एक चौका लगाया। 13 रन की शॉर्ट स्वीट पारी में 11 गेंदों के लिए। उसके बाद मिशेल मार्श जो लग रहे थे अपने दम थम में, लेकिन अपना विकेट गंवा बैठे। और अब 3 विकेट 41 रन पर ग्लेन मैक्सवेल के लिए 4 रन पर, मार्कस स्टॉइनिस के लिए 3 रन पर। इसके बाद आना है टिम डेविड और मैथ्यू वेड। उसके बाद फिर मिशेल स्टार्क, पैट कमिंस, एडम जॉनसन। तो ये दो और खिलाड़ी और आने हैं और दूर वाले छोर सोधी अब आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। स्टॉइनिस मात्र 3 रन बनाए 9 गेंदों में। आप देख सकते हैं कितना प्रेशर है इस समय होस्ट के ऊपर। मेजबान है, बड़ा मैच खेल रहे हैं अपनी मोस्ट राइवल कंट्री के साथ। ये गेंद इसे पुल कर दिया, वहां पर खिलाड़ियों के बीच से गैप निकालने की कोशिश की, लेकिन दोनों खिलाड़ियों पर सैंटनर दौड़ कर आते लॉन्ग ऑन बाउंड्री से। बैट्समैन के पास मौका 2 रन लेने का, स्टॉइनिस के खाते में आए 2। टीम का स्कोर 43, 3 विकेट पर अभी तक एक भी एक्स्ट्रा रन नहीं गए हैं। 7 ओवर में 43 रन का स्कोर हो चुका है। 13 ओवर और आने हैं और तकरीबन 150 से अधिक रन आपको बनाने हैं, तो प्रेशर आप जान सकते हैं किस तरह से इन दोनों के बाद। लेकिन इसके बाद टिम डेविड और आपके मैथ्यू वेड जैसे 2 खतरनाक खिलाड़ी आपकी टीम में इस गेंद को पहले से बंद बना लिया था। ऑन साइड में खेलेंगे, पैर को पीछे निकाला, बैक फुट पर गए और गेंद को ड्राइव कर दिया जब तक शॉर्ट मिड विकेट एरिया में जाती। बैट्समैन के पास मौका 1 और रन लेने का। 43 पे 3। अब ये इस सोदी का पहला ओवर चल रहा है। जैसे चेंज में इस सोदी आए हमारे साथ जुड़ गए मेरे प्यारे दोस्त राजेश यादव। 8वां ओवर 44 पे 3। जो उम्मीद थी ऑस्ट्रेलिया से वो कहीं कम। यहाँ बिल्कुल उम्मीदों से पिछड़ती हुई नजर आ रही है इस समय ऑस्ट्रेलिया टीम यहाँ पर। और जो 3 विकेट गिरे हैं उसके कारण पूरी तरह से दबाव ऑस्ट्रेलिया पर यहाँ पर आ गया है। और निश्चित ही अश्विन, हम बातें कर रहे थे कि 200 से ज़्यादा रन जो बने हैं, एक मनोवैज्ञानिक दबाव जो है ऑस्ट्रेलिया टीम पे वो कहीं न कहीं आ चुका है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया टीम पर। बिल्कुल आप पहले के ओवर में देखिए डॉट बॉल की अगर बात करें तो न्यूजीलैंड यहाँ पर स्कोर हो गया 46 पे 3। 8वां ओवर चल रहा है, बढ़िया ओवर इस सोदी का। इस समय सिर्फ उन्होंने 5 रन दिए अब तक। जी हाँ, बिल्कुल 5 गेंदों में 5 रन दिए हैं उन्होंने अब तक। और जो प्रकाश की सजा रखी है उनके लिए थर्ड मैन सर्कल के अंदर है शॉट और फाइनली भी सर्कल के अंदर है। इस समय पॉइंट पर खिलाड़ी सर्कल में मौजूद, रिवर्स खेलने का प्रयास उछाल कर खेला है, बैकवर्ड पॉइंट के बगल से गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। एक अच्छा स्ट्रोक, बिल्कुल ऑफ हैंड फील्ड थी। आप देखेंगे 6 प्लेयर थे, 3 सर्कल के ऊपर, 2 उसके बाद, लेकिन उसके बाद भी रिवर्स स्वीप खेला।
खेलना तो नहीं चाहिए था, लेकिन मैक्सवेल कई दफा ऐसे अतरंग शॉट खेलते हैं। इस बार चौका जरूर अर्जित किया और इस चौके के साथ टीम का स्कोर अब हो गया है 50, 8 ओवर में 50 रन 3 विकेट पर। तो अच्छा शॉट मैक्सवेल का, जो कि ढूंढ रहे थे भाई किस तरह से शॉट खेले, और ये चौका अर्जित किया। बिल्कुल 8 ओवरों में 50 रन और थोड़े से मुश्किल से सही 50 रन 8 ओवर में आ चुके हैं ऑस्ट्रेलिया टीम के। और इस ओवर में ये जो चौका आया आखिरी इस सोडी के, अन्यथा शेष गेंदें काफी अच्छी थी जिस प्रकार से वे गेंदबाजी कर रहे थे। स्टैंड आ रहे हैं यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए, जिन्होंने 2 ओवर में 15 रन दिए हैं, 1 विकेट की खुराक उन्होंने ली है। स्टॉइनिस का सामना करेंगे, जो कि 12 गेंदों में 7 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 9वें ओवर की शुरुआत करेंगे। पहली गेंद थोड़ी गेंद टप्पा करने के बाद सीधी रहती हुई गेंद, कोई टर्न नहीं था इस गेंद में। अब बिल्कुल थोड़ा बड़ा बारह सेंटर जिस हिसाब से इनको खिला रहे हैं, पहले भी ये मौके देखे थे जब गेंद स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन वैसे ही तरीके से फिर से एक बार बीट करते हैं। सूझबूझ गई गेंदबाजी, 2 ओवर में मात्र 15 रन दिए। तो बाहर इसे इनसाइड आउट खेला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, देखना कैच कर पाएंगे कि नहीं। और बहुत ही शानदार कैच, अपने आप को मान लो एक तरह से पैरेलल कर दिया था ग्राउंड के। कितना शानदार कैच, गेंद ऐसे लग रही थी जब जमीन को छू रही हो, उसी समय अपने हाथ को लाया और एक तरह से एक और बढ़िया विकेट स्टॉइनिस का। बिल्कुल एक बहुत ही शानदार कैच वहां पर पकड़ा गया। किसी ग्लेन फिलिप्स थे, देख रहे थे वहां पर जिस प्रकार से गेंद हवा में थी, काफी ऊंची उड़ गई थी और गेंद का पीछा जिस प्रकार से कर रहे थे। और आखिरी समय में जब उन्होंने देखा कि गेंद उनके हाथों में नहीं आ रही है, झोंक दिया अपने शरीर को पूरी तरह से और हवा में जिस प्रकार से उन्होंने गोता लगाया, फिलिप्स थे वहां पर, और कैच जिस प्रकार से पकड़ा, बहुत ही शानदार कैच। इस तरह के कैच आपको मैच जिताते हैं। मैच भी नहीं, मैं तो कहूंगा कैच ऑफ द टूर्नामेंट हो सकता है। जिस हिसाब से कमिटमेंट था उनका, गेंद उनसे दूर थी, लेकिन आपने अपने आप को एक तरह से जॉन्टी रोडस के कैच कहते हैं ना, उस तरह का कैच लिया। बहुत शानदार कैच ग्लेन फिलिप्स से। और स्टॉइनिस के रूप में चौथा विकेट अब जाया हुआ। सेंटनर 2 विकेट ले चुके हैं, तीसरा ओवर कर रहे हैं। अब भाई स्थिति थोड़ी और दयनीय होती जा रही है ऑस्ट्रेलिया के लिए। यहाँ से जहाँ बिल्कुल चौथा विकेट जो गिरा है, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए way over extra coverage and charge. You've got to be kidding me, Glenn Phillips. Please. How good is that? New Zealand, you think they're not on the game? They are well and truly up with us tonight. विकेट तक हो चुके हैं और 9वां ओवर चल रहा है और 10 ओवर के बाद कितने रन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया टीम बनाती है। और उसके बाद जो ड्रिंक्स ब्रेक होगा, उस ड्रिंक्स ब्रेक के बाद वे क्या कुछ वहाँ पर मंथन करेंगे, इस पर सबकी नजरें होंगी। लेकिन टीम डेविड आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बिल्कुल टिम डेविड है जो सिंगापुर में पैदा हुए हैं, सिंगापुर से भी खेलते थे, अब ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं। तो इनसे बहुत उम्मीद है कि इनका जो ग्राफ अगर देखेंगे ना, जिस हिसाब से राइज कर रहे हैं ये क्रिकेटिंग टू वर्ल्ड में, एक बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी माने जाते हैं। लेकिन टिम डेविड की जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया टीम में एंट्री कराई गई है, मतलब काबिले तारीफ है, बिकॉज इनमें काबिलियत है। देखिए 23 मैचेस खेले, 21 इनिंग में 714 रन बनाए हैं, 92 का बेस्ट स्कोर रहा है। लेकिन जो कि हमने पहले देखा था है 5 अर्धशतक और 11 रन बनाए हैं। तो बिल्कुल उम्मीद इनसे ज्यादा है, टैलेंट इनके पास है और जिस प्रकार से विश्व की ज्यादातर व्यापारिक क्रिकेट में ये खेलते हुए नजर आते हैं और वहां से इनके दमखम का परचम सभी ने देखा है। लेकिन ग्लेन फिलिप्स का वो कैच ऑस्ट्रेलिया टीम भूल नहीं पाएगी इस मुकाबले में और इस विश्व कप में। अगली गेंद इस बार टीम डेविड से खेलना चाहते थे ऑफ साइड में, लेकिन गेंद बल्ले का अंदर से लगती हुई फाइन लेग के क्षेत्र में पहुंची। एक सिंगल यहाँ पर मिला, टीम डेविड पर भी दबाव होगा एक लंबी बड़ी अच्छी पारी खेलने का, क्योंकि ये जब तक मैदान पर बने रहते हैं ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदें थोड़ी सी बनी रहेगी। उनका विकेट काफी जरूरी है इस समय न्यूजीलैंड के दृष्टिकोण से। बिल्कुल अब स्ट्राइक पर आए हैं मैक्सवेल और उनका रिवर्स स्वीप के लिए एक खिलाड़ी कवर में लगाया गया। इस गेंद को करारे हाथों से खेला
लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर बैट्समैन के पास मौका, 1 रन लेगा। तो तीसरा ओवर समाप्त हुआ, इस ओवर में मात्र 4 रन दिए और एक गजब का विकेट उन्होंने लिया जब स्टोइनिस को आउट किया। लेकिन उसमें मैं कहूंगा बॉलर से ज्यादा श्रेय ग्लेन फिलिप्स के खाते में विकेट जाना चाहिए। बिल्कुल, कैच जिस प्रकार से उन्होंने पकड़ा था वहां पर किसी ने सोचा न था कि इस कैच को वे लपक लेंगे और गेंद पर नजर दौड़ते हुए कैच को, और आखिरी समय में जो उन्होंने छलांग लगाई और उनके हाथों में आकर जिस प्रकार से गेंद वहां पर मैं कहूंगा कि पूरी तरह से इस कैच में श्रेय वहां पर फिलिप्स को ही दिया जाएगा। और चौथा विकेट जिस प्रकार से गिरा है, बहुत बड़ा झटका वहां पर लगा है ऑस्ट्रेलिया टीम को। और अब यहाँ से जबकि 9 ओवरों का खेल हो चुका है, कुल मिलाकर 66 गेंदों में 147 रनों की दरकार है ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए। और ये जो 4 विकेट हैं अश्विन, ये 4 विकेट बहुत कुछ दबाव बढ़ा रहे हैं। 66 गेंदें 147 रन, मतलब तकरीबन आपको 13.5 से औसत से रन बनाने हैं। तो आप देखिए, और आपके 4 इंपॉर्टेंट विकेट अंदर है डगआउट में, और आने वाले खिलाड़ी में एक ही खिलाड़ी जो खेल सकते हैं वो है मैथ्यू वेड, क्योंकि यह आखिरी पेयर है। इसके बाद मैथ्यू वेड खेलेंगे। इस बार रिवर्स स्वीप खेल दिया फिर से जो, लेकिन वहां पर खिलाड़ी शायद मौजूद, मैंने कहा था कि इस बार लगाया गया है वहां पर मैक्सवेल के रिवर्स स्वीप से बचने के लिए, और उनके पास मौका एक और रन लेने का। मैक्सवेल रिवर्स स्वीप खेलते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा मुझे वो शॉट पसंद नहीं है। कई बार आप विकेट गंवा देते हैं, लेकिन मैक्सवेल कई बार ऐसे शॉट खेलकर चौका जरूर अर्जित करते हैं। 1 रन मिलेगा इस दफा उनको, और टीम का स्कोर 55 रन। 10वां ओवर चल रहा है। इस शोधी बॉलिंग करेंगे अब टीम डेविड को। टीम डेविड ने 3 रन बनाए हैं, 3 गेंदों का सामना किया है। तो अभी भी आप देखिए 65 गेंदें आपके पास हैं, 146 रन, तकरीबन 13.5 रन प्रति ओवर की औसत से बहुत मुश्किल होता जा रहा है। बिल्कुल मुश्किल होता जा रहा है। अगली गेंद को खेला, शॉर्ट कवर्स पर खिलाड़ी मौजूद थे, गेंद उनके पास पहुंची सीधी डॉट बॉल होती हुई। और टीम डेविड जो कि 4 गेंदों में 3 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और ऊंचे लंबे कद के बल्लेबाज हैं वे जिस प्रकार से, और तेज तरार बल्लेबाजी T20 क्रिकेट में उनकी महारत है। अगली गेंद अजबार, बहुत अच्छी गेंद, बल्ले को लगभग बाहरी किनारा चूमती हुई शॉट थर्ड मैन के क्षेत्र में बाल बचे। ऐसा लगता है यदि गेंद बैट से न टकराती, पैड के आसपास टकराती तो थोड़ा सा अपील हो सकता था वहां। बिल्कुल, देखिए गेंद उस हिसाब से अगर आप देखेंगे टर्न हुई, और देखिए कॉनवे भी अपने आप को शिफ्ट करके ऑन साइड में ले आए थे। अगर वो खड़े होते तो शायद कैच कर पाते। तो गेंद अपने दिशा से दूसरी तरफ टर्न हुई और इस गेंद पर बीट हुए, भाग्यशाली रहे, कोई खिलाड़ी में स्लिप में नहीं था, विकेट नहीं तो चला जाता वहां पर। लेकिन अगली गेंद इसे ऑन द राइज खेल दिया, सीधे ग्राउंड पे बिल्कुल चिपकती हुई गेंद जब तक पहुंचती लॉन्ग ऑन। Yeah, it really has been a treat. There were definitely question marks around New Zealand not having Daryl Mitchell in the team for this game as well, after being such a glue to the New Zealand team in the last T20 World Cup. The thing that I've loved about Ish Sodhi here, he's learnt from what Adam Zampa did when he got a little bit too full, a little bit too often. And Ish has just been into the wicket a bit more, not giving the batsman a chance to be able to just stand there and hit through the line. But now, with the new batsman, he's going to be wanting to tempt Tim David with a little bit slower, a little bit fuller, try and get him caught at cover, deep cover or deep mid-off. Oh, beautifully bowled. Beautifully bowled. And it's different for Tim David as well. I mean, we all know it. It's the big stage. You're up with the big boys now on the big stage in a pressure situation, and it's not easy. And he's slowed down his pace as well. He's down into the early 80 kilometres, so Tim David's going to have to make the pace. Wouldn't surprise me if he slows it down a little bit to Glenn Maxwell as well. Again, trying to make him make the pace. He wants to push hard, but Tim Southey prevents a second. And this is the bonus of your team chasing or defending 200, 201. Now Ish Sodhi can really just be a little bit more attacking now to be able to just continue to try and break these partnerships. So he's bowling a little bit slower, bowl a little bit wider, and the occasional faster one, Maxwell stumps. Almost at the halfway stage, and the required rate has touched over 14 already. No doubting the power of Maxwell, the power of Tim David. And you wave to come.
We've seen them do it before, but to get 14 and over from so far out is a very difficult task. Not impossible, but difficult. Maxwell goes, cover, and one bounce for 4. So finishes the 10th over with a boundary, does Glenn Maxwell. 8 runs coming from it, 62 for 4. Time for some drinks as well. At TravelUp, we understand that when it comes to travel, you need a totally flexible, complete travel solution. Compare hundreds of airlines and thousands of hotels. Book now through travelup.com or call 0207 580 5000. E kulla koskaan voisi kai tällaista iltaa. Odotan turhaan sinua armain. Kuu kulkee pilven taakse taas. Meg, meet Paul. Hi, Meg. Hi, Meg. Whatever, Paul. You're not my dad! Just give it time. Because it means the world to you. It does to us too. Beaverbrooks. Times are tight. And right now, things can feel a little constrained. Like there isn't much wiggle room. Sure, you can get a new phone if you want, but is that always right for you? With EE, you can get an annual checkup on your current device designed to keep your phone in tip-top condition. Count on EE, the UK's best network. Well, Australia in a whole heap of trouble at the moment. They've lost 4 wickets. Just 62 on the board in pursuit of 201, the defending champions. And we saw Brett Lee's hat-trick from 2007 a little earlier. Here's another magic moment from that same tournament. Bowling, yeah, it's a ripper. He's pulled it out, the skipper, just when they needed it. He's got 3 for 15, Big Dan. Bond this time. New Zealand having posted 190, managing to defend that thanks to Dan Vettori, 4 for 20. And another wily left arm spinner in picture at the moment, bowling beautifully. But that has been dispatched to the boundary. Take that. Well, here we go. Here's what the excitement has been about this tall figure, powerful man. So much spoken about, and it's been exposed so often. Basically offshore from Australia. It's been in T20 franchise cricket, but he gets his chance now. He's had a nice little lead into this tournament. He's got a great opportunity here, Tim David. Bit slower, but he's gone in the same direction. It's another good catch. New Zealand holding all their catches this evening. Outstanding catch, but it's pretty poor cricket elsewhere, certainly from Tim David. Eyes lit up, dragged down from Santner. Best delivery that he'll bowl in this tournament. But did get a little bit of turn, so if anything, you can credit the fact that he ripped it hard enough just to deceive the batsman. Really nice catch there. They've been slick in the field. They've been slick in every facet of the game tonight, New Zealand. Another big blow. Tim David, the danger man, goes for 11. Australia reeling, 68 for 5. Have a good think about Tim David. Matt Wade has been
missed to fix it for Australia for about 18 months now in this format, since sliding down into that middle order. Previously at the top, he learnt the skills and the way to just manipulate the ball around in that middle and late overs, so he's got a job to do tonight. Perhaps his biggest challenge of them all in recent times. This is an Everest, 133 from 58 required. Critical to Australia getting through to that final last year, and a reason why they've been able to play with so much freedom. That batting order, Matthew Wade coming in at 7, but this is a job to do. I thought Santner had dragged that down a lot more than probably on that replay there. It was still a short ball and it still deserved to be put away, but a little bit of grip shows that David didn't get it right out of the middle. Why wouldn't they be smiling? It's been a joy to watch the way they've gone about everything. That reverse comes out again, this time all along the floor. He'll pick up a boundary. Need a few more of those, Maxwell. He's got the perfect opportunity now, Maxwell, to get all the toys out. Show everyone every part of the repertoire. 14 and over required. It's been a real wrestle, Maxwell. And a lot of talk about those last 7 innings. Hasn't got into double figures. The grip change on the right for the switch hit. Quite often when he wants to go up and underneath it, he'll change his grip so he can get that elevation. End of the over, 74 for 5. With O2, you can now claim a £200 prepaid MasterCard on us when you pick up the Samsung Galaxy S22 or the Samsung Galaxy Z Flip 4 on a 20 gig or more tariff. Claim your £200 prepaid MasterCard. We're better. Connected. Search O2 Samsung. This is a big over, Gilly. Massive over for Australia. Maxwell has to take Sodhi down. As well, just slows the pace, sees him get into position. Clever bowling. I think Sodhi's going to keep taking it towards that leg stump line. Just be careful of the flat, hard, traditional sweep. Straight at the square leg umpire. There's a lot of room to cover. This time he goes up and underneath. Glenn Maxwell. What a strike. Why would you go traditional if you can do that and hit it, I reckon, 30 rows back into the second tier, the Bill O'Reilly stand. You back, Gilly. So that was that switch hit, and you said exactly, you called it beautifully, Each, when he wants to get leverage and get underneath it, he switches the grip. So by the end of it, it looks like a David Warner traditional slog sweep. What skill, what class. So then he has to change his line.
So he's kept his field back on the leg side. That is the longer part of the ground. Going reverse again. Nice bowling, and look at that, berates himself. Maxwell. The reverse or the switch, it's just a stroke he thinks is a normal shot, so I'm not sure why he wouldn't keep going with it. There's room over backward point. That's exactly what he tries to do, but good again from Sodhi. He's just dipping that ball into the leg side. Not able to get that elevation on that occasion. Oh, what an innings from Devon Conway this evening. Being able to bat right throughout the innings. New Zealand got up to 200. And a key factor in making sure that Maxwell didn't bowl. The game of cat and mouse in that over. Sodhi, I think will be pretty happy with how he finished up. 82 for 5. Including with the Spikers factoid. Did you know that New Zealand went on from 8 tight matches in T20 internationals, the most of any team in the world? Check the ball for New Zealand and the red wicket. Back into the attack is number 69, Logie Ferguson. Stark difference there. New Zealand, they started well, they continued to go well, especially towards the end with Devon Conway still there. Finn Allen getting them off to the perfect start, out the blocks quickly. Australia stunned. Here comes pace. No run. Third and fine back on the boundary for Wade. He does like to get that ramp out. Shuffled his bowlers beautifully. Kane Williamson, bolt a little bit more expensive than you ever become accustomed to at the top there. Southey was outstanding. Showed all his skill and guile, taking pace off. Edged and gone. Lucky Ferguson. Indeed. They've been thinking about this game and they're dominating at the moment. Wade goes for 2. 82 for 6. The incoming batter for Australia, number 13, Pat Cummins. Their last victory in any form of the game was dispatching Hobart. So we'll go back further. Taste of his own medicine, I think, there. Here's that wicket. Just look at the length there and wear on the bat. It's just too challenging for a batter to control that stroke. Just getting on, just a slight little bit of moisture out on the outfield and on the pitch. They have just grabbed everything, getting some really nice momentum from the outset of this tournament. Heaved away to the leg side. He'll find the boundary. Clever. And that has been useful on this surface, just taking the pace off the cutter.
see that well through the stroke. It's just the arm action that remains so similar, the pace of it and the release. If you're expecting that, or possibly coming a short ball at 145 and you get the slow one, there's not much you can do with it. It's just a little hack to the leg side there. Pat Cummins to close out a successful over. Another very impressive one from Lockie Ferguson, Australia, 87 for 6 after 13. A second world title for Max Verstappen. He is champion of the world in 2022. To stand here now winning the championship here is a pretty amazing feeling. The 2022 world champion Max Verstappen arrives here for the 11th running of the US Grand Prix at the Circuit of the Americas, and he's looking like a strong favourite for victory here again. Join us for live coverage of qualifying here in Austin today, 10 p.m, Sky Sports F1. Big Billy Stanley is the way you refer to him. He likes his mum's spaghetti. He does. Well, those early wickets from Santner and Tim Southey has just played into New Zealand's hands. It's meant that Sodhi has been able to get into his work without too much pressure on him. Glenn Maxwell, usually someone who likes to take down the spinners. David Warner, if he's still there. Aaron Finch as well. But because they went early, it's meant that he's been able to get into a bit of rhythm. Could well get into the wickets. Disappointed the way he executed that, but it did a turn there. That leg side over mid-wicket. Mid-wicket's up in the circle. And not only in the circle, but he's right in on the single there. Kane Williamson. So that's where Cummins can go if he wants. The slog sweep might be on. Another wrong and attack the stumps, I would expect from Sodhi. It's almost net run rate damage control now for the Australians. For some serious entertainment if they're going to get close to this total at 16, nearly 17 runs required every over. So where does Maxwell go? He's going to continue to be aggressive and be creative, but scoring options still remain the reverse or switch hit. Gets him in the end. Tries to reverse one too many times. The pressure telling. And Sodhi has his first of the tournament. Everything working beautifully for the Kiwis. You mentioned it, Sodhi was able to come back into the attack, not feel any pressure. He's done a really nice job up to this point. The only thing that was evading him was a wicket, but he gets the big scalp of Glenn Maxwell. So another confidence builder there for another member of this New Zealand team. Maxwell goes. Australia 89 for 7. Excellent strike rate as always, Glenn Maxwell. But too much to do in the end. I talked a little earlier about this being the perfect sort of pitch for New Zealand to start their campaign here in Australia, and they haven't played here too much. A lot of experience between the players on Australian soil. So on a pitch that isn't as quick as the rest of them, not as much bounce as well. Finn Allen was able to get on the front foot to Mitch Starc. And the spinners have been so very successful for New Zealand. And Santner and Sodhi getting into their work nicely as well on a surface that does take a bit of turn. Overcast conditions for the swing bowlers to utilise at the start of this innings. Just a bit of grip there. And Devon Conway, a class apart.
Oh, he was brilliant. Supported by Finn Allen and Kane Williamson. And Phillips came in, a little cameo, and then the closing out of Jimmy Neesham. And a perfect night out for New Zealand. Googly to finish. A brilliant spell. 1 for 29 for his ball. Yeah, confidence booster for that man. Well bowled. Terrific job. Back of some grunt work from Tim Southey at the top of the order. He's able to settle into his work. The leg spinner. Highly anticipated match, this opening one between two rivals. Facing off again after that final 11 months ago. Just casting the mind forward, that's what Australia have ahead of them. Head across to the west. Tomorrow, you would think, take on Sri Lanka there at Perth Stadium. England, that's going to be, well, the most important game now, you would think. Ireland, they'll be full of confidence getting through, and Afghanistan in Adelaide, the home of Rashid Khan in the Big Bash. Here's Tim Southey. Yeah, it looks like a challenge when you say it like that. Australia with a chance to play at all the grounds around Australia, but that does mean travel. And they have had a pretty exhausting build-up to this tournament. Having gone to India, you know, the bowlers had a bit of a rest. As he was just short of Neesham. The bowlers had a rest as Australia headed over to Perth to play England. I was talking to a couple of the players from each team prior to the match out there, and it sort of felt like the majority of teams had been really busy leading into this tournament. There'd been a lot of cricket on. Think of how many matches Pakistan have played recently. Well, when we saw a 7-match series on the cards between England and Pakistan, it was like, wow, really? But gee, it turned into one of the classics. It was brilliant. Yeah, there's a lot of miles being flown, a lot of training sessions, a lot of warm-ups, a lot of airports. And it's amazing when you get off to a start like this in a tournament that New Zealand have, you forget all that. Pretty easy decision, that one, I think. Which way are you going tomorrow evening? Melbourne. Well, the good news is I've been reliably told by Mark Howard, who's from that part of the world, the forecast is much better, much improved. Oh, where do you go when you look at last year? Pakistan, a 10-wicket victory. Your good mate, Matt Hayden. Yeah, Big Matt the Bat will be there with Pakistan. I think he hosted the team over at his house for a big barbecue a few nights ago. I believe Sunil Gavaskar even made his way there as well. So good as Haydos's hospitality. That worm's looking a little bit limp. It is. It's big trouble. A gentle chip for Pat Cummins as Bolt completes his third. 97 for 7. All right, there is 30 balls to go in this game, and we are so excited. We're about to take the captain for a run along the boundary. Here he comes! Come on, Sydney!
97 for 7. Lockie Ferguson, a wicket taker. New Zealand on the verge of something they haven't done for a long, long time. Good enough. Better than that. Pat Cummins, backward drive over the offside. It's been a very nice touch of recent time in T20 cricket. Well, that's not a bad ball at all from Lockie Ferguson. To be able to get under it. Nice swing of the bat through the line of the ball. Aussies need a lot more of those. Crunch into the members. Pat Cummins just standing dead still, allowing the ball just to angle into his arc. The thing I loved about this shot the most is how he watched this right onto the bat, right under his eyes, into the power zone and into the crowd. Pat Cummins has done this in recent times. We've seen it in the IPL. He's done this a number of times. What can he Smithy, what's going to happen here? There's no die in Australia. There is no die here. Nice reply, Lockie Ferguson. Needed it. Tells a story, that camera angle, my goodness. Glenn Phillips, it's amazing athleticism, anticipation, athleticism and execution. Fabulous. Well, you mentioned that earlier. I listened to you earlier and you said right from the start the boldness with which New Zealand have played this game, and it's been very noticeable. It certainly has, and that's, as every cricketer, that is when you play your best, and when you've got no fear of making a mistake, no fear of what might happen. You're just going out there, taking the game on, and that's across all facets. That's decision making under pressure, and then whatever you feel, you go for. And we saw that with Finn Allen. I keep going back to it. One ball then just went at Mitch Starc to really set the tone. And then everyone's just followed Finn Allen's lead. And it's been so impressive to watch. I know the Kiwis haven't got a good record playing here in Australia at all, and I was very reserved about their chances tonight. But goodness me, they have just been absolutely outstanding. And the Australians, you could see that just their energy shifted from that first over. And then New Zealand just been able to just continue, just compound it down and down. A lot of New Zealanders have got memories of the 2015 World Cup and Stark's first over there. That's why they were quiet. 16 overs gone, 109 for 7. Yeah, Mitchell Starc has a big turn of events from that first over against Brendan McCullum, the MCG in that one-day World Cup final. Turn of events, Finn Allen just taking it on. Well, Australia's plight is nigh on impossible now. 92 from 24. Even harder now. Bolt on target, and he'll enjoy getting rid of Mitchell Starc. Bolt doing a Starc. It's a Starc. Hitting the stumps, nice and straight, angled in slightly to beat him on the inside. And the performance continues. It has been flawless so far. Mitchell Starc just a little bit late on that.
beaten by the angle a little bit as well. And the Kiwis just continue to keep that foot right on the Aussies. Mitchell Starc goes for 4. Aussies 109 for 8. Finch, the leadership of the Australian career team, got some soul searching to do after this performance. It certainly would have been cock a hoot going into this, knowing they've the defending champions. Well, Adam Zampa needs to go from ball one. After Mitchell Starc's demise, Trent Boult stood up again tonight. Boult a beautiful first over to David Warner in particular. Mitchell Starc, he seemed just beaten on the inside there. Just closed up his arc. Stumps everywhere. Gone again, straight through into leg stump. And Trent Boult is doing a job on the Australian tail. Trent Boult, he's not missing. Adam Zampa just giving himself a little bit of room. He had no choice. He's got to go. And the knuckleball, Trent Boult, it's beautifully executed. And it came in as well. Wow, what a ball. Would have got out a lot of batsmen. Knuckleball just came in a little bit with the arm. It's too good for Adam Zampa tonight. The Australians are in dire straits. It's sad to say, 109 for 9. Well, last man in, plenty to win from Australia's point of view. And it just has been relentless, this New Zealand assault. There's a lot of players out there who have been hurting for a while. A lot who copped it. And Dubai will be enjoying every minute of this and every bit of this action. Some players have been back and forth across the Tasman without any success at all. Josh Hazlewood on strike. Trent Boult to 2 for 22. Our tech boys might have to fork out a bit here. I think that camera is gone. Very accurate from Trent Boult there, lining up the stump cam. Where do Australia go from here? I mean, this game is not over, but there's a big bench there. There's some experience on that bench, and this competition means quick decisions. The one thing the Australians have done is they normally stick to what they know. And they're going to have to, because you can't just allow one loss to just make things go a little bit too hectic. Coming up, we've got England, Afghanistan from the beautiful Perth Stadium. England will be keen to really get their campaign started on a high. Afghanistan, a lot of match winners in their team to really try and upset the apple cart of the English. Look, there's been so many upsets, and I class this as one. To be fair, on form, I class this as one, and on record in this country. But when you look at the qualifiers, you saw the upsets in those. I write no one off. I write no one off. The nature of this game. Yeah, we've seen it so far in this tournament, and I agree. Australia were definitely huge favourites going into this game. And there's going to be a lot of questions asked, but Australia's just got to keep the path. They've got to stay on track. Their game plan, they've committed to it. They committed to it quite a while ago, 3 or 4 months ago, with
Aaron Finch, Dave Warner at the top. They committed to Steve Smith moving out from number 4. And now there's going to be some questions around of whether that was the right commitment. For me, they did make the right choices. And now they just have to stick strong with it. But they've got to take a leaf out of the New Zealanders' book and have that fearless mindset for the next game. That's the end of Trent Boult for the evening. 4 overs, 2 for 24, and Australia 111 for 9. Trent Boult has just stood up again for his team. And to be honest, when hasn't he stood up for his team, especially in ICC events of recent times? He just knows how to get the job done. He's always been excellent with that brand new ball swinging around, but through the middle overs and the back end of, with an older ball, his defensive bowling, it's outstanding. Tim Southey's back into the attack, and no one in New Zealand has taken more wickets in World Cup T20s than Tim Southey, 24, Nathan McCullum, 23. Straight up, and this could be it. Conway is underneath it. Is this the moment New Zealand can finally celebrate? They certainly can. And that is a good old-fashioned hiding, whatever way you look at it. Tim Southey has stood up for his team tonight. He really has. 3 for 6. Tim Southey, he's really led the New Zealand bowling attack, and the Australians, they've just been outplayed in a big way. Fearless cricket from New Zealand, and the Australians are going to be licking their wounds for a while now. That is a very big defeat. 89 runs. 89 runs the margin. New Zealand's biggest win over Australia in a T20 international match. Sky Sports Cricket. Feel it all. Bubbles, bubbles, so many bubbles. As an Expedia member, you earn points on your travels, and that's on top of your airline miles. So you can go and see, or taste, or do absolutely nothing with all those bubbles, without ever wondering if you're getting the most out of your trip, because you are. Times are tight. And right now, things can feel a little constrained. Like there isn't much wiggle room. Sure, you can get a new phone if you want, but is that always right for you? With EE, you can get an annual checkup on your current device designed to keep your phone in tip-top condition. Count on EE, the UK's best network. Mate, I'm getting so excited for the World Cup. I challenge you to do like a real-life sticker album. I'll give you 11 days, 11 players, Hooray! World Cup stars. What can go wrong? The investigation continues. What shocking secrets was Harry Houdini hiding from the world? How did martial arts icon Bruce Lee really die? It's time to investigate. History's Greatest Mysteries with Lawrence Fishburne, available now on demand. Cut away for 4. What an innings, what a player. The Ashes well and truly alive because of one cricketer. And that cricketer is Benjamin Stokes. This is a masterclass. Just superb. What a spell. Into the crowd it goes. A beauty. Wonderful shot. Wow.
What a way to get to 50. Have a look at this for class. Leg side this time all the way. Smashes it. You never see better than that. What a cracker. Glorious. Good evening from Perth, Western Australia, where England begin their campaign to become World T20 champions again. They have the talent, they have the determination, but are they up to speed? The world. It moves quickly these days. It can feel like everything is traveling at 100 miles an hour. Non-stop pace. Non-stop pressure, bubbling, simmering, until something has to give. Would you believe it? Overthrow gives Netherlands a win. Just look at these scenes. Zimbabwe are there. But within the chaos, 6-6 and over. can you find your own slice of time? A second to think, to assess. Cool under pressure, what a shot. To breathe. Presence of mind to fall back on everything you've learned. Oh, it's brilliant. Everything that has got you to where you are. To here. Here we go. The present moment. The only thing that really matters. History for the West Indies. Unbelievable scenes yet. What a match for a 2020 final. Look at these scenes. England are the winners. Well, it just might be. What a challenge and what excitement awaits Jos Buttler and his team over the next few weeks. England certainly have the players and the talent to go all the way. Can they put it all together here in Australia to become T20 world champions again? Well, they don't start against the likes of New Zealand, who've just put in a fantastic performance against host Australia, or indeed they don't start against India, but they do begin against a talented and dangerous Afghanistan. So England will have to be at their best here tonight if they are to hit the ground running. Well, a welcome along to you and indeed to Owen Morgan. Morgs, we're going to start, though, with that news from over in Sydney. What a performance from New Zealand. What a shot for Australia. And that fixture now against England in Melbourne for Australia is massive. Yeah, it's going to be huge. I think defending champions, you want to start the tournament as well as possible, but they've had their backsides handed to them again on a silver platter. It's like you rewind 12 months to when we played them in the UAE last year. They went to changes back then. It worked for them, it made them more aggressive, but that is a huge blow. I mean, Kane Williamson and his team have really just been extraordinary in the way they've played. And the likes of young Finn Allen coming in and playing as positively as he did against some of the best bowlers in the world, it was great to watch, particularly when it's Australia. What a start for New Zealand. What about England's start here? How are they looking, would you say, going into this World Cup and indeed this fixture? Yeah, I think they're the informed team coming into the World Cup. They had a fantastic series away in Pakistan, winning 4-3. And the most important thing for me to come out of that trip is actually winning the deciding game. Guys producing performances, young Harry Brook coming into the side, Moeen Ali captaining really well in the absence of Jos Buttler, and then hitting the ground running, coming to Australia, winning. But they could have won 3-0 if there was only for a bit of rain. But they've made Australia look ordinary, and Australia are the favourites for the tournament. So I think England look fantastic. They obviously have to start well. It is a World Cup. There is extra pressure, but I'd be confident if I was Jos Buttler. Put us in Jos Buttler's shoes then. Put us in Jos Buttler's shoes then. First game as England white ball captain ahead of a World Cup. How is that? How does that feel? There are a lot of nerves to start with. There are a lot of things you have to do, a lot of boxes you have to tick before you get to actually where you want to be, which is out in the middle, facing the first ball or somebody bowling the first ball, getting into your work. So it's important for him to be able to control that, make sure he's not wasting energy, nervous energy amongst the players, try and address the players in the right balanced manner, and then tell them to go and play with confidence. They're absolutely flying at the moment. And
as a fan, it is great to see, and particularly with the first result of the tournament, of the Super 12 so far, going, in our favour. It brings a lot of pressure to that game on Friday at the MCG, which could make things very interesting. Yeah, the tournament's been going for a while because, of course, Ireland are now in England's Super 12 group. So England start here this evening against Afghanistan. Let's go and join Michael Atherton. Men's T20 World Cup and the second of the Super 12 stage. The captains Mohammed Nabi, Josh Butler, Andy Pycroft, the match referee. Here, Josh, you have the coin. Heads is the call. It's a tail. Josh, you're going to bowl. Explain why, please. Yeah, we're going to have a bowl. We just feel like we'd like a chase. You seem to have been away a long time. It's been a long build-up. Keen to get going now? Yeah, absolutely. It's been, like you said, a long build-up. There's been some really good games for us. We feel very as ready as we can be. So everyone's been chomping at the bit to get going. And you, as captain, your first ICC tournament, World Cup, how excited are you and how confident are you that your team can go one stage further than last year? Yeah, really excited. It's obviously a great honour to captain your country in a World Cup, so I'm really excited by that and have full faith in the team. We've got a lot of talent in the group. We have a lot of match winners in our side and go out there and express ourselves. The balance of your team tonight, selection, who have you left out? Easier to go that way, I guess. Yeah, we've left out David Willey, Chris Jordan, Tamal Mills and Phil Salt. OK, go well tonight. Thank you. Good luck. Batting first, often the way you like to go. Bismillah Rahman. Yeah, the plan was to bat first and put some score on the board here and put under pressure on this guy here. And this is your 6th T20 World Cup. Are you as excited now as you were for the first one way back? Yeah, the first one was brilliantly. That was in 2010. Was really excited at that time. We were playing first T20 World Cup, and now also excited as a captain. Hopefully we do well in this tournament here. You've been in Brisbane warming up. You beat Bangladesh. You had a rained-out game against Pakistan. How well prepared are you for this game? Yeah, from last few weeks we are in Brisbane to adjust with the condition and weather also as well. Yeah, played 2 warm-up games, play good games against Bangladesh and also against Pakistan. We played well, but unfortunately we didn't bowl. But boys are ready for this game. Yeah. You have an English coach as well. How valuable has he been for the insights into the opposition? Yeah, he's really hard worker from last few months with us, with Asia Cup, Ireland cities, now in the World Cup. Yeah, he's a brilliant now. Have a great evening tonight. Good to see you. So England have won the toss and they will bowl. Thank you very much indeed, Michael Atherton. And this is how England line up, basically playing the extra batsman. Is that the way you would have gone? Is that the decision you would have made probably at the toss? Yes, it is. I think England, as they line up as it is at the moment, are incredibly balanced. They bat deep, as they have done for the last 7 years, playing that aggressive brand of cricket. And the 5th bowler will be made up by Stokes, Ali and Livingston, which are all capable within their own right of completing their allotted overs. So I see this as their strongest team being put out, along the likes of the pace of Mark Wood and the skill of Adil Rashid, very threatening. We always look at, and we will look at Rashid Khan, but when you look at that Afghanistan side, I mean, they have match winners. They have proven match winners in different conditions with all the franchise cricket that's now been played. Absolutely, and certainly the platform that Afghanistan cricket has had over the last period of time. Again, Mohammed Nabi alluded to it at the toss, with the Asia Cup being another opportunity for young guys to come through. And you look at names at the top of the order. Afghanistan have 2 threats. One with their spin bowling lineup, which has always been obvious, of highly skilled bowlers. But those top 3, Gurbaz Zazai and Abraham Zadran, are 3 guys to look out for. They try and play a very similar brand of cricket to England, very attacking, very positive, and they look to do that again here tonight. Now, I spoke to Sam Curran the other day, and he said this wicket is quick. It's actually, there's 2 sets of ground staff here. One set look after the outfield, and one set look after the square, or the block, as they call it over here. It feels like the whacker. If it goes through, is it short ball tactics to the Afghan batsmen you think England will go out, or it's not about that?
No, I don't think it's about that. I think if there is pace and bounce like we think there will be, and there is a little bit of green grass on the wicket as well, so there will be some movement on offer early on. So I think for England, it's about controlling and being disciplined when you can, and then using that one bouncer per over if need be. When you look at the dimensions of the ground here, square of the wicket is a lot longer than straight. So they'll either look to bowl a hard length, as we talk about, the top of the stumps to extract some movement and then use their short ball later. Well, let's just remind you of England's fixtures, because of course they start against Afghanistan. I've just mentioned they're going to take on Ireland because they qualified for the Super 12s with a fantastic performance against West Indies. So it's Afghanistan today in Perth, then we head to Melbourne. So Ireland is on Wednesday. Friday should be a massive event. Friday night at the MCG, England against Australia, and Australia have to win. New Zealand are obviously bang on form. But you never know what you're going to get with Sri Lanka, so it is quite tough. Unbelievably tough, and it's the nature of any World Cup. You should have to bring your best game every time you take the field. There's no easy game in this World Cup. We talk about Afghanistan's threats with the ball and the bat, so that should always be the case. And I think, you know, Australia losing today throws this group wide open. Well, Afghanistan are a very, very dangerous side. Mind you, any side would be dangerous if they had in their lineup this man. It's all Afghanistan. Oh, it's got in. 100 wickets for Rashid Khan. Oh, another one. Rashid Khan strikes. Gone. Oh, brilliant bowling. Rashid strikes into the attack. And Rashid Khan. And it's 400 wickets in T20s for Rashid Khan. One big matchup. This will make you smile. You've bowled a lot of Jos Buttler over the course of your career. 49 balls you've bowled to him, and you've got him out 4 times. Big matchup. Yeah, always great. Always great to bowling to him, and that batting lineup shows that we have seen how destructive they are against any opposition, any condition. They have done pretty well against any team, anywhere. And I think that is something as a bowler you love the most, because you have the best batsman in the opposition, and that gives you tough time. And luckily you're not there, which is a kind of big relief for me since 2019 World Cup, what happened there. But yeah, I think same. The batting lineup they have in the middle, Livingston, Stokes there. So great contest, but at the same time, for me, will be a great learning and a huge, a kind of responsibility in the middle as well to bowl to them, and I will enjoy. That is something which in cricket you love it. There is pressure, there is tough times. You go through, and you perform in that. That's how you become better cricketer. Well, Maul spoke with Rashid Khan the other day for a little longer than that. You can see that on some of our social media platforms. But when you showed me this stat in a matchup between Jos Buttler and him, I nearly fell off my stool. I mean, that is staggering. Does that affect maybe when Rashid Khan will bowl in this game? I think it will. Notoriously, he normally bowls in the last 10 overs of the innings for Afghanistan and some teams around the world. But he has to bowl at Jos Buttler early, because Jos is such an integral part of the England makeup. If you look at when he has bowled at him here, the first 10 balls bowled, 4 runs, dismissed 4 times. And I think everybody playing in international cricket has a bowler that always has the wood over them, but not the types of player like Jos Buttler. So this is unbelievably rare for the calibre of batsman that Jos is, and I think it's an obvious matchup. So if he's not on early, you'll be asking questions of the skipper, Mohamed Nabi. What is the key to doing well against Rashid Khan? Because you have done particularly well, and what are the great challenges that people find with facing him? Yeah, I think the pace he bowls at is certainly one of the great challenges, and the other challenge is picking it. So early on in your innings, he actually has a huge chance of getting you out, just because of the combination of the pace and the variations that he has. And he is the type of bowler that can take 2 or 3 wickets in an over. So that's the sort of threat that he poses in every team that he plays. He does bowl a little bit better to right-handers than left-handers, but there's not a huge difference in it. I think the makeup of Rashid Khan, you have to be positive against him, because if you try and negate anything by playing defensive, 1, it goes against England's mantra, and 2, it brings him into the game a little bit more. That could be a very interesting facet of proceedings here this evening in Perth. Now, England's batting order is packed with power hitters, but none more so than the now fit again Liam Livingstone.
the form batsman in English white ball cricket at the moment. Liam Livingstone, you hit a big ball. Magnificent. Oh my goodness, it's gone over the stand. No, yes. So you hit another massive six the other day. It's a feature of your game. Do you work on that every time you're at practice? 'Cause I know you've been doing work over the years with Marcus Trescothick with it. Is it still evolving? Yeah, you obviously don't do work to try and hit out of stadiums or whatever. But you like doing it? Yeah. I was batting with Brookie and he was like, well, this is one stadium you'll never be able to clear. There's a challenge. I said if there was ever a time, it was over on that on the smaller boundary. So, no, it's not. It's more an entertainment thing, and I guess it's cool for crowds and stuff like that to see the ball going as far as it does. So, we obviously work on our power hitting game. But I guess the power hitting aspect of it is more consistency than actual distance. It's being able to consistently hit the ball 80 metres rather than hitting the ball 100 metres once. The type of cricket that we're going to have to play to win this tournament, six hitting is a massive part of it. How would you say the team is set? Yeah, I think it's brilliant. I think there's a lot of chat about how we're going to set up, and I think, I guess the big talking point at the moment, or certainly whatever I've seen, is who we're going to leave out, and I guess that's a great place to be. Even the likes of Harry Brook, who's come in and taken the world by storm really over the last couple of years. It's great to have that sort of talent to bring into our group, and certainly from my point of view, having travelled around the world over the last couple of years, it's always nice to sit down in a dressing room, look around and see match winners, and looking everyone in the eye and seeing that everybody can win a game of cricket single-handedly for England is it's a pretty special dressing room to be a part of. We've got a chance to start something new. We've got a chance to start fresh, I suppose, and I guess this is our first big moment as a group, and certainly under Joss and Motti is our first big test. First challenge, Afghanistan. What do you reckon? They're a very talented team. We've played a lot against their boys in franchise cricket around the world. They've probably got the #1 T20 player in the world as well, so I guess the good thing is we've come up against them a lot in franchise cricket. So we're very used to playing against the players. There's no secret in the World Games anymore about players, is it? Because you play together and against each other so many times in so many different conditions. It is one of the big things actually nowadays, because I'll go into an IPL dressing room trying to tell people how to get Joss out, and 8 months down the line you're playing against them in a World Cup. So yeah, thankfully in team meetings these days I try and keep my mouth shut and just go along with it. But certainly you share dressing rooms with lads for 3 months and then play against them in a World Cup 6 months later. So there is no secrets. Everybody knows everybody. Everybody knows everybody's strengths and weaknesses, and I guess it makes it easier for us as players that you get used to these types of players around the world. Well, perhaps not best mates with his captain after all, after what he's been saying in various dressings. But when he was talking about power hitting, what did you take from what he said? I thought one thing that stood out like a sore thumb was he mentioned he is one of the biggest hitters in world cricket. And normally when you get somebody who hasn't ever played a lot of international cricket, they normally get really giddy with that and want to continue to hit bigger sixes. I think the real strong attitude with Liam Livingstone is he mentioned the word consistency. He wants to get better at hitting more sixes as consistently as possible. And I think that message stems from the leadership that Jos Buttler takes forward. Jos is one of the best players in the world, always continues to strive for what the team need in any given situation. And I think a little bit of that has rubbed off on Liam Livingstone. The type of the person that he is, he always wants to continue to get better, he always wants to learn, but that shows that he's maturing as a cricketer. Well, we'll see Liam perhaps back a bit later on. England are bowling though. Now you said to me over the last 2 years that you're looking at the bench strength of England in white ball cricket. The one guy that is irreplaceable is Adil Rashid, but can you now add Mark Wood's name to that list? I think given the context of all the bowling injuries you can, with Jofra Archer who's sitting at home injured, Tynan Mills who's not been at his best fitness-wise, who's now come in as a replacement player. But the pace that Mark Wood has been bowling at in Pakistan and here in Australia so far has been extraordinary, upwards of 95 miles an hour. It really is horrible to face. And Jos Buttler, the skipper, made a great point
this week when he was asked about it, and he said, how effective is he? He said he simply just gets brilliant players out. And that, knowing that England struggle at the back end, bowling at the death, it gives Joss another string to his lineup, bowling about in the middle overs, you know, real attacking fast bowling, which is hard to get away with. Okay, head of the first game. Not long now. Are there any words from the captain now, or has all the talking been done? It's just about get out and deliver. Yeah, I think it's about getting out and delivering. I think you'd be trying to assess the mood in the change room. If things are a little bit too high, you try and bring them down. If they're a little bit too low, you try and bring that mood up to a certain level. But England are ready. He's got to keep his emotions in check though as well, hasn't he? As you alluded to earlier. Yeah, he does. He's normally very calm, but when he gets fired up, he is more than happy to get fired up. It's a lovely evening here in Perth, and we should have an excellent game to bring you. England start their World T20 campaign, and they will be bowling next. It won't feel like home till it feels like you. IKEA, the wonderful everyday. For Expedia members, travel doesn't end at booking. It's getting a discount on your trip, plus points for your future travels. We used to think health was white coats and stethoscopes. That was then. Set yourself free and join the millions already banking with Starling, the Which Best banking brand 2 years in a row. To adapt in a fast-changing world, you could hire a professional pit crew. Go, go, go! Okay. Fresh donuts! Our coffee! They deliver real-time data and business forecasts